180 to 200, and then they come back. Would they be thinking to get another 300 in one session? I think that will be quite a miracle. Uh, History would be written. Somebody will become a hero in a matter of hours, and that would be achievement of some magnitude. That ain't gonna happen easily. Not something that people or even us are expecting. Or even Sialkot region themselves would be expecting that this would happen. Yeah. But I don't mind if they look at it in this way because they're going to lose anyway. If they just keep on batting till the end. This is a close shout. And it's given. Swinging in, hitting him in front of the stumps. And this is where bowling in the right channels can be so useful, attacking the stumps. And this is exactly what Karachi has been doing. Azan Awais looks disappointed, but when the new ball swings and seams both together, there's not much you can do. No problems with the front foot. This is Herrera playing the other ball. Probably Azan would have wished that this was Azan, his. yeah, this is something Azan would have wished he wasn't facing. But the man out is man on your screens. Azan Awais scoring 11 of 18. And doesn't matter. He's a fine talent. Sometimes it just doesn't go your way. 35 for 1. Have a look at this. Well, umpire's call maybe. But the facility of DRS not being there, so it's the final call. And Hazan has to go. Abdullah will come in. He was run out in the previous innings, and not a suitable way for a man of his ability and the nature of the game. We saw Ben Stokes yesterday. After settling in, he was run out of a direct hit from Josh English. So he would want to avoid anything of such nature. Talented, the most skillful as far as abilities are concerned. Abdullah Shafiq for Sialkot region. He'll have to play long. He'll have to play till the evening. If Sialkot region has to have any chance of even drawing the game, let alone about winning it. Azan Awais, the man out. A huge blow as far as Sialkot are concerned because he's the one who scored lots of runs for them. This is how he went. Yeah, he rightly was not happy because this could have gone either way. Zulfikar Jahan, we know that he's a good umpire standing in his first final, but these things can happen. Something that we haven't seen much of. There's a short leg for Abdullah Shafiq, and that is Usman Khan. He does well, dives to his left and stops maybe a couple of runs. Yeah, again, bowling, attacking the stumps. This is good from Saqib. So he makes the batter play the new ball. Instead of just playing along with the keeper, he plays with the batter. And that is how it should be. Yeah, this is what good batters do. Good bowlers do, sorry. Always asking questions, always in that zone, in that area where batter thinks that he can drive.
but it's not quite there to drive. Good run. Quickly realizing, just taking a step forward. Abdullah Shafiq played it with soft hands and rotated the strike. 36 for 1. Sialkot region. That's beautiful again. Beautiful bowling from Saqib. 36 for 1. Again, good running. And getting some extra reward also, courtesy to an overthrow. You buy one, get 4 free. That's the deal. Yeah, looks like a blessed Friday deal. Buy one, get 4. And here is how it happened. Abdullah Shafiq just playing with soft hands, and the gully fieldsman thought he had a chance, so he had a go. But the fielder at mid-on wasn't expecting that sort of a throw. It's Haroon Arshad, the man at gully. Edged, and this time it just falls short of the keeper. Desperate dive to his right side, but the ball didn't carry. So Herrera has been now lucky on a couple of occasions. An inside edge that missed the stumps. Then there was an edge which went through the slips of a 4. And this one didn't carry on a pitch which has been showing good carry throughout the game. Yeah, soft hands, but still that push, that poke. And the angle. Just that angle of the bat also looking to guide it towards third. Oh, again. Was there an opportunity? Did it carry to the fielder? The expression says it did. Yeah, a few things happening out there. I think that was a chance because Abdullah drove it. He just went after it. He saw the length and he thought the ball is full enough. And Usman Khan is the fielder. We shall have a look if it did carry. And this was full. Well, it could have been a great catch. Was traveling. Yeah. He's just feeling the pinch. Again, beautifully bowled. You put the ball in the right areas. This pitch offers you quite a bit as a bowler. You just cannot complain about the pitch. But it asks you to bowl in the right areas. Both these batters have their task cut out. Even if they want to stay there, they'll have to show a lot of good technique, good temperament. This last ball when Herrera edged it. Yeah, now the batters are a touch tentative because the ball is going both ways.
This is Abdullah Shafiq driving one, and Usman Khan trying his best, didn't catch it. And this is the one that went in the gully, and the overthrow. No, not the overthrow. Just went in the gully. Right, end of an happening over from Mushtaq. 10 gone, 42 for 1. Oh, again, living dangerously, just not quite carrying. Looking very determined, but and also very lucky. Not the first time that he's got outside edge, an inside edge once. Yeah, the problem is that when he plays off the back foot, the face of the bat is open. It is as if he's gonna play towards the third man, and that is not the ideal position of the bat when you're defending on the back foot. Twice it has happened now on 2 occasions. Yeah, consistency is the key. .533 the target. They're going at 4.2 at the moment. 42 in the 10 overs. They've lost a very talented batter, Azana Ves. You can just tell the pressure. They've got slip cordon full because not once but twice it has happened with Herrera that the ball has gone in that area but not quite carried. So they know that they need to get wickets. Saqib has been very disciplined, very consistent. Just 16 runs in his 6th over. That's spectacular. That's fantastic. Great bounce. Great movement. And Saqib is using it to his best. That's sensational stuff. That's top bowling. Great seam bowling. Few words also. He's on a high, Saqib. Abdullah Shafiq, after he was beaten, he practiced leaving the ball, but you can only leave this sort of ball if you know it's going to swing away, because the line he's bowling is within the stumps, within the body. So it's better off just playing the in swing. Just have a look at this. Pitches in and then leaves him. It's more of a knocking on the slab sort of a thing. Single to
In the 11th over, it's 44 for 1. इसमें अच्छी खासा इस विकेट में दमखम अभी भी मौजूद है और मुश्ताक मिडल ऑफ स्टंप पर गेंदें करेंगे तो हम वक्त इनके लिए बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करना और इसका जो एक अमल दखल है वो जारी रहेगा। एक सुबह है, धूप तेज है लेकिन नमी का तनासुब भी मौजूद है, इसकी वजह से मुश्ताक को कुछ ना कुछ मदद जरूर हासिल हो रही है। असल बात जो है वो ये ट्रैक है जिस पर ये गेंदें कर रहे हैं। जी हाँ, आज विकेट में खासी वेरिएशन नज़र आ रही है। पहले दिनों के मुकाबले में कई गेंदें नीचे भी रही हैं, कई तवक्को से ज़्यादा उछल सकती हैं। विकेट कीपर के लिए भी ऐसे में मुश्किल हो जाता है इस बात का फैसला करना कि कितनी दूर खड़ा हुआ जाए। इस सात बेग कराची के विकेट कीपर, उभरते हुए क्रिकेटर उस्मान खान भी हैं लेकिन उनने ग्लव्स नहीं पहने विकेट कीपिंग के। थोड़ा सा हम हैरत ज़दा भी होते हैं, पाकिस्तान के वो इस वक्त इंटरनेशनल विकेट कीपर हैं और फर्स्ट क्लास मैच में विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कराची के लिए। बिल्कुल, और दूसरा मुमकिनात में से जो पहली तरजीह होगी या होनी चाहिए वो विकेट पे स्टे है और एक अपनी तरफ से एक रिस्पेक्टेबल ड्रॉ है जो कि जीत का रास्ता फराहम करेगा कराची को, जो कि ऑलरेडी इस मैच में आगे आगे हैं अपनी बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो खूब खेले हैं कराची के क्रिकेटर, ओवरऑल बॉलिंग, बैटिंग और इवन फील्डिंग में बड़ी जान पहचानी दिखाई है। कराची के स्क्वाड में 3 विकेट कीपर थे इस सीजन के लिए कराची ब्लूज में, जिनमें गाजी गौरी थे। उनको ज़्यादा मौके नहीं मिल सके क्योंकि 7 जो हैं इन्होंने अपना नाम खासा मोतबर किया विकेटों के पीछे और ओपनिंग करते रहे, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, गैर मामूली काम है। आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, 7 फर्स्ट क्लास मैच में ओपनिंग कर रहे हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा चलता है और शॉर्ट गेंद को यहाँ चलता किया। इस बार गेंद ज्यादा दूर नहीं थी मिड विकेट के फील्डर से, बेहतर पुल शॉट हुरैरा का। बिल्कुल कुदरती अमर था ये, बड़े अच्छे तरीके से पोजीशन में आए और एक साइट भी होती है, देखने का एक लुत्फ भी होता है। जितना इनको खेलने का आया होगा उतना हमें देखने का भी आया। काफी दूर और महफूज था, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे। ये जो हुक और पुल है हमेशा रिस्की स्ट्रोक होता है, लेकिन बाज क्रिकेटर्स को इसमें बड़ी महारत हासिल होती है। वो पुल भी अच्छी करते हैं, हुक भी अच्छी करते हैं और हुरैरा में मुझे लगता है ये खूबी बदल जाए उत्तम मौजूद है। आखिरी गेंद इस ओवर की, मुश्ताक बैकफुट पर खेला, कई बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों पर अपने बल्ले का फेस ओपन रखते हैं हुरैरा, जो मुश्किल का भी बाइस बन सकता है ऐसी विकेटों पे। 49 पर 1। ये खासा बड़ा पुल बना दिया गया है यहाँ कजाफी स्टेडियम और एफसी कॉलेज नहर के पास। अब आसानी आप स्टेडियम से निकलकर सीधा इशरा जा उतरते हैं। बड़ी सहूलत है और पाकिस्तान में ज़राए आम तरफ में बेमिसाल तरक्की हुई है। ये लाहौर है
ये सिग्नल फ्री ट्रैफिक है, इसकी फ्लो है, ट्रैफिक रवां दवा है, लोगों ने दफातर में जाना होता है, कारोबारी मराकज कदर देर से खुलते हैं, तो ये सब कुछ बगैर किसी रुकावट के जारी है। मोटरवे उनमें से एक शाहकार सड़क है जो अब सारे मुल्क को मिलाती जा रही है, तो ये भी एक सहूलत है, बल्कि एक नेमत है। ये लाहौर से सियालकोट मोटरवे का भी इजरा किया गया है। अब आसानी 50 मिनट में लाहौर से अब सियालकोट सिटी तक पहुंच सकते हैं। अब्दुल्ला, आज बड़ा इन्हिसार इन पर है सियालकोट के ये मैच बचाने का। 15 गेंदों में 8 रन इनने बनाए हैं। दिल का शॉट खेला, झुक गए इस पर अब्दुल्ला शफीक और उनने कमाल चौका पाया। खूबसूरत टाइमिंग, अपना हुनर दिखाया अब्दुल्ला ने लेग साइड में, और 50 रन भी पूरे सियालकोट के। देखिए ये एक कमाल शॉट थी, ऐसी कम कम शॉटें खेली गई हैं, वो अलग बात है कि एक लंबी तवील फहरिस्त है कामयाब बैटर्स की, और जिस तरीके से ये स्ट्रोक खेला है, नजर रखी गेंद पर और कलाई का इस्तेमाल किया, बकिया जो काम है वो पेस ने किया गेंद की। ये दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार अंदाज होता है किसी भी बैटर का, ऑन ड्राइव करना या मिड विकेट पर चौका लगाना। तो अच्छे तरीके से गेंद को देखते हुए अब्दुल्ला एक और मरतबा, एक और ऐसी गेंद थी, लेकिन इस बार सीधी मिड विकेट पर। यहाँ उस्मान खान मौजूद हैं, उनका ये शॉट ब्लॉक करने के लिए, या फिर गेंद जो है वो अगर पूरी तरह अपनी रिस्ट को रोल नहीं कर पाते या गेंद विकेट से रुक कर आती है तो उस सूरत में वो कैच जा सके। उस्मान खान जो है इन्होंने भी बड़े कम अरसे में शोहरत हासिल की है HBL PSL से वाबस्ता होने के बाद, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल गुमनाम थे। ये शेखुपुरा से बचपन में गए थे क्रिकेट खेलने के लिए कराची, और रन्स यहाँ पर 2 मिलेंगे। उमर गए थे गेंद के पीछे पीछे। आप उस्मान खान का जिक्र कर रहे थे, तो पाकिस्तान में बेसिक क्रिकेटर्स की मिसालें जा बजा हैं, और जो नौजवान ये समझते हैं कि क्रिकेट के लिए फैमिली गेम होना या पुश्तपनाही होना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस्मान और हसन अली और ऐसे लातादाद क्रिकेटर्स हैं जो कि ऐसी जगहों से उभर कर सामने आए जहाँ पर क्रिकेट का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था, ऐसे ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, ऐसी फैमिली से ताल्लुक था जिनकी ज़ाहिर है कि जो सोशली फाइनेंशियली तगड़े नहीं थे, मॉडर्स बैकग्राउंड थी। तो ये क्रिकेट की ब्यूटी है पाकिस्तान में, उभर कर सामने आए और फिर सूरज की तरह चमके दुनिया भर में। उस्मान और हसन अली उनमें से तो ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है। इनके बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे, नदीम जावेद, वो कराची में अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। अभी ये 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप हुआ है नेशनल स्टेडियम में, उसमें भी शरीक हुए। उसके बाद ये दुबई चले गए थे खलीज में, वहाँ पर वो ये शहजाद साहब जो खलीजी क्रिकेटर हैं, UAE के साथ वर्ल्ड कप खेले थे, ये उनकी सरपरस्ती में आ गए पाकिस्तान क्लब से। इनकी पुरानी वाबस्तगी है कराची में। खूबसूरत शॉट, बहुत आला। अगले कदम पर अब्दुल्ला शफीक ने ये चौका लगाया, और इस ओवर का इख्तिताम भी आगाज की तरह बाउंड्री पर किया, 59 पर 1। ये जो गेंद थी अब्दुल्ला के, जो उनका एक स्टेचर है क्रिकेट में और उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगली पड़ी गेंदों को वो बख्शते नहीं हैं, और इस बार ऐसे ही हुआ। एक बड़ी सहल और आसान गेंद थी उनके लिए, और बड़े पुरलुफ्त तरीके से उन्होंने इसको ड्राइव किया और शानदार बाउंड्री हासिल की। मुश्ताक को हटाया गया है। उन्होंने इससे पहले तकरीबन 45 मिनट तक बॉलिंग की, और उनकी जगह मोहम्मद उमर लेंगे फॉरएंड से। 2 ओवर्स में 6 रन दिए। कल शाम इस मैच में अच्छा स्पेल किया था। इन्होंने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की थी उमर ने।
अच्छे मीडियम फास्ट बॉलर हैं, ये यूं कहना चाहिए फास्ट मीडियम। मोहम्मद उमर अच्छी लाइन और लेंथ है, उम्दा बैटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ जो इस फाइनल में हमने ख़ास तौर पर देखी है वो ये है कि बॉलर्स का अनथक लंबे लंबे स्पेल करना, थकावट का एहसास कम रहा, दिलजमई के साथ कुव्वत के साथ सरपट दौड़ते रहे और लंबे लंबे स्पेल्स किए। अभी तो आगाज़ है, लगता है कि जिस तरीके से बैटिंग करेंगे दोनों बैटर, ख़ासतौर पे अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक, तो इनको बॉलिंग के वसी वसाइल की ज़रूरत होगी कराची को। लेकिन एक जज्बा है, एक तमानियत है कि दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट, इन्होंने सब कुछ अपने लिए कर लिया है जो कि जीत के लिए मुमकिन तौर पर हो सकता था। उमर को अपना जो लाइन ऑफ अटैक है वो इस इनिंग्स और दिन की मुनासबत से अभी तब्दील कर सकते हैं, ज्यादा स्टंप्स की तरफ आ सकते हैं, कि वो पांचवें स्टंप्स से बाहर निकालते रहे। ये जो लाइन ऑफ अटैक था ये पहली इनिंग्स के लिए ज्यादा कारगर था, क्योंकि आज एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होने के ज्यादा इम्कानात हैं, विकेट में ज्यादा जो है वो वेयर एंड टियर है, तो उसका फायदा उसी सूरत में उठाएंगे अगर आप बल्लेबाजों के पैड्स की तरफ आएंगे। बिल्कुल, ये गेंद जो भी की गई उमर की तरफ से, ये तासुर देती है कि ये विकेट कोई डेड नहीं है, इसमें हम वक्त मौके मौजूद हैं। स्पिनर्स ने भी, हमने देखा कि हमजा नजर ने अच्छी बॉलिंग की, फाइवर लगाया, फिर उसामा मीर ने, और अब उमर नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद को अंदर बाहर कर रहे हैं। और ये देखिए इस बार थोड़ा चूक गए और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब अच्छे तरीके से खेला है, बिल्कुल महफूज, और ज़मीन के साथ लगता हुआ ये स्ट्रोक 4 रन के लिए जाके बाउंड्री लाइन को टकरा चुका है। तो एक अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा कलाई का इस्तेमाल किया, अच्छा पिक किया, बर वक्त गेंद की लेंथ को भांपा और 4 रन के लिए खेल दिया हुरैरा ने। आउट स्विंग करने की कोशिश की थी स्टंप्स की लाइन से, ख्याल अच्छा था लेकिन उसकी अदायगी उतनी अच्छी नहीं थी। अलबत्ता हुरैरा ने शॉट की अच्छी अदायगी की, पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आए, अच्छा गैप ढूंढा स्क्वायर लेग पर। इस शॉट से जाहिर होता है कि बैटिंग और रन्स मौजूद हैं इस विकेट पर। आज आखिरी दिन भी अगर आप सर झुकाकर खेलते हैं और गेंदों के अपने पाले में आने का इंतजार करते हैं। तारिक, जो आपने देखा अच्छे अच्छे स्ट्रोक लग रहे हैं, यानी ऑन ड्राइव भी हो रही है, मिड विकेट पर भी एक ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव्स हो रही हैं, फ्लिक अच्छी हो रही हैं। दैट शोज कि ये विकेट जो है कंड्यूसिव है फॉर क्रिकेट, जिसमें पेसर्स के लिए मदद मौजूद है, स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है, और बैटर्स ने तो लातादाद रन बनाए हैं, सेंचुरियां स्कोर हुई हैं। चौदह ओवर्स के बाद 63 पर एक सियालकोट। $533 का हदफ है सियालकोट के लिए आज आखिरी दिन, और अभी तक उनकी एक विकेट गिरी है। अजान उवैस एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं, इस वक्त अब्दुल्ला और हुरैरा विकेट पर हैं। और ये मैच देखने के लिए बहुत से जो लोग हैं वो स्टेडियम के भी रुख करते हैं जो जो दिन आगे बढ़ता है। अलीम डार यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे, पाकिस्तान के सबसे मशहूर अंपायर, जहाँ बहुत करीब से देख रहे हैं इस फाइनल को, साइट स्क्रीन के बराबर से। देखिए बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं उनकी आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। आपने इस फाइनल मैच का जिक्र किया, तो तारिक देखिए जब ये क्रिकेट होती है तो इसमें बड़ी चीज़ें फ्लरिश करते हैं। आई एम टोल्ड के जहाँ के जो गिरदनवा के अच्छे अच्छे होटल्स हैं वो ओवर बुकड हैं, टिकट बोर्ड के लोग भी आते जाते रहते हैं, दीगर लोग भी आते हैं। तो बहरहाल ये जो बड़े लोगों का आना जाना है उसमें अलीम डार एक चमकता दमकता सितारा हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, और ये आईसीसी जैसी जो एक ग्लोबल पोजीशन है उसमें एलीट मेंबर के जो ग्रुप था उसके मेंबर रहे, और गला कदर खदमात हैं इनकी अंपायरिंग के शोबे में। यकीनन ये एक रोल मॉडल हैं फॉर ऑल द अंपायर्स टू कम। जहाँ अलीम डार जिन 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचों में
अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, वर्ल्ड कप फाइनल सुपरवाइज किए 2007 और 2011 का। अजान वैस एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने पर आज थोड़ा सा नाला लगे थे। तारिक, आप जिक्र कर रहे थे हलीम डार का, ये फिलंथ्रोपी भी है, इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिलसिले में भी एक बहुत बड़ा इदारा कायम कर रखा है, फिर एक क्लब भी चलाते हैं। और जब इस गेंद के बाद बात करेंगे थोड़ी और दिफाई स्ट्रोक, लेकिन अच्छा टाइम किया है, सिर्फ गाइड किया मैं कहूँगा इस बार। एक रन बनाया, दूसरा बनाएंगे, फील्डर गेंद के पीछे गए और जब तक वो गेंद को फील्ड करते मेरे ख्याल में उन्होंने गेंद को जाने दिया, उसको दी, कोई डाइव नहीं की, कोई गैर मामूली काबिज नहीं की, बड़ा शानदार चौका। यह इस शॉट पर इनको कई बार मुश्किल पेश आई है इंटरनेशनल क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक को, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दिए और अच्छा खेला स्क्वायर के सामने। उम्दा ड्राइव था, अच्छा स्क्वायर ड्राइव 4 रन के लिए। अपने रन ज्यादातर बाउंड्रीज में बना रहे हैं अब्दुल्ला। अलीम डार जो है थैलिस्मिया के मरीजों के लिए इन दिनों बड़ी अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी जो अलीम डार फाउंडेशन है वो हम वक्त इस सिलसिले में काम करती है, खून के अहतियात जमा करना, फिर उन्हें मुस्तहिक मरीजों तक पहुंचाना और उन्हें जो है एक नई जिंदगी देना। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। यकीनन रिटायरमेंट के बाद या अमली जो एक ज़िंदगी है उसके बाद कुछ फिल्मथ्रोपी का काम करना चाहिए, और इस सिलसिले में पेश रहे हैं अलीम डार, जिनका आपने जिक्र किया अभी। और ये एक मुश्किल वक्त था बैटर के लिए, इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियात के बारे में बताना चाहिए जो लोग इस मुकाम पर हैं, जब उनको मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, फिर वो कुछ सोसाइटी को दें, मुआशरे को दें। अलीम डार एक इस सिलसिले में दरख्शंदा मिसाल हैं, नेक दिल हैं, और वी हैव नेवर हेard एनीथिंग जो इंडिफरेंट हो उनके हवाले से। दिलपसंद शख्सियत हैं, बड़े एफेबल हैं, अच्छा मेल जोल रखते हैं, और बड़ी अच्छी मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के बाद भी इनकी मसरूफियात हैं, क्रिकेट बोर्ड से भी मुंसलिक हैं, सिलेक्टर भी हैं। तो बाय ऑल मीन ही इज़ ए मैन फॉर मैनी जॉब्स, ये मैन फॉर द जॉब। आप देख रहे हैं जैसे आपने बताया कि थैलेसीमिया के हवाले से एक बड़ा इदारा है और बहुत से लोगों की इन्होंने जानें बचाई होंगी। इस ओवर में 4 रन बने हैं, आखिरी गेंद आने को है साकिब की। ये ज्यादा बेहतर अंदाज साहब पूरी तरह काबू में दिखाई दिए अब्दुल्ला। पिछली गेंद के बरक्स 67 पर 1। दो स्लिप्स गली, लेकिन लेग के बाहर निकल गए। उमर कराची के बॉलर्स जो हैं, ये अच्छा लग रहा है कि विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं पर इक्तिफा नहीं कर रहे। विकेट लेना चाहते हैं, इस मैच को जीतने के ख्वाह हैं, ये देखकर अच्छा लगा होगा। आज सुबह जो इनके कप्तान हैं, जब ये जमा हुए होंगे ड्रेसिंग रूम में, तो उन्होंने पूछा होगा यकीनी तौर पर बॉलर्स से, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले 1 रन के लिए। अब वहां पर खिलाड़ी को भेज दिया गया है कि क्या वो इस मैच को जीतने के लिए पूरी कुव्वत सर्व करना चाहते हैं या फिर उनके इरादे मुख्तलिफ हैं। तो क्योंकि ये तीनों नौजवान हैं, इन कराची के बॉलर्स साकिब, उमर, तो इन्होंने हाथ उठाया होगा कि हम यकीनी तौर पर जीत के लिए जाएंगे, इसलिए वो कोशिश और काविश नजर आई है। तारिक, मुझे लगता है कि जो पहली इनिंग का एक सबकत थी
कराची को उसने सबत कर दी वो मोहर जो कि जीत के हवाले से हो सकती है। बड़ा मुश्किल काम है सियालकोट के लिए। एक दिन में किसी भी फर्स्ट क्लास मैच में 533 रन होते नहीं, अगरचे कुछ रन बना लिए गुस्सा शब इन्होंने गुस्सा रात, लेकिन अभी भी ऐसा मुश्किल काम है कि इसमें बेहतर ये होगा कि अपने आप को अप्लाई करें। एक वो जो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है कि कोशिश करते रहें, रन्स बनाते रहें, स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, गाहे गाहे चौके लगाते रहें, और जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए एक तफरी फराहम करें। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, ये बड़े अच्छे बैटर हैं, अच्छी स्ट्रोक मेकिंग करते हैं, और इनकी ड्राइव्स और कट्स जो हैं वो एक बड़ी शानदार तफरी फराहम करते हैं। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, क्रिकेट में जान मौजूद है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगरचे ये दरामदशुदा मट्टी है, सॉइल है फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ के मुकाम से, और इस पर गेंद ऊपर नीचे रहती है। लगता है बाजू का यही है जब बैटर स्ट्रोक खेलते हैं कि ये दमखम वाली विकेट है, इसमें काफ़ी उछाल भी है, इसमें काफ़ी स्ट्रोक मेकिंग के लिए, कट और स्क्वायर कट के लिए इम्कानात हम वक्त मौजूद हैं और रहेंगे। मुझे लगता है आज 5वां दिन है, तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही पिच की भी। एक रन बड़े इत्मीनान से अब्दुल्ला शफीक ने बनाया। इस तरह के पिचेस पर जहाँ पर बाउंस हो, अब्दुल्ला शफीक कुछ ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। ट्रू पिचेस पर ये ज़्यादा बेहतर खेल लेते हैं। अभी तक इनकी बैटिंग के बारे में ये मुशाहिदा है। जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, मेलबर्न में, और उससे पहले पर्थ में भी, ओप्टस स्टेडियम की मुश्किल विकेट पर, और फिर एमसीजी पर नेस्ट सेंचुरी बनाई थी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भी। सिडनी में ये जल्दी आउट हो गए दोनों इनिंग्स में, वो विकेट मुख्तलिफ थी, ऑस्ट्रेलिया की दीगर तमाम विकेटों से मुख्तलिफ है एससीजी की जो पिच है। लेकिन अब्दुल्ला जहाँ विकेट में ट्रू बाउंस होगा वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। फ्लिक किया अच्छे तरीके से, कम से कम एक रन बनेगा, दूसरा भी बनाएंगे। अच्छी चाबक दस्ती दिखाना चाहते थे लेकिन मने कर दिया उन्हें, हुरैरा ने कि आप वापस लौट जाएंगे, इनफील्डर के हाथ में आ चुकी है। आप जिक्र कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक का। बहरहाल इस दौरान अंपायर ने ओवर के खात्मे का ऐलान किया है। 16 ओवर्स के बाद सियालकोट 70 एक विकेट के नुकसान पर। सत्तर पर एक अच्छी क्रिकेट हमने देखी है खुशगवार माहौल में। खासी रोशन ताबा सुबह है लाहौर शहर में, और ये दोनों जो बैट्समैन हैं ये अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं। खासी फुल लेंथ थी, एक रन का इजाफा। बैकफुट पर रखने के लिए हुरैरा को स्क्वायर लेग पे साकिब खान मौजूद हैं। खासा डीप मुश्किल होता है चौथी इनिंग्स में रन्स बनाना हमेशा से ही, लेकिन नामुमकिन नहीं। 536 रन जो हैं ये वेस्ट जोन ने बनाए हुए हैं साउथ जोन के खिलाफ राजीव गांधी स्टेडियम में, हमसाया मुल्क में। ये हैदराबाद में राजीव गांधी स्टेडियम 2009 में ये रिकॉर्ड बना था। सेंट्रल प्रोविंस जो है उसका दूसरा रिकॉर्ड है। तो अगर ये जो 533 रन तक सियालकोट की टीम जिसके पहुंचने का इम्कान बहुत कम है, अगर जाती है तो दूसरा बड़ा स्कोर होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख का। ये जो एक हाई परसेंटेज पर ओवर से रन्स करने हैं, ये आजकल की क्रिकेट में ज़रा मुमकिन है, क्योंकि जिस दौर में ये 2009-2010 अभी T20 का आगाज़ ही हुआ था 2005-6 में,
अब तो अब्दुल्ला शफीक हो या हुरैरा हो, ये बल्ले को घुमाना जानते हैं। मुमकिनात में से है, प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा। लेकिन देखिए कितना मुश्किल होता है हम्म, चौथी इनिंग्स में रन बनाना के 1896 में हम्म, जो 507 रन बने थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं एमसीसी के खिलाफ लॉर्ड्स पर, वो अभी भी तीसरे नंबर पर है। वो स्कोर बड़े बल्लों और तेज आउटफील्ड अच्छी पिचेस के ज़माने आने के बाद भी 507 रन का जो इंग्लैंड में सबसे बड़ा चौथी इनिंग्स का अभी भी यही स्कोर है कैम्ब्रिज का। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने क्वींसलैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में 1991-92 में रन्स बनाए थे। हैरिल लीमन वगैरह जिस दौर में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए उभर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में कभी 500 रन नहीं बने चौथी इनिंग्स में। किसी टीम ने आज तक 500 का हिस्सा अबूर नहीं किया। ये एक ज़बरदस्त कशमकश और जद्दोजहद की इसकी इसकी ज़रूरत होती है, और बैटर्स को स्ट्राइक को रोटेट करना होता है, करीब जाना होता है। और आप ये भी जानते हैं, ऐसी सूरत में जब रोज़ाना औसतन 72-73 ओवर हो रहे हैं, तो जो काम है ज़रा और भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए जिस तरीके से इसको मोड़ने की कोशिश की थी, गेंद कलाई की मदद से खेले, लेकिन ये कमर से ऊपर आ चुकी हुई थी गेंद। तो बाउंस, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, हम वक्त मौजूद है, पहले खेलने गए फिर छोड़ दिया, अच्छी ऊंचाई पर ये गेंद गई। तो तवातर के साथ एक अच्छा बाउंस, ये लो बाउंस विकेट नहीं है। एट टाइम्स हमने देखा कुछ गेंदें नीचे रही, कराची लेकिन के सबसे ज्यादा आपको किससे मुतासिर किया है? किस फास्ट बॉलर ने इस मैच में कराची की जानिब से? देखिए दे ऑल हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि आप मुश्ताक को देख लें, उमर ने अभी जो दूसरे एंड से अपना बॉलिंग जारी रखे हुए हैं, दे बोल्ड विद गुड लेंथ। और कराची बैटर्स के लिए ज़्यादा मारूफ है, इसकी ज़्यादा खदमात हैं इस शहर की, लेकिन बॉलर्स भी दराज कद हैं, अच्छी बात है, अच्छे स्टैमिना से गेंदें कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर टर्फ विकेट ज़्यादा हैं, यहाँ पर ज़्यादा सहूलत होनी चाहिए, और तारीख के अतबार से भी इस तनाज़र में भी ये आगे आगे रहे हैं फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने के हवाले से। लेकिन अब सिंध और कराची से भी बॉलर्स उभर कर सामने आ रहे हैं। सियालकोट 73 एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। ड्रिंक्स ब्रेक का ऐलान भी अंपायर्स की जानिब से कर दिया गया है।
मोहम्मद उमर फिर से खासी मदद इनको मिलती रही है तमाम बॉलर्स में। दोनों टीमों के अगर बॉलर्स का या सभी पेसर्स का मवाजना करते हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है वो उमर को मिली है। ज़्यादा वक्त तक इनकी गेंद जो है वो मूव होती रही है। ये भी एक हुनर है, क्योंकि सीम बॉलिंग जो है वो अक्सर आप गेंद या विकेट के मुनासबत से वो इस्तेमाल हो जाती, लेकिन जो स्विंग है वो एक ख़ास हुनर है। इसका ताल्लुक आपकी कलाई से होता है, उसकी लचक से, और वो हुनर है इनके पास उमर के। तारीख 5 डे क्रिकेटर्स में बड़ी चीज़ों का इम्तिहान होता है। जो सबकत 70 और रन की हासिल कर ली पहली इनिंग में कराची ने, वो अब काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही है फॉर सियालकोट। ये एक नफसियाती ज़ाहिर बर्तरी भी होती है किसी टीम को कि आप पहली इनिंग की में चाहे कम रन की हो, ये तो 74 रन हैं, तो इसने रास्ता हमवार किया। ये 5 रोज़ा क्रिकेट है और इसमें बड़ा अमल दखल होता है पहली इनिंग की परफॉर्मेंस का। आप जानते हैं कि ये कड़ा इम्तिहान होता है आपके सब्र का, आपकी एप्लीकेशन का, तवज्जो बढ़ जाती है क्योंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं। इट्स नॉट वाइट बॉल क्रिकेट जिसमें सब कुछ जल्दी जल्दी होता है या वो क्विक क्रिकेट होती है। नो, इसमें आपको सोचना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, दबाव में आना पड़ता है, उससे निकलना पड़ता है, फिर आप हावी भी हो जाते हैं। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर है, बड़ी अच्छी बात है। दुरुस्त समत में कदम है कि ये मैचेस अब ब्रॉडकास्ट होते हैं, स्पॉन्सर्स आर कमिंग इन, और दुनिया भर में ये देखे जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर लोग फिर अपना नुक्ता नज़र भी पेश करते हैं किसी वीक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुल शॉट खेला, इसको अल्लाह के फील्डर नहीं देख सके, और उनका ख्याल था कि वाइड मिडॉन से खिलाड़ी इसे रोकने में कामयाब होंगे, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं था मुश्ताक के पास। 4 रन का और इजाफा। दोनों बल्लेबाज जो हैं वो अब कॉल से बाहर आ रहे हैं और अपने शॉट्स जो हैं तवातुर से खेल रहे हैं। इस बार हुरैरा थे, कुछ कुछ यूनुस खान की तरह लगते हैं जब पुल शॉट खेलते हैं हुरैरा। हाँ, कुछ ऐसा अंदाज़ा होता है, वो नज़रें अपने सामने कर लेते हैं, साइड वे जाते नहीं हैं। यूनुस खान की अपनी एक क्लास ही, इनका इनका अपना हुनर है, लेकिन ये तासुब बिल्कुल ऐसा उभरा कि ये यूनुस खान का अंदाज़ है। और यूनुस खान अगली गेंद पर बीट नहीं होते थे, वो फिर छा जाते थे, हावी हो जाते थे, और बहुत कम होता था यूनुस खान के हवाले से आपने जिक्र किया है कि वो जो एक सॉलिड इन डिफेंस, एग्रेसिव इन अटैक की सूरत हाल है, और इतने बड़े वो कैरेक्टर थे। मेरे ख्याल में उनका बार बार तस्करा होना चाहिए, हवाले दिए जाने चाहिए। बड़ी उन्होंने हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है उसको बामे अरूज तक पहुंचाया, उसमें मदद फराहम की। पीछे नहीं है हुरैरा, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत काम करना होगा, बड़ा कंट्रीब्यूट करना होगा क्रिकेट को हुरैरा, अगर यूनुस खान के पाए के बैटर बनना चाहते हैं। ओह कमाल, बेहतरीन गेंद थी, पैड पर लगी, और विकेट कीपर ने कलेक्शन के बाद अपील की, लेकिन दोनों काउंट्स पर नॉट आउट है। बाल बाल बचे 18 के बाद 79 पर 1। अब्दुल्ला क्रॉस द लाइन खेले। ओ नहीं, ये तो दूसरा वो, ये हुरैरा का ये वो एक अंदाज था। बहरहाल बुरे तरीके से बीट हुए, और इस तरह 79 पर 1, जबकि 18 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। धूप चमकदार है इस वक्त पंजाब के दारुल हुकूमत में, और बहुत अच्छा मौसम। उसमें गेंद जो है वो इतना उछलते हुए मैंने नहीं कभी देखी। 5वें दिन की विकेट पर लाहौर में कहीं भी किसी भी मैदान पर जहां पर विकेट कीपर ने ये कलेक्शन की है,
लाहौर में बाज़ विकेटों में यहाँ बाउंस होता है मॉडल टाउन की पिचेस में, लेकिन इतना बिल्कुल नहीं। इन दिनों गनी क्लास की जो विकेट है वहाँ पर बाउंस होता है, लेकिन ये बहुत गैर मामूली बाउंस साहब। तारिक, जो आप बात कर रहे थे बाउंस की, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो पिच टेक्नोलॉजी है, जो उसकी प्रिपरेशन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और ये वो रिप्ले है स्टंप से बाहर गेंद, ये अच्छा अंदाज था गेंद को देखने का और फिर मिलाकर जो छोड़ने का फैसला भी था। ये पिक एंड चूज क्रिकेट में और ख़ासतौर पे जो 5 डे क्रिकेट है उसमें इसकी बड़ी अहमियत होती है। आप बहुत सी मुश्किलात से बच जाते हैं, आप बॉलर को फ्रस्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, ये मैसेज देते हैं, कभी इनकरेज मत करें बॉलर को, खासतौर पे पेसर्स को। इस विकेट पर जहाँ पर इतना कुछ है बॉलर के लिए, अगर मैच फैसला कुन नहीं हो पाता तो इसके लिए ये जो दोनों टीमें हैं, जाहिर है ये खिलाड़ी खुद को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि ऐसी विकेट पर अगर आपके बॉलर्स जो हैं वो नतीजा सामने नहीं ला पाते, या जो कप्तान हैं उनकी सोच मुख्तलिफ है, तो फिर ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो ऐसी विकेट पर नतीजा आना चाहिए था। ये आपने बड़ी गहरी बात की है, इसमें इस गेंद के बाद बात करेंगे। अब विकेट को आप मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसमें जो एंडेवर्स हैं, जो कोशिशें हैं, वो बैटर्स की बॉलर्स की वो बड़ी अहम होती हैं। किस बाई की आप कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को अप्लाई किया है। आया यू वेंट फॉर द लूज बॉल, आपने लूज बॉल का सही मसरफ किया है, आपने बुरी गेंदों को पनिश किया है और बॉलर्स ने सरदुल कोशिश की है। ये विकेट एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो आप एक डिसाइसिव मैच की बात कर रहे हैं, इसमें जो एफर्ट्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्रेसिव क्रिकेट भी आप 5 डे क्रिकेट में खेल सकते हैं। आप अपनी बॉलिंग के जरिए ऐसी गेंदें करें जिससे विकेटें गिरें, और इसी तरीके से बैटर्स को रन्स बनाने होते हैं। उम्दा शॉट खेला, बैकफुट पंच, एक रन मोहम्मद हुरैरा को। यहाँ पाकिस्तान में भी चौथी इनिंग्स में रन्स बने, 441 रन फैसलाबाद ने बनाए थे जिनाह स्टेडियम में। जिनाह स्टेडियम सियालकोट जो अब एक ग्राउंड रह गया है। सिंध ने 425 रन बनाए पीआईए के खिलाफ हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में। फिर मुल्तान ने 409 रन बनाए थे साहिवाल में। और लाहौर में सबसे बड़ा जो चौथी इनिंग का स्कोर है वो 405 है वापडा के खिलाफ 1984 में। शाहिद अनवर ने सेंचुरी बनाई थी उस मैच में। ये जो अभी आपने 3 वेन्यूज का जिक्र किया, इसमें से 3 तो मतरूक शुदा हैं, बिस्किट फैक्ट्री और फिर इसके अलावा हैदराबाद, ये ऐसी जगह है। और तीसरा एक और सेंटर है जहाँ पर सियालकोट की बात कर रहे थे हम, बिस्किट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, न्याज स्टेडियम की बात कर रही हैं। अब खबरें आ रही हैं कि न्याज स्टेडियम को भी पीसीबी अहमियत दे रहा है, और देयर आर फ्यू अथेंटिक एंड अथेंटिक खबरें हैं कि यहाँ पर पीएसएल के मैचेस भी हो सकते हैं। तो दैट्स अ गुड साइन कि ये दोबारा अब आबाद होने के लिए जा रहे हैं। यह नेशनल बैंक ने कजाफी स्टेडियम में हबीब बैंक के खिलाफ 1990 में 402 रन बनाए थे। उस दौर में नेशनल बैंक के लिए शाहिद अनवर खेलते थे उस टीम में। इसके अलावा ताहिर शाह हुआ करते थे उनकी बैटिंग लाइनअप का हिस्सा। ताहिर शाह मरहूम। और नेशनल बैंक के सामने ये हबीब बैंक का अच्छा बॉलिंग अटैक भी था। नवीद अंजुम थे, अकरम रजा, नदीम गौरी। उस दौर में बहुत मजबूत टीम थी हबीब बैंक की, जिसके खिलाफ 400 रन यहाँ बने थे। ताहिर शाह दरअसल 2 हैं लाहौर में। एक ताहिर शाह जो अंपायरिंग भी करते रहे, और एक ताहिर शाह जो कोच हैं हमारे साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सर्विस इंडस्ट्रीज के। बिल्कुल, वो मैनेजर भी रहे लाहौर के, फर्स्ट क्लास भी खेले। और दूसरे ताहिर शाह वो हैं जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। बाकमाल क्रिकेटर थे तारिक सईद, बड़ी ऊंचे ऊंचे छक्के लगाते थे और किसी को बख्शते नहीं थे। एक करेक्टर थे वो। और वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि वो दौरान अंपायरिंग बाज़ कोचिंग भी कर दिया करते थे। तो शफीक अहमद साहब ने वहाँ ने कहा कि भाई तुम्हारे बारे में ये बात खबर पहुंची है,
तो फरमाने लगे कि फिर मैं देखता रहा। जहाँ ताहिर शाह बहुत ही आला करेक्टर थे और खेल के बारे में बहुत संजीदा थे, बेपनाह उनका नॉलेज था क्रिकेट के खेल का, उनका बहुत गहरा मुताला था। और हमारे जो ताहिर शाह जो कोच हैं उनके बारे में भी यही बात हम बिल्कुल कर सकते हैं। उनने भी कई नामवर क्रिकेटर्स को सामने लाने में उनका किरदार रहा है। मिसबाह-उल हक उसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ दी जाती है, और भी बेपनाह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की जो ज़िंदगियाँ हैं और उनकी खुशहाली में उनका किरदार रहा। रियली अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम ताहिर शाह। इनको एमसीबी वाले कहा जाता है, एक नेशनल बैंक वाले। तो जो आप उनकी क्लब है शाहीन क्लब, बड़ी खदमत की है उन्होंने और अभी तक कर रहे हैं। तबसरा नगारी भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। तो वो मुकम्मल तौर पर एक पैकेज है, एक साबिक क्रिकेटर होने के नाते, कोचिंग, बोलना, सिखलाना। और वो जो ताहिर शाह जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जो नेशनल बैंक वाले हैं, वो इस गेंद के बाद बात करेंगे। अब अच्छी गेंद थी, ये टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली और रिसीव हो गया बैटर। वो चाय के बड़े दौर चलाते थे जब गवर्नमेंट कॉलेज में हमसे सीनियर थे, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे। और वो बाज़ औक़ात लोगों को मौका फराहम करते थे कि वो उनके साथ लाइट मोमेंट शेयर्स करें। क्या इस गेंद को सही तरीके से जो है वो नहीं खेल सके, बाल बाल बचे हैं। देखिए बल्ला जो है आखिर में रोका ज़रूर, लेकिन तब तक बीट हो गए थे और उनकी आंख से मसला दरपेश है। मोहम्मद हुरैरा का आज गेंद ऐसा नज़र तो जर्रा अच्छी है। आई है इनको, आज गेंद नज़र तो अच्छी आई है। अब वो बाज़ औक़ात कुछ ज़र्रात फ़िज़ा में महलिक होते हैं और वो आँख में चले जाते हैं। अब ये वो तरीक़ाकार है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ठंडा पानी जो है उसके छींटे लिए जाएँ, और वो भी जो गर्द है या कोई ज़र्रा है जो फ़िज़ा में बड़ा बारीक था, वो इनकी आँख में चला गया है। और अब देखा जा रहा है कि इसको किस तरीके से इनको ये राहत दी जाए। ये कोई आसान काम नहीं होता, वक्ती तौर पर तकलीफ भी होती है, और खेल थोड़ी देर के लिए रोका गया है। अंपायर भी ये सुपरवाइज कर। हसनैन खान है, ये हसनैन जो हेट में ये ग्रेड 2 में इनकी बैटिंग की बड़ी शोहरत रही है। बड़े स्टाइलिश बाएं हाथ के बैट्समैन हैं सियालकोट के, और ये भी जल्दी आप इनको बड़ा नाम पैदा करते हुए देखेंगे क्रिकेट के हलकों में। अभी पानी पिलाने आए थे, इब्तिदा में यही होता है, आप पानी इसी पिलाने में का ही फरीजा आपको इसी करना पड़ता है। मैदान में अजहर अली जो है वो बॉल पिकर थे। इसी मैदान में ज़ाहिर है कि फिर और नामी गामी क्रिकेटर जो हैं वो ये दूसरे जो जूनियर क्रिकेटर काम करते हैं वो करते रहे हैं। ये जो शोर गुगा बुलंद हुआ है, ये आमद है सलमान बट की और अली यूनुस की। अब वो अपनी जो धुआंधार जो कमेंट्री है और जो कमेंट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आइए जनाब। Hurrah and Abdullah now look pretty much settled. Sialkot 81 for 1. A partnership has been put up. In decent time, it's only the 20th over and it's 81 for 1. But not at a rate which is required to win the game. So obviously they're just looking to keep batting and not lose the game in entirety. And Muhammad Umar approaches, bowls it full. He's looked committed. Mohammad Herrera has scored 39 runs. But Abdullah, on the other hand, he's hit some quality boundaries in his 26. Herrera, although was lucky early on
Early scares, few edges not carrying, an inside edge going through. But what he's done is he's been very committed. He's been very focused, Herrera. He's valuing this inning because he understands that this is the last of the season, and whatever needs to be done, this is the inning for him. Both of them, in fact, Abdullah and Herrera. Of course, there is President Cup starting, One Day Cup starting in few days' time, and then the 4-day for President Cup. Taken! That's a beautiful catch by Sadbek behind the stumps. It's Umar who strikes, and Herrera, we've been talking about his caliber, he goes. And that's a good wicket to have, Umar. He's been very consistent in his line, in his length. Finally, he's been rewarded for his excellent bowling. There's no problem at this end. Again, that area, consistency, again, poking at it, pushing at it. And an excellent catch by Saad Beg behind the stumps. Yeah, Herrera paying the price for having an open-faced bat while defending. This is what he was doing on the back foot. He's done the same on the front foot. And finally, he's paid the price, going out for 39. We'll come back, have a look at his replay, and tell the youngsters what went wrong. Mohammad Herrera, being an established cricketer, a test cricketer, being through different programs. Just have a look at his bat. The face is open. While defending a ball, you need to present a full face of a straight bat. Just have a look at this. We need to see that replay a touch slower and from a decent angle for the viewers to know what we are talking about. Just have a look at this now. Look at the bat angle. Yeah, he's just opened up his bat as if he's going to play towards the slip, and that's exactly where the ball has gone. Yeah, and this is exactly the same with Abdullah Shafiq as well. When he defends, his bat face is also a touch open. But Salman, both batters that you just pointed out, they've got enough experience now. We'll talk about it. Is there something that cannot be changed with conditions, or it's something that is natural and they can't help it? I mean, they both understand that the ball is swinging around, seaming around, but looking at the game and the conditions, can't you change your approach? Yeah, I mean, they're good enough. They're international cricketers, and if they see themselves batting in highlights or in recordings, they can see how their bat finishes when they're defending on the back foot to a ball which is just around the off-stump channel and maybe on the fourth stump, and also defending on the front foot. Both times their bat faces are open, and any international bowler with a decent mind will pick it up, and that is where he'll want to be. So have a look at this. This one was played deliberately over there, but when he's defending, you'll get plenty of evidence that the bat face is always open. And this isn't something which cannot be corrected, but he has to first realize. Have a look at this defense. Because you normally don't get such conditions at club level or other domestic places that they play cricket at. It becomes their habit also, maybe, just to go with this angle. Yeah, that is why you practice all your life, because you keep on adjusting. You keep on relating your game more to the conditions. Wherever your next assignment is, you start to prepare for that. And what is preparation? This is preparation. That you make those little adjustments which make you vulnerable otherwise. So top players look after their these adjustments that are required for being consistent at top level.
Certainly some very useful comments and tips for the youngsters from Salman Butt, the former captain, here in the commentary box with us. And it's very important that they understand the requirement. I mean, here you're looking for a draw maximum and then still having that open face, because you associate that open face when you're looking for runs. You're looking to find the gaps, but once you're defending, the closed blade is what is required, and you adjust according to the conditions and the ground you're playing at. Another left-hander, Rahman at the crease, and straight away Mushtaq Olro decides to go around the wicket. He gets the ball to move into the left-hander, and with this angle, it just increases the swing and the angle. And this is how Herrera went, playing touch away from the body. The leg did not exactly move towards the ball as much as was required. In fact, he could have left that ball as well. So whenever you are going to go too far away from the off stump to defend, naturally your bat face is also going to stay open. So this one is just guided through point, boundary for Rahman to get off the mark. With the boundary, 21 gone, 86 for 2. With the newly built Gaddafi Stadium, gives spectators a great view from every seat. You see that you'll get the same view. The action is now more clearer, more close for the audience. Ali, we spoke about earlier the chases, the highest chases in the final fourth innings, and 444 happens to be the biggest chase in the fourth innings in Quaid-e-Azam Trophy. And it was a game between Sialkot region and Faisalabad region, and Faisalabad was the team that scored that 444 in the last innings. Just have a look at this 441 Faisalabad Wolves against Sialkot Stallions. And Faisal Khan, the assistant coach of Sialkot region now, was then the captain of Sialkot side, who were defending these runs. So Faisalabad got to 441. So he has that bit of experience how this was done, but maybe these runs of 531 are a bit too much, and that too in a season at the time of the year when you do not get the full quota of overs for a day in. And with fast bowlers operating, there's not a chance for that to happen. Absolutely. And that era that it was scored, maybe different conditions, different ball being used, different stadium that one was. Mr. Aleem Dar having a close look at this final. Yeah, he's currently one of the selectors, and he's all his life had the most closest of looks at cricketers, being the umpire, officiating games, and he's done a great job as the umpire for international elite panels. That is again high. Again high. Maybe the umpire has signaled an inside edge as well. So he's lucky that the ball didn't carry to the slips or the gully. Talk about the pitch. It still has something to offer. Yeah. Inside edge on the pads.
This is sort of similar to how Azanavez got out in the first innings. Inside edge on the pads and then a fielder from the slips running and making that catch. Oh, this one climbed up. Just a touch short. And it kept going. Too close to cut, perhaps. Abdullah Shafiq instinctively going for a stroke on the back foot, but this strip is a lot different in behavior from the local pitches. Yeah, that stroke may have been possible. I think he's lucky not to get an outside edge to the keeper. Keepers enjoy such pitches because they get to keep the ball at very decent high, waist high and above, unlike on the slow tracks where they always have to be very close to the ground. The slip fielders need to move forward and stay low. Abdullah Shafiq not happy with something in front of the screen, maybe. Yeah, good way to end the over. Good defense. 86 for 2. That's a good shot, but only for a couple of runs from Rahman, who surely is looking to be positive, looking for runs. Scored 6 runs of 3 deliveries, so maybe the plan is that he wants to go and express himself. This is the last opportunity here in this year's Quaid-e-Azam trophy. Some spectators here and there. And as far as Rahman is concerned, it's an opportunity to bat, get some runs under his belt, maybe secure his place, and also show some of his skill to the selectors. It's after all a final on TV. And this one is flicked on the pads and a certain boundary. On the pads, left-handers, almost every one of them plays elegantly. And this was no short of elegance. Yes, he's looking good. He's looking to be positive. Anything loose, anything on his legs, he's putting them away. And that's exactly the example. It was on his legs, asking for trouble. And Rahman obliging, because he's got that positive mindset. Since the time that he has arrived, he's looking very good, very positive, looking for runs. And probably that's the right way to do. That's the right approach. If it's there, needs to go to the boundary. It's that simple. That's the intent. That's the positivity. It's not easy when you're not hunting down a target. It's never easy when the motivation is hard to find. And at the moment, Sialkot batters are going through those moments.
when they really don't see the target in sight, and all they have to do is just keep batting. Maybe take it as good batting practice, because it doesn't seem as if they're after anything. And on the other end, the bowling, and they'll just be disciplined. Perhaps that's all they can be. Yeah, you could tell yesterday even when Sialkot region was bowling, probably they admitted it that they cannot win it. And you could tell by the body language that they were not really looking to go after the target. It can be a very painful place to be. But the best, as Salman suggests, you can do it for your own self here. Especially somebody like Abdullah Shafiq. He can get a big one, get 100 for his own confidence, for his own good. Because when you score 100 in testing conditions, it always helps as a batter, helps your confidence. He'll still regret that run out in the first inning of him. He's being ultra positive. Coming down the track, he'll only get couple because there was a good work done by Umar at deep fine. 95 for 2 after 23. Again, good cricket. Soft hands in the gap and get a single. Bright sunny day here at Gaddafi Stadium, Lahore. Sialkot 96 for 2 at the moment. Karachi have picked up a couple of wickets. Both the openers back in the hut. Herrera, the latest casualty, edging one to the keeper. Muhammad Umar was the one who got that wicket. And once again, Abdullah Shafiq charges down the wicket, finds a shorter length and tries pulling it. Gets two. Didn't get the timing. Yeah, on the second occasion, Abdullah Shafiq from last over and this, he started using his feet towards the bowler, trying to get to the pitch of the ball or trying to just disturb the line and the length of the bowlers, just trying different things. Yeah, there's protection, there's a fielder, but he misses it. He makes a mess of it. Abdullah Shafiq will gladly take those boundaries. 100 up for Sialkot. Yeah, this was well timed. This time coming out from the middle of the bat. And just have a look at this. Although he didn't look at the impact, he put his head down, but he's still able to middle it. And the fielder was rushing to a ball that is coming quickly to him. Abdullah Fazal, or no, this is Usman Khan. And
Well, he's been mostly around with the gloves, so bare hands probably not as big. Again, Abdullah Shafiq just taking the aggressive route now, using the feet. He's got some runs, a couple of boundaries, a couple of twos. He moves to 37. So bit of entertainment for the people watching. Have they decided they're going to go after 533? Is that the case? Well, that's a very tall mountain to climb. 533. Two slips and a gully for Umar. Beautiful. Excellent batting from Abdullah Shafiq. He was been looking to be positive, getting the boundary. Second of the over, courtesy to an excellent cover drive. He looks so elegant playing that cover drive. Very few batters in Pakistan play cover drive like him. Yeah, this time leaning into the stroke beautifully. The front knee and the foot to the pitch of the ball, leaning into the stroke. Transfer of weight was brilliant, and high elbow. So a lot of things to like about Abdullah Shafiq when he's driving off the front foot. So this over has been an expensive over. 1 2 4 2 4. Looks more like a helpline number. 24 bowled, 108 for 2. Few boundaries here and there, and the field opens up. Fielder is being placed at mid-wicket. Just two slips now. Fielder at cover and deep point. That's what your approach do to your opponents. Once you're looking for runs, looking to be positive, it makes a difference. Right, let's head to Mirab. She's out there at the boundary line with an interview. This is Air Sial presents the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy and today is the final and the final day finally. हमारे साथ मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका रिहैब कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था. हसनैन, आपने बहुत इन्वेस्ट किया ऑनेस्टली ये रिहैब के ऊपर एंड आई कैन सी कि जो मेहनत थी वो रंग भी लेकर रही है. एंड डॉक्टर जावेद के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा डॉक्टर जावेद के साथ. पर्सनली मैं इंजर्ड था तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में मैंने काफ़ी कोशिश की तो मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था. तो मुझे लगा मैं इंग्लैंड गया डॉक्टर जावेद के पास, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी. और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ तो अभी मुझे कोई इंजरी नहीं है. लास्ट ईयर से मैं क्रिकेट बैक टू बैक सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ. चले अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड फॉर दैट. और अगर बात की जाए, ये बहुत मतलब लंबा अरसा खेला आपने, एक बड़ा सीज़न था, उसमें क्या चीज़ें सीखी हैं आपने? देखें मैं रेड बुल काफ़ी देर से खेल रहा हूँ. मैं फर्स्ट क्लास अभी खेलने आया हूँ, उससे पहले मैं हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेल रहा था. तो काफ़ी लंबा सीज़न हो गया और रेड बॉल का हमेशा यही कि जितना आप खेलते हैं उतना इम्प्रूव करते हैं. तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है और काफ़ी इम्प्रूव अंदर मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर चेंजेस आ रही हैं. तो मेरा बहुत अच्छा सीज़न रहा है. बिल्कुल सही है. ये 5 दिन चला गया टेस्ट, आपको फटीग महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने मतलब मेरे लिए ये इनफ था टू लर्न? एफर्ट बहुत की है और यही है कि हर दिन आपके लिए एक नया दिन होता है और आप कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं. तो कोशिश पूरी की मैंने और फटीक तो ज़ाहिर फास्ट बॉलर को होती है तो वो आगे रेस्ट ही है. तो मैं एफर्ट की है और अच्छा रहा. बिल्कुल ऐसे ही है. विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर. और इसी के साथ अभी के लिए आई गेस के मैच का रुख तो समझ आ रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे. ओवर टू द कॉम बॉक्स.
फाइनल की जानिब खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर थे लेकिन कट ऑफ नहीं कर सके, गेंद खासी तेज गई। अब्दुल रहमान इस एंगल को काम में लाए। काशी भट्टी थे फील्डर बाउंड्री लाइन पर, और ये गेंद खासी तरने वाला साबित हुई। बर वक्त अपना बल्ला इस तक लाने में कामयाब हुए। अच्छी पार्टनरशिप सियालकोट के लिए ये पनप रही है अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान के दरमियान। बैकफुट पर जाकर खेलने में कामयाब हुए। 1 रन का और इजाफा। यहाँ रहमान के पास स्ट्राइक रहेगा। 113 पर 2। पहली बार स्पिन को बुलाया कप्तान ने, स्पिनर को काशिफ भट्टी पवेलियन एंड से, और यकीनी तौर पर जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनके सामने यहाँ रफ भी मौजूद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर द विकेट बॉलिंग हुई है इस मैच में। बल्कि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने यहाँ पर शॉर्ट लेग है, इसके अलावा स्लिप है, ऑन साइड में खेले तो लेफ्ट हैंडर के सामने हमेशा मौका होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास। मैच के आखिरी दिन राजा असद अली खान। बिल्कुल, और जितनी ये ज़्यादा फ्लाइट दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, हम वक्त इनके पास मौका मौजूद होगा। देखें कवर में 2 फील्डर मिस हिट के लिए हैं, स्लिप भी एक मौजूद है। तो जो अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्मर होते हैं उनकी गेंद में बड़ी काट होती है। ये वही लेग स्पिनर्स का एक मैजिक होता है, जैसे गेंद बाउंस भी करती है और बैटर इंतजार करता रहता है कब गेंद आए। इनके फुल टॉस भी बड़े डिसेप्टिव होते हैं। जहाँ आखिरी दिन की पिच है, ये परेशानी का बायस बन सकती है। काशिफ के लिए अच्छी सूरत हाल है, बहुत से रन्स मौजूद हैं, फ्लाइट दे सकते हैं, सिली पॉइंट पर भी एक फील्डर को बुला सकते हैं, इसलिए खास से खबरदार हैं। अब्दुल रहमान फिर से उन्हें दिफाई अंदाज इख्तियार किया। 113 पर 2।
मैंने कहा आप ड्रोन से आए। दोनों एंड पर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं स्पिनर, ज्यादातर ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं रमीज, लेकिन ये तेज की बल्लेबाज को सरप्राइज करने के लिए। स्लिप के फील्डर बहुत डीप हैं रमीज के लिए, मीडियम पेस करना चाह रहे हैं। न जाने ये इनको क्या सूझती होगी। जैसे आप पहले हमने देखा भी कि ये बुनियादी तौर पर ऑफ स्पिनर हैं। ये तो राहत हो जाएगी बैटर्स के लिए। बल्ले को खोला, थोड़ा तिरछा किया, 2 रन बन जाएंगे। जल्दी करना होगी। ये बाज़-औक़ात जैसे हम ऊंचे लेवल की बात चली जाती है, मैन विद द गोल्डन आर्म मुदस्सर नज़र की बात करते हैं, वो कोई स्लो जेंटल पेस से गेंदें करते थे, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। हो सकता है ये विकेट में इन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसको ये समझे कि अगर मैं अपनी जो पेस बॉलिंग है उसको बुरुएकार लाऊंगा तो मेरे लिए कुछ इम्कानात मौजूद होंगे। कोई ऐसी गेंदें करते हों, कुछ कॉरिडोर ऐसा इस्तेमाल करते हो जो बैटर के लिए मुश्किलात पैदा करती हो। ये वाइड का फैसला आएगा इनके खिलाफ। या इस तरह के बॉलर जो हैं वो कई बार पार्टनरशिप तोड़ने का सबब जरूर बनते हैं, लेकिन उसके लिए लाइन में आना जरूरी है। एक और बात है कि दोनों तरफ से जरा वक्त ज़ाया किया जाए, कम से कम ओवर हों और एक जो ज़्यादा रन बनाने की मुमकिन तौर पर कोशिश हो सकती है सियालकोट की जानिब से, का वो अब्दुर्रहमान हो या अब्दुल्ला हो, उस पर कदगन लगाई जाए, उसमें उसमें रुकावट डाली जाए। कम से कम ओवर्स हों। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 3 ओवर्स 4 दिनों में 70 72 73 ओवर्स हुए हैं। ये गुलबर्ग के ये रूप की धूप है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में। बहुत ही इन दिनों अच्छा मौसम है। लाहौर में गुलाबी जाड़े हैं, पहला हफ्ता है दिसंबर का। क्योंकि पिछले कई बरस जो थे वो धुंध की नजर हो गए थे, स्मोक की। एक चीज़ आपने जिसका जिक्र नहीं किया, जो स्टेडियम के गद्दोनवा में कशाकशी होती थी, टिक्का, कढ़ाई, मछली और दूसरी जो मसरूफ़ शॉप्स थी, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और वो आपको आज मौसम की वजह से याद आ रही है, जी हाँ, सर्द मौसम की वो वजह अलग से। बात है कि ऑर्गेनाइजर्स ने हमारे लिए यहाँ पर बमकदार बाफर मछली का बंदोबस्त किया है। लाहौर इज नोन फॉर हिज फूड एंड हिज स्पेशल डिशेस। 116 पर 2। ये खामोश इलाका बन चुका है अब। उस सूरत हाल में जब यहाँ पर एक भीड़ होती थी उन लोगों की जो कि मनपसंद खाने के लिए आते थे, वैसे दुनिया में कल्चर बड़ा कम है कि स्टेडियम से मुत्तसिल कुछ दुकानें भी हों। और उसके बाद आप देखिए, आपको पंजाब स्टेडियम दिखाई दे रहा है, फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्कॉश कोर्ट्स हैं, जिम्नेजियम्स हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जैसे मैंने पहले जिक्र किया वो भी मौजूद है। तो हम वक्त जहाँ पर स्पोर्ट्स होती रहती हैं, पिछले दिनों जो नेशनल गेम्स हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में भी यहाँ पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप कायम किए थे। और ये वस्त में सूरज की तरह चमकता हुआ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है, जहाँ पर पाकिस्तान का जो प्रीमियर फाइनल है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, वो खेला जा रहा है। इस वक्त 5 फील्डर ऑन साइड में हैं लेफ्ट हैंडर के लिए, जिसमें 1 रन बचाने के लिए शॉर्ट लेग पर हेलमेट के नीचे अब्दुल्ला हैं। आहिस्ता गेंद कर रहे हैं। काशिफ भट्टी जो है वो ज्यादातर गेंद को पुश करते हैं, लेकिन आज अपनी रफ्तार को इन्होंने कम किया है काशिफ भट्टी ने, और चाहते हैं कि बल्लेबाज को ये अगले कदम पर लाएं। अंदर बड़ी सजी और बारौनक एक्टिविटी है, और बाहर वो जो हम जिक्र करते रहते हैं कि अब वो टिपिकल क्रिकेट का एनवायरनमेंट है, वो एम्बियंस है, क्वाइट है, और बड़ा इसमें एक रेंजर है गद्दाफी स्टेडियम में। ऑन साइड पे पेस आसानी से 2 रन्स बन रहे हैं।
ज़ाहिर काशिफ की जो बड़ी पेनिट्रेटिव बॉलिंग है उसका कोई असर नहीं है अब्दुल्ला पर भी और अब्दुल रहमान पर भी। ये स्पिनर को अच्छे खेलने वाले बैटर्स दिखाई देते हैं। धूप तेज है, उसकी तमाजियत का अंदाजा बाहर बैठे हुए लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इन दिनों स्लिप पॉइंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया करते स्पिनर जो हैं। अब इतने ज्यादा रन्स हैं, किस बात की फिक्र है कप्तान को या खुद स्पिनर को भी। स्पिनर खुद भी कप्तान को कह सकता है 533 रन हैं जो कभी तारीख में नहीं हो सका पाकिस्तान में या बड़े सगीर में, क्योंकि यहाँ तो डीआरएस भी इन्वॉल्व नहीं है इस मैच में, तो फिर सिली पॉइंट ना लेने की क्या वजह रह जाती। वो सिली इसीलिए होगी पॉइंट के विकेट को कुछ सपोर्ट करना चाहिए, कुछ स्पिन वेशस होनी लेकिन चाहिए। बाउंस तो है ना, वो सिली पॉइंट पर ज्यादा कैचेस जो है उस बाउंस की वजह से ही जाते हैं। बैट एंड पैड, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो, गेंद चल रही हो और कुछ मौके मिले हो, ऐसा तो हो नहीं रहा। और वेल सेट है कराची के बॉलर्स भी कि वो एक जीत की तरफ गामजन हैं। इस दौरान 28वां ओवर खत्म हो चुका है, 119 पर 2 सियालकोट रीजन्स। जदीद मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अंदर वसी पार्किंग भी मौजूद है और रेस्क्यू 1122 भी है किसी नागानी सूरत हाल के लिए। ये अब जुज़्व लाजनफक के तौर पर क्रिकेट के साथ फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपको इमरजेंसी की वो तमाम प्रोटोकॉल जो हैं वो उनका बंदोबस्त करना होता है। ये अब ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स का, और फ़ज़ाई मंजर सब कुछ वाज़ेह कर रहा है। एक रन रोकने के लिए हम वक्त कराची ने इस फील्डर का इस्तेमाल किया है जो स्क्वायर पर पीछे रखे गए थे। ये कराची और सियालकोट का फाइनल है, आज फैसला होना है पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट का। आज चैंपियन का फैसला होना है। ज़ाहिर है कराची एक हाथ जो है आप कह सकते हैं कि एक हाथ उनका जो ट्रॉफी के बहुत ज़्यादा करीब है। अब यहाँ ये पीसीबी सदर मकाम पर वो चैंपियन बनेंगे। ये ड्रोन के ज़रिए जिस तरीके से आपको मंजर दिखाए जाते हैं, अगर आप बनफ़ नफीस भी यहाँ पर आ जाएं तो इतनी गहराई से, इतनी ऊंचाई से आप ये चीज़ें नहीं देख सकते। आप ये देखिए, ये सदर दफ्तर है जो अब तब्दील शुदा है, इसमें एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आ गई है। वसी और ईज ऑफिस हैं, पार्किंग है, फिर इसमें शायकीन क्रिकेट के देखने के लिए वो वीआईपी एरिया है, चेयरमैन बॉक्स है। ये सब कुछ क्रिकेट के साथ अब जो मॉडर्न क्रिकेट है वो होना बड़ा ज़रूरी था। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये आउटरेज है और आउट हो जाएंगे। एक कामयाबी हासिल हो गई रमीज को, उन्होंने ऐसा गेंद किया जो समझ नहीं पाए अब्दुल रहमान, आउटरेज लगा और खुशियां हैं कराची के लिए। एक गैर मुतवक्को कामयाबी, एक मैकशिफ्ट बॉलर आए रमीज और उन्होंने ये मैजिक किया। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला सऊद का इनको लाने का। उनने पार्टनरशिप तोड़ी और यहाँ अराउंड द विकेट आए और खेलने में मजबूर किया लेफ्ट हैंडर को, और एक आसान सा कैच गया। स्लिप में अब्दुल्ला मौजूद थे पहले से, इससे उन्होंने अपने दोनों हाथों में थाम लिया और इस तरह अब ये पानी के वक्फे से पहले ये कामयाबी मिली है कराची को, जो कि बहुत ज़रूरी थी। कराची के ये फाइनल जीतने के इम्कानात अब और रोशन होते हुए 18 रन बनाए अब्दुल रहमान ने 22 गेंदों में 121 पर 3।
मोहसिन रियाज पानी के वक्फे के बाद आए हैं। नायब कप्तान हैं सियालकोट रीजन के और पहली गेंद खेलेंगे रमीज। ओह, इस बार अच्छी डिलीवरी थी, फिर से स्विंग हुई, लेट स्विंग, और खुशनसीबी थी मोहसिन की कि ये विकेटों में सीधी नहीं गई। ये फुल लेंथ गेंद थी और एक नए आने वाले बैटर्स के लिए मेरे ख्याल में बड़ी होशियारी से, समझदारी से इसको आगे किया और तैयार नहीं थे, आखिरी नंबर पर बल्ले को नीचे ले आए। अगर हम इसको देखें तो करीब था कि इनके लिए मुश्किल तरीन वक्त होता, लेकिन बाल बाल बच गए मोहसिन रियाज और सर को पीट लिया, हाथ रखा कि ये कैसे हो गया। इट वाज बैड लक फॉर रमीज जिन्होंने इस गेंद से पहले एक विकेट हासिल की है। तो ये जैसे आप जिक्र कर रहे थे, बड़ी बाज़-औक़ात तीखी गेंदें होती हैं, इस किस्म के जो मीडियम पेसर्स होते हैं वो गैर मुतवक्को तौर पर बाउंस भी हासिल कर लेते हैं, स्विंग भी हासिल कर लेते हैं, बैटर इनको आसान लेते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल संभल चुके हैं मोहसिन रियाज, अगली गेंद को आप बज़ाहिर के ज़्यादा तवज्जो से खेलेंगे। और फिर से ये लेग कटर की तरह गई, खासे कारगर साबित हो रहे हैं क्योंकि अभी तक सियालकोट के बल्लेबाज जो हैं नो मैंस लैंड में ज्यादातर पकड़े गए। ना तो ये पूरी तरह बैकफुट पर थे अब्दुल रहमान, और अपने बल्ले का फेस जो है वो खोल बैठे। ये ज्यादा बेहतर है, आप जाने दें, अब लेंथ से भी जाने दे सकते हैं। 121 पर 3। अब ये पार्टनरशिप बहुत अहम है, अगर ये जल्दी टूटी तो फिर मुश्किल हो जाएगा सियालकोट का शिकस्त से बचना। शाहिद यूसुफ और उनके साथ नवील लतीफ़, सियालकोट के जो दोनों कोचेस हैं, खास से फिक्रमंद लगते हैं क्योंकि इसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा बैटिंग में डेप्थ नहीं है। अफजाल मंसूर विकेट कीपर हैं, फिर उसामा हसन अली हैं, हमजा नज़र बैटिंग कर सकते हैं। या हमजा ने 64 रन बनाए थे पहली इनिंग में, बॉलिंग भी अच्छी की, में ज़रूर एतमाद होगा। आप अगर हम काशिफ को देखें तो उन्होंने अपना एंड बदला है, अब वो राउंड द विकेट गेंदें कर रहे हैं। जी, और उन्होंने अपना जो फील्डर था शॉर्ट लेग पर उसको भी बदला है। उनको अब ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भेजा गया है हेलमेट के नीचे। अब्दुल्ला फजल जो इससे पहले शॉर्ट लेग पर थे, अब ये शॉर्ट स्क्वायर हो गए, जहाँ इसलिए दानिस्ता गेंदें की जा रही हैं इनके पैड्स पर, क्योंकि अब्दुल्ला अक्सर देखा गया अपना तवाजुन खो बैठते हैं। ये टू द लाइन ऑफ द लेग स्टंप अगर अच्छी फ्लैट गेंद हो और फिर अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म हो, जिसको हम साबिका तौर पर चैनमैन भी कहते थे, मुश्किल हो जाती है। अच्छा किया कि पिछला कदम अपनी उन्होंने पॉपिंग क्रीज के या बैटिंग क्रीज के पीछे रखा। विकेट कीपर काफ़ी चौकस हैं विकेटों के पीछे। लेकिन अगर लाइन ऑफ अटैक ये रखना है, एक और अच्छी गेंद थी काशिफ की, तो आप लेग स्लिप भी रख सकते हैं। आपको कोई दो फील्डर हैं, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी हैं, तीसरा फील्डर लाना ज़रा मुश्किल होगा, बल्कि मुमकिन नहीं होता। वो क्यों? मैं कहा मैं ये आप जो मुझे नहीं लेटेस्ट मैं उससे वाकिफ, लेकिन यू कांट हैव थ्री फील्डर बिहाइंड द बॉलिंग लाइन। नहीं, लेकिन उस सूरत में ये बिल्कुल आपने ये पॉइंट सही है कि आप दो फील्डर जो है स्क्वायर के पीछे रख सकते हैं, लेकिन आप जो डीप का फील्डर है आप उसको हटा भी सकते हैं। तभी है तो 122 पर 3।
क्रिकेट से इनकी अब भी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। अलीम डार एकेडमी के नाम से एक क्लब रन करते हैं यहाँ लाहौर में। बिसाइड बीइंग अ सिलेक्टर, इनको देखना होगा, ये एक बड़ा मैच है और तलाश कर रहे होंगे खासतौर पे जो पाकिस्तान को कुछ इश्यूज हैं इन बैटिंग एज वेल एज कुछ टॉप पर फिटनेस के इश्यूज भी हैं फॉर पेसर्स, तो तलाश जारी रहती है। और ये एक इस लिहाज से बड़ा मौजू और एक बड़ा मैच है, दो बेहतरीन टीमें खेल रही हैं और रमीज़ उसी नपीतुली बॉलिंग उस लाइन लेंथ के साथ गेंदें कर रहे हैं जो कि इनका अब तक के स्पेल का खास आ रहा है। एक विकेट हासिल कर चुके हैं, अब्दुल रहमान को उन्होंने आउट किया। अब्दुल्ला शफीक ज़रा मुख्तलिफ बैटर हैं, ये पिक एंड चूज अच्छा करते हैं। गेंद स्किट करती हुई गई विकेट कीपर की तरफ। अब्दुल्ला शफीक जो है 2 विकेट गिरने के बाद अब निस्बतन मोहतात हो गए। अब्दुल्ला को अच्छा आगाज मिले इस सीजन में टेस्ट मैचेस में भी। लाहौर में यहाँ दूसरी इनिंग्स में अच्छा खेले थे, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में पहली इनिंग्स में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए सेट होने के बाद। और यहाँ इनके 50 रन मुकम्मल हो गए। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनने खेल पेश किया है इस सीजन में। ये चौथी टेस्ट सेंचुरी है अब्दुल्ला शफीक की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और अच्छी बैटिंग की उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ। जिस स्पाइक का ये बैट्समैन है, ये अगर उनकी 450 इस फाइनल मैच में उन्होंने ये एजाज हासिल किया, इनको तो ये बड़े रन बनाने वाले बैटर हैं 100-200 भी बना सकते हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं। इस बार ये आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद थी, इसको फ्लिक किया और बाय के 4 रन मिल गए अब सियालकोट को। बेवर्ड लाइन और लेंथ थी और इसको गए थे खेलने के लिए, लेकिन बैट और बॉल का कांटेक्ट नहीं हुआ। इस यहाँ विकेट कीपर आगे खड़े हुए हैं ताकि अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो कदमों का इस्तेमाल ना कर सकें, स्विंग को काउंटर ना कर सकें। इसी गरज से कई बार आपको कीमत चुकाना पड़ती, लेकिन कराची के पास खर्च करने को बहुत कुछ है। गेंद पैड के ऊपरी हिस्से पर लगी, इसलिए अंपायर टस से मस नहीं हुए। 128 पर 3 नॉट आउट है अभी भी अब्दुल्ला 50 के स्कोर पे। बड़ा शाउट किया और पिछले थाए पर लगी, ऊपर भी जा रही थी और कुछ आवाज, कुछ सौती तासुर ऐसा था कि गेंद का जो है वो बैट के एक हिस्से से भी लगी है। कोई नुकसान नहीं, 31 ओवर के बाद 128, 3 विकेटों के नुकसान पर। और ये है एयर सियाल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का आज़म ट्रॉफी का एक खुलासा। 340 रन जो थे वो सबका दिलवा गए सियालकोट रीजन पर पहली इनिंग में कराची को, और जाहिर है कि ये अभी तक सबकत कायम है। दूसरी इनिंग में भी फिर रन्स को आगे बढ़ाया और मजबूरी सबकत 533 रन की कर दी है, जो कि अब कहना होगा कि जुए शेर लाने के मुतरादिफ है फॉर सियालकोट। मोहसिन की बैटिंग सलाहियतों का स्पिन के सामने वो एक इम्तहान है। चैलेंजिंग विकेट पर पहली इनिंग्स में 71 रन के साथ ये टॉप स्कोरर थे सियालकोट के। इन्हें कुछ मौके जरूर मिले थे, लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं, अभी तक खासा खबरदार हैं। हम बॉल इससे भी ब्लॉक करने पे इत्तेफाक किया। जो मॉडर्न ब्रेक क्रिकेट है, इसमें आपको इस टाइप की, इस लेवल की क्रिकेट में भी ज़ोरदार कट्स और ड्राइव्स करनी होती हैं। मुझे लगता है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगरचे मोहसिन रियाज एक मसनद बैट्समैन है, क्लीन हिटिंग होनी चाहिए, और क्योंकि ये टेलीवाइज हो रही है, ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनल है, इसमें जो आपकी स्क्वायर कट्स हैं, जो ड्राइव्स हैं, वो तरगीब देंगे क्रिकेटर्स को कि यू कम एंड प्ले
the हाँ, the राजा साहब top के cricket. 24 घंटे पहले ख्यालात मुख्तलिफ थे लेकिन अच्छा है मैंने कि वही डिसिप्लिन बैटिंग की बात की. आप डिसिप्लिन में रहते हुए भी अच्छी मैंने शॉट मेकिंग का जिक्र किया, मैंने ऑन स्लॉट का जिक्र नहीं किया, मैंने स्लॉगिंग का जिक्र नहीं किया. तो इसमें रुक का ज़रूर खेलें, लेकिन गाए गाए आप वो एंटरटेनिंग क्रिकेट भी खेलें, जो कि इस क्रिकेट का खासा होती है. आपने देखा होगा कि टेस्ट क्रिकेट में हमने कैसे कैसे शॉट मेकर्स पैदा किए, जिसमें जहीर और माजिद जो हैं, ये एक मिसाल के तौर पर उनका नाम लिया जा सकता है. तो इस तरह 32 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ. सियालकोट 129 3 विकेटों के नुकसान पर. ये तवील दौरानिया का सेशन है 3 घंटे पर मुहित होगा क्योंकि आज नमाज जुमा का वक्फा होना है और गेंद ये लेग स्टंप मिस करती या फिर बल्ला शामिल था. अंपायर ने यही इशारा दिया है कि बल्ला जो है वो भी लग गया था. तो 3 घंटे का ये सेशन है. खाने का वक्फा नमाज जुमा के साथ होगा दोपहर 1 बजे. 1 घंटे का वो दौरानिया होगा वक्फे का और फिर दूसरा सेशन जो है वो 2 बजे से आप बराह रास्त देखिएगा. Salman, some smart bowling by Ramiz. He looks penetrative at time. He look very accurate and sort of a stock bowler who can, you know, gets the breakthrough, which he actually did, and caught the wicket of Abdur Rahman, who was playing well. He was solid in defence and he was aggressive at times. So overall, full control of the proceeding by Karachi Blues over this coveted trophy, the Quaid-e-Azam trophy, and the finals. Just a single to the backward square leg area, a very productive area, the backward square leg and the third man. It's Ramiz, who's mostly a part-time off-spinner, but here he has just rolled his arm over with some military medium pace, and that's the kind of pitch it is. The ball as well, it supports the seam-up stuff, and even he thinks that it's better off to bowl seamers rather than bowl his regular off-spinner options, and even he is getting the ball to do a bit. And the dilemma of batters facing such bowlers is that if they play well, what have you done? And if you don't play well, you didn't even play well to this bowler. And this is how Abdullah Shafiq has played today. Looked elegant, he always does, driving and pulling off the short balls. And when he's driving, he looks so much at home, so much in control. Now he just nudges one towards square leg for an easy one. As 33 overs are now complete. Sialkot 133 for 3.
Well, for Karachi, there's no paranoia or threat of any possibility for being defeated by depleted Sialkot, who are 3 down, 433. Though Abdullah Shafiq took very solid in defense, and at time he opened up his bat, and you've just seen his 50 completed with a few of the classic shots on the offside, on the onside. Here you see a sort of armor, but he is unorthodox. Kashif, wrist spinner, and by nature, he brings the ball in. That's an onslaught. Going over long on for a towering 6. Yes, it was again Abdullah Shafiq with meat of the bat and going all the way in front of us for a 6. Yeah, slightly tossed up, and it was enough of an invitation for Abdullah Shafiq, who was fully committed to this stroke, coming down and playing it with a full flourish and making a very decent connection. Falls just short of the stands. It's a big hit, around 75 to 80 meter hit that is, as the umpire just goes through, checks the ball, no damage being done, hands it over. This is good batting, hitting a boundary and then just milking the bowling for another one. Hitting a 6 gives you a lot of confidence and comfort, though Abdullah Shafiq cruising along very well. He may have a personal landmark. He may score a century on a personal account, but still a long way to go. 34 over gone, 140 for 3. Introducing again Ramesh from the Quaid-e-Azam end. He conceded a single to the backward square leg area. Singles are all the time there. And Abdullah Shafiq, being a seasoned combiner, understand the importance of singles. Besides, he hit a beautiful 6 during the previous over. Wavered line and length. Just putting some special effort to get the ball moving. Well, Duke ball in this condition, the movement is always on offer. I think the keeper can help him out here by standing up onto the stumps. That way the batter will have to stand in the crease, and any movement will become far more dangerous, because at the moment the batters are standing out of the crease. Quick single to mid-off. Both the batters, they're good runners. And as soon as he just struck the ball, the call was very clear. Mohsin coming off a 72 in the first innings. And Abdullah Shafiq missing out was well set, but unfortunate for him that he got out, run out. And they were together when that run out took place. But playing a 5-day game to take a risky single at times is a no-brainer. And it was at that particular moment, because these two were the most maybe reliant players at that time, because the top order had been they'd been blown off by the Karachi seamers. So it was important that either two of them or one of them played a big knock. Wasn't to be.
Karachi have maintained good control over this game all throughout. Sialkot have been just chasing them. Well, introducing a pacer from the one end, I mean, there is some strategy for slowing down the proceeding to slow down the number of overs per hour. This does matter. So we have been watching some 70, 71, 73 overs a day. The velocity of overs mean you may get the ultimate, result, which is on the ball. That a win-win situation for Karachi regions. Now it's 35 over gone. Sialkot 3 down for 142. Left armor are a very special breed of spinners. They're accurate and occasional very fatal for the bowlers. Their accuracy, their line, the length. Nice up. You talk about the left arm spinners and the quality. And here it is. Right up there is Iqbal Qasim Saab, one of our teachers at National Bank as well. Superb cricketer in his time, great spinner, was a selector and served in different capacities for Pakistan Cricket Board. He was one of the greatest left-arm spinners. Just one short of 1,000 wickets. Look at the average, 68 fivers, 14 10-wicket hauls. Abdul Rahman, currently coaching with the PCB, 184 games and 673 wickets. And so was Sir Rakib, played for Habib Bank and was a master of his art as well. And he was brilliant in his days. Then there was Zulfikar Babar in recent history of Pakistan cricket, one of the best left-armers to have played the game. And he was outstanding. We happened to be the teammates as playing for Wabda. And we really enjoyed watching him bowl. And he always looked like picking up wickets. No matter what the pitch was like, he had an answer to it. But talk about Kashif Bhatti. He is such a brilliant wicket taker. But he is defending 500 runs, which are not going to happen. And even then, he's darting them in, not giving the ball air. Just look at this. You've rightly pointed out that he should give flight, he should buy the wicket. I mean, he got the accuracy, he got the bite. And he's giving a lot of push to the ball. 36 over gone, 143 for 3, Sialkot region. Once again, Masood Anwar Sahab, Mohammad Zahid, Nadeem Khan, Zulfikar Babar, 509 wickets of 108 matches. And Kashif Bhatti and Sir Abdul Rakib, only the two out of this lot who haven't represented Pakistan. All the remaining ones, Nadeem Wari Saab, 641 wickets, 47 fifers, all have great records. But Iqbal Bhai stands proudly at the top, just one short of 1,000 wickets. Another great left armer from Sri Lanka, Rangana Herath, had 1,000 plus wickets in first class cricket. And so the off spinner Steve Harmer, currently playing for South Africa, was brilliant in India, was instrumental in getting them that whitewash over India. He's also somebody who has plus 1,000 wickets. And doing that as an off spinner is no easy feat, because he doesn't bowl the dusra or the other one. He just bowls conventional right arm off spin and armors with a beautiful, simple, repeatable action. Cricket is best when kept simple. A very interesting incident about him. He went all the way to Bamuma, that I'm the one who can exploit the subcontinent conditions. Please take me over there.
So he did the magic in Pakistan, and so is in India under conducive conditions. Saqib is the man in charge. And you have rightly pointed out and paid due tribute to the magnets, the stalwarts of Pakistan cricket, the left arm spinner. Wow, that actually was more than any leg spinner found a spin on this pitch. Just have a look at this go, and I'm sure this has hit one of those cracks, those big cracks that were opening up. But thanks to the weather, that they haven't opened up as they do in Australia, because there it's a summer sport. Here it's played in winters. And top edge, and Sean makes no mistake. And he is claiming the catch. Mohsin is standing, and he isn't happy. Now he starts to move. And another wicket for Karachi Blues. And Saqib's outswingers have paid. He bowled to the area of uncertainty, and Mohsin Riaz was shocked. And here you can see it was a legal delivery behind the popping crease. His front foot landed, and here comes the delivery. Mistimed, misjudged, and nicely taken by the gentleman cricketer Shan Masood. Another wicket have fallen. Mohsin Riaz gone for 6. Catch Shan bowled Saqib. Depicting the commercial venue here at the Gaddafi Stadium suburbs. The Liberty Market, the famous Liberty Market, now the sky-rise buildings, the hotels, restaurants, offices, and the ever-active traffic of Lahore, leading some of the pedestrians and, of course, the vehicles driving most of the people from one way or to the other. It's Liberty Chalk, popularly known as, very famous for its beauty and Beautiful its civil structure. plantation, Raja Sahab. Every one of us has been a lot to this place, because it has been famous for shopping, for restaurants, and everything that you would want to buy on different occasions. People coming from different cities to this particular place to do their shopping and to have a variety of foods. Now that Lahore has transformed a lot, and you find everything almost everywhere, but this used to be the hub of frontline stuff, and it certainly has been for most of the time since Pakistan came into being. This place started to develop, but now there are lots of places which have everything in them. Yes, no doubt. There was a famous, that was the good effort, a great effort by Shan Masood. The on-side mistime flick caught the top edge, and the rest was done by Shan Masood standing at mid-on. The boy from Palia is here, Hamza Nazar rather. He's an off spinner, but his strong point has been batting. He's performed well during the first innings, scoring 64 runs. Here's the time for him to apply himself under some difficult circumstances, I would say. The wicket is now playing its course. The ball is not coming even, Stephen. Hamza Nazar scoring a very gutsy, fighting 60 plus in the first innings, and now he has an opportunity to just keep batting, get a few runs in front of his name. Now there's a short mid-off catching position, beautifully bowled, pitches in the stumps and moves away, and Abdullah Shafiq batting on 59 couldn't do a thing about it. That's how the nature of this pitch is. Have a look at this again. Wow. That is some bowling.
squaring a set batter up. 37 bowled, 144 for 4. Gaddafi Stadium, the multifarious activities, the business hubs, the shopping malls and eating places. Besides, not to forget, most of the team used to live the nearby hotels, and they comes to Lahore, or they came to Lahore, a very famous and busy place, the Liberty Market adjoining the famous Gaddafi Stadium. Some extra efforts are being deployed by the captain himself, the bowlers. They are putting their heart and soul together to make the batsman play, to make the batsman out. Perhaps Kashif Bhatti is not somebody who flights the ball on regular occasions, but you can't find a more tailor-made situation to entice the batters, because you have loads and loads of runs to play with, and the batters not willing to take a risk. This is close, this is close, and straight away the umpire shakes his head as if he's adamant that this is not going to hit the stumps, or maybe an inside edge, which he hasn't signaled at all. And he thinks that it's going down the leg side. Just have a look at this again. Whoa. Well, it's his discretion, whatever he thinks, but it looks quite close. Maybe we can safely say umpire's call. Kashif Bhatti nearly had another one to his tally. This is played towards mid-on, where Shan Masood, who's quick on his feet, didn't allow that single. And they need to create that pressure, to maintain that pressure. Even while defending, the batters must feel that the fielding side is on top. And the attitude matters a lot. Yeah, this is a slow one with a quick arm, trying to deceive the batter, who just played it towards point. 38 now complete. Sialkot stay at 144 for 4. So those are the proud sponsors of Quaid-e-Azam Trophy. Beside the important stakeholders, the AirSeal, of course, who present this trophy. Beside the official name of this event is the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy. So the return of some thrill and some extra effort is there by the leadership of Karachi Blues, putting efforts, making the batter play, trying to get the wicket, and going for an outright victory. Once again, superb bowling, and just bowls in the business area mostly, Saqib. That's the USP of his bowling. He's not trying much else. Oh, wow. And caught. And it was around the corner. Abdullah Shafiq, the set batter, knowing that the ball is swinging away, decides to play towards the onside, closes the face of the bat, gets the outside edge, and the fielder at slips, Abdullah, who has had a great game with the bat, makes no mistake in catching that. As Karachi will now
think that they are closer to getting this side out because they've got their mainstay Abdullah Shafiq back in the hut. Just have a look at this. How can you play such a stroke when you are beaten on previous occasions with the ball swinging away? Once again, Abdullah Shafiq, he'll be disappointed, scoring 59, and Saqib brilliantly picking up his wicket. 5 for 144, Sialkot. Of course, now Karachi Blues sensing victory. Curtains for Abdullah Shafiq, who just got out. The new man is Afzal. The efforts bringing success after success for Karachi Blues, who are still having a monumental lead over Sialkot. Sialkot have to score 533 runs. Looks beyond difficult task, I would say. Sal Manzoor may have some difficulties in facing the aggressive bowling of from both ends. Saqib is bowling so well. He's so aggressive. He's on target. The wicket is now helping him. He's bowling to the area which is called the area of uncertainty. Yeah, if he keeps bowling here, I think it's going to be a nightmare for the batters. Yeah. Yes. Here you go. Come out and face some music. It's not all that easy out there. And Saqib is telling that the bowlers playing this game did not exploit this pitch enough. They were here and there, not consistent. But he is showing that staying simply on line and length can be deadly for the batters. And that is why he has been standing out as a bowler in this innings. 3 for 32 into his 10th over. And this last 10 or 12 balls that he's bowled, most of them have been unplayable. Though a beginning, but still such delivery may give him some confidence. Middle and leg, and he nicely guided that delivery to the backward square leg area. Though the welcome delivery was not a welcome one for the batter, but still that wayward line to length, just nice roll of the wrist, and the rest was the pace to the backward square leg area. Yeah, this time around just looking for an exaggerated swing from the leg stump towards the off, which normally doesn't come off. So he should have stayed where he is, and I'm sure he'll just tell himself that extravagance is not the answer. Just keep it where it has been, like this. Middle and off, maybe the fourth stump, and he'll trouble most batters. Extra is a word for Saqib, the extra pace, the extra swing, and of course the extraordinary line of length. That was the delivery which got Abdullah Shafiq into trouble. He went forward, getting the outrage, and Abdullah was having a safe hand and slips. Got rejoice, happy over that beautiful catch, a well-judged catch, getting rid of Abdullah Shafiq. Watching here and there, perhaps his face reflects a level of anxiety and some pressure. Again, he's having most of the fielder on the offside, but he's staying down the leg side, getting another boundary by Afzal. A good shot to play. Yeah, it's maybe the captain can give the bowler a favor and instead of fine leg, just have that fielder at square leg, because a very poor ball will go to fine leg. It is swinging away, so most of them will go to square leg. And that way, these boundaries, they might be the ones that bring up that change. 152 is the total after 39.
ये बेहतरीन सेशन कराची के लिए बेहद प्रोडक्टिव, जिसमें 5 विकेटें उनने हासिल की। अब एक एंड क्योंकि स्पिनर्स ने होल्ड किया हुआ है तो इससे भी फ़ायदा होगा कि फास्ट बॉलर्स जो हैं तरोताज़ा रहकर दूसरा एंड जो है वहाँ पर कप्तान उनको रोटेट कर सकते हैं। आज जितनी भी चालें चली हैं सऊद शकील ने वो बिल्कुल सही साबित हुई और ये बाजी जो है वो बआसानी मारते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त अली यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आप पहुंचे। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अब मैं इसे तंज समझूं या तारीफ समझूं, मैं इसे तारीफ ही समझूंगा। चश्मे मा रोशन दिले मा शाद। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आज के सेशन जो है वो कराची ब्लूज के नाम रहा है। मुझे तो लगता है जितने तमाम सेशंस हुए हैं 5वें दिन, सारे के सारे सेशंस जो हैं वो कराची ब्लूज ने ही जीते हैं अपनी प्लानिंग से। वो बैटिंग की बात करें, कप्तानी की बात करें, बॉलिंग की बात करें, इवन फील्डिंग की भी बात करें, अब्दुल्ला शफीक का रन आउट जो कि मैच चेंजिंग रन आउट था, तो सारे सेशंस में हर तरह की जो क्रिकेट हुई है इस मैच में वो कराची ब्लूज ने ही जीती है। जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक ने आज जिस तरह सेट होने के बाद फिर अपनी विकेट गंवाई है, जाहिर है इस पे भी बातें होती रहेंगी। उठाकर खेला मिड ऑन के ऊपर से, बमुश्किल पार किया शान मसूद को। खासा उछले थे लेकिन आखिर में उनका हाथ हवा को ही छू सका। चौके के साथ 157 सियालकोट। जी अब ज्यादा कुछ है नहीं है मैच में, तो सियालकोट रीजन के बैटर, विकेट कीपर बैटर जो हैं उन्होंने शायद यही जरूरी समझा है कि अब एटलीस्ट अपना बल्ला घुमाइए, जितने रन्स अपने लिए बना सकते हैं वो बनाए। एक बार फिर हवा में खेला, अब मिड ऑफ से बाला बाला 4 रन और पाए अफजल मंजूर ने। थोड़ी देर के लिए उमर को लगा था कि गेंद उनके हाथ लग सकती है, लेकिन ये सराब था। 161 पे 5। हमजा ने निस्फ सेंचुरी बनाई थी पहली इनिंग्स में, उसका एतमाद इनके साथ है। हमजा नजर के सीधे बल्ले के साथ खेला, उम्दा शॉट चलता किया, यहाँ गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी। 3 बन सकते थे लेकिन खुद स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं हमजा। लेकिन दाद देनी होगी तारिक भाई शान मसूद की। वो अपने आप के लिए और बाकी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने हुए हैं। जिस तरीके से वो स्प्रिंट लगा के गए मिड ऑन से लॉन्ग ऑफ की जानिब, बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छा लगा देख के इनकी जो कमिटमेंट लेवल है। हालांकि इस मैच में कुछ बचा नहीं है, इन्होंने सभी जीत लिया है, लेकिन फिर भी वो कमिटमेंट लेवल बहुत ही शानदार। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। इस मैच में हालांकि टॉस करने तो नहीं आए, पैड पर लगी लेकिन खासी बालाई हिस्से पर, वैसे भी ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, इसलिए अंपायर जो है उन्होंने हिल कर नहीं दिया। काफी करीबी मामला है, काफी करीबी, जितना शायद हमें यहां से लगा उससे ज्यादा करीबी ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो शायद बैटर की तरफ जाएगा। अंपायर कॉल हो सकता था, क्लिप हो सकता था, ज्यादा डिसीजंस गए नहीं हैं।
सियालकोट के हक में इस मैच में। ये एक जरूर गया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है। 5 स्लिप्स के साथ इस वक्त हमजा नजर पर पूरा ऑल आउट अटैक हो रहा है, क्योंकि कराची को इस बात का इल्म है कि अब उनके और फतह के दरमियान सिर्फ यही हायल हो सकते हैं। इस फाइनल में फतह के दरमियान ट्रॉफी तो कराची की वो तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कराची की है। तारिक भाई, हमें तो तभी समझ आ गई थी जब लीड ले ली थी, और उसके बाद जब सियालकोट दूसरी इनिंग में फील्ड में उतरे थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जिस तरीके से प्लानिंग बॉलिंग की गई, उसी से ही अंदाजा हो गया था कि शायद सियालकोट रीजन पहली इनिंग पे ही मैच जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली है। क्योंकि दूसरी इनिंग में भी ऐसा लगा था कि शायद बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही बॉलर्स की, कप्तानी की भी। इसलिए कराची तो आपको पता है एक प्रोफेशनल साइड है, उनके पास एक मकसद अलहदा था। उन्होंने एक पॉइंट प्रूव करना था कि हम एक टाइम पे क्वालिफाई नहीं कर रहे थे और अब हम चैंपियन बन रहे हैं। तो वो जो पॉइंट, जो मकसद था चैंपियनशिप के अलावा, उसने बहुत मदद की है कराची की। जी हाँ, बिल्कुल। और इस फाइनल में दो जो सीनियर खिलाड़ियों की आमद हुई, सऊद शकील, शान मसूद, इनने खासतौर पर सीजन के बैक एंड पर उसका भी फायदा हुआ है। ऐसे बड़े मैचेस में आपको ज़रूरी होता है इस तरह का तजुर्बा आपके ड्रेसिंग रूम में। और शान मसूद जो हैं, हालांकि वो कप्तानी नहीं कर रहे कराची के, लेकिन बॉलिंग कैप्टन वही रहे हैं। बॉलर के पास ज़्यादातर वही आते जाते रहे, अभी भी मिड ऑन पोजीशन पर हैं। सऊद ने इस मरहले पर स्लिप में मौजूद है, सऊद तीसरी स्लिप में। इससे पहले वो कवर में वक्त गुजारते रहे, ये वाइड ऑफ मिड ऑफ, लेकिन बॉलर के पास ज़्यादा शान ही रहे। ऐसे हुक शॉट खेला, यहाँ स्क्वायर लेग के पीछे 4 रन के लिए उम्दा तरीके से अपने पिछले पांव पर घूम गए हमजा नजर। 167 5 विकेट पे। काशिफ भट्टी, अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। बहुत कम ऐसा होता है कराची का स्पिनर जो है कोई विकेट ना ले फर्स्ट क्लास मैच में। अभी तक काशिफ भट्टी ने एक भी विकेट दोनों इनिंग्स में हासिल नहीं की, लेकिन इस पिच से आज उनको खासी मदद मिली है। जी, और यही शायद इनसे उम्मीद भी लगाई जा सकती है, क्योंकि फिंगर स्पिनर हैं, आके पटकते हैं, गेंद को घुमाना भी जानते हैं, तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, विकेट्स इतनी तरह तरह की कंडीशंस में खेल चुके हैं, तो बहुत तजुर्बा है। इसलिए ये तो किसी भी पिच के ऊपर कारआमद हो सकते हैं काशिफ भट्टी। लेकिन पिछले ओवर में आपने एक बात छेड़ी थी सऊद शकील की और शान मसूद की, तो एक और क्रेडिट जो इन दोनों के सर जाता है तारिक भाई, वो मौका देना है यंगस्टर्स को। कदमों का इस्तेमाल किया, सर के ऊपर से खेले, 4 रन यकीनी मिलेंगे अफजल को। एक और चौका सियालकोट रीजन के नाम। ऐसा लगता है कि ये तहिया करके आए कि वो हेड लगाने से गुरेज नहीं करेंगे, स्पिनर को आड़े हाथों ले रहे हैं। ये तीसरा चौका लगाया इन्होंने अभी ये पिछले 2 ओवर्स में भट्टी को। और एक और उम्दा शॉट खेला, एक और चौका शान मसूद के दाएं जानिब से।
ये गेंद वाइड जरूर गई, लेकिन नतीजा वही। एक बार फिर बड़ा नीट फुटवर्क था अफजाल का। जी हाँ, उनके जोन में ये गेंद गिर रही है, लेंथ बहुत आगे बॉल गिर रहा है, तो उनको जो बल्ला घुमाने का मौका बहुत आसानी से मिल रहा है, और इंटेंट तो है ही है उनके पास। अब ऑफ साइड में मजीद रन्स, 4 रन्स बैकफुट पर पूरी तरह फोर्स किया। अफजल मंसूर अपने रन्स बाउंड्रीज में बनाना पसंद करते हैं। 2 चौके इस ओवर में लगाए, 3 चौके दरअसल। ये जो चौका था ये ऑफ साइड की तरफ था, पहला शॉट हमने देखा, इससे पहले ये ऑन साइड की तरफ ज्यादा खींच रहे थे बॉल, लेकिन यहाँ पे रूम दिया और गैप तलाश किया, 4 रन हासिल किए। उस्मान शॉर्ट कवर में आए, कैचिंग पोजीशन पर। कराची के बॉलर्स ने बहुत ही उम्दा आउट स्विंग बॉलिंग की है इस पूरे मुकाबले में। इनकी अच्छी रिस्क पोजीशंस हैं साकिब और उमर दोनों की, और खासा मिलता जुलता है इनका बॉलिंग का अंदाज, इनकी रफ्तार भी। जी हाँ, ऐसा लगता है कि कराची ब्लूज की जो फास्ट बॉलिंग है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टेलर मेड है इन कंडीशंस के लिए, इस पिच के लिए और इस बॉल के लिए भी। ज्यादा पेस नहीं है, आके थोड़ा फेंकते हैं, छोड़ते हैं बॉल को, और दाद देनी होगी उनकी कंसिस्टेंसी की कि बार बार एक ही जगह पे बॉल किए जाते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको कामयाबी भी मिलती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची को चैंपियन बनवाने में और इस मैच को जितवाने में इनके फास्ट बॉलर्स का ही हाथ है। तो वापस आऊंगा वो जो बात हमने की थी पिछले ओवर में, तो जो बात एक और बहुत अच्छी मुझे नजर आई वो थी शान और साउथ ने जो मौका दिया है यंगस्टर्स को कि आइए बड़ा मौका है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसको दोनों हाथों से लीजिए। अब्दुल्ला फजल को जिसकी बात करें, हारून अरशद की बात करें, उनको ऊपर खिलाया गया, ऊपर वाले 3 नंबर्स पे बैटिंग दी गई, खुद शान नीचे आए, जिसकी वजह से उनको भी बहुत हौसला मिला, उनको ज्यादा मौका मिला, ज्यादा वक्त मिला क्रीज पे रहने का, और उन्होंने भी करके दिखाया कि हमने उनकी जो सिलेक्शन है उसको सही प्रूव किया। जी हाँ, क्योंकि कुछ जो सीनियर खिलाड़ी इससे पहले खेलते थे, खुरम मंजूर या फिर फवाद आलम थे, वो अब कराची की टीम का हिस्सा नहीं रहे, और एक नए दौर में इस टीम को दाखिल होना है। क्योंकि साइम अयूब भी मैसर नहीं थे, वो पाकिस्तान की T20 टीम के साथ थे रावलपिंडी में। लेकिन बिल्कुल आपने वजह कहा कि पूरा फ़ायदा उठाया अब्दुल्ला फजल ने दोनों हाथों से इस मौके का। हारून अरशद फिर से, ये तो तेज लेग ब्रेक की तरह गई, जैसे गोया अब्दुल कादिर ने तेज गेंद की। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और ये हैरान और परेशान कर देती है बैटर को कि इसको खेला जाए तो कैसे खेला जाए, क्योंकि एंगल से बॉल आपकी तरफ आ रहा है और पड़ने के बाद गेंद बाहर को निकल जाता है, और जैसे आपने कहा इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बाहर निकलता है कि आपके पास एडजस्ट करने का मौका ही नहीं होता, इतना वक्त ही नहीं होता है, और यही खास बात रही है इस बॉलिंग यूनिट की। अब 3 स्लिप्स और एक गली रह गई, इससे पहले 5 स्लिप्स थी। यॉक करने की कोशिश की, अच्छा खेला, 4 रन के लिए उम्दा डिफ्लेक्शन, अच्छा इस्तेमाल किया इस लेंथ और रफ्तार का। एक और बाउंड्री विकेट कीपर बल्लेबाज अफजाल के लिए। जहाँ यहाँ पे खुशकिस्मत जरूर रहे, थोड़ा चौंका दिया अपने इस यॉर्कर से, और खुशकिस्मत रहे कि बल्ला वक्त नीचे आ गया और कनेक्शन हुआ और चौका हासिल किया। ये तो इन्होंने तो शायद ये
तहिया कर लिया कि मैंने सिर्फ चौके ही मारने हैं। 32 के 32 रन चौकों में ही हैं, 8 चौके लगा के 32 रन बना लिए, और यही सही अप्रोच है। मुझे लगता है कि आप अपने रन कीजिए तेजी से। फिर से वही तेज लेग ब्रेक की तरह मूवमेंट, बाउंस, अच्छा मुकाबला। गेंद और बल्ले के दरमियान 184 पे 5। यहाँ अंपायर्स ने फैसला किया है कि खाने और यहाँ पर नमाज जुमा का वक्फा कर दिया जाए। शायद बल्लेबाज भी इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सेशन में 39 ओवर्स हुए, खासा तवील दौरानिए का ये सेशन था। यह 3 घंटे का ये सेशन रहा और 39 ओवर्स में 172 रन स्कोर हुए, 5 विकेटें गिरी। अच्छी क्रिकेट हमने देखी, अच्छी तफरीह थी इस सेशन में। जो कम होता है क्रिकेट मैच में, एक सेशन में 184 रन और 5 विकेटें। यहाँ शानदार सेशन, शानदार क्रिकेट देखने को मिली हमें एक बार फिर कराची की जानिब से। अब्दुल्ला शफीक ऐसा लगा था कि शायद एक बड़ी इनिंग खेलने के मूड में है। इससे पहले आउट हुए अजान अवैस, हुरैरा का भी लगा था कि शायद आज दिन हो सकता है। काफ़ी शानदार विकेट की दोनों जानिब देख रहे, लेकिन तब एक ऐसा बॉल हुआ जो शायद उनके लिए खेलना बहुत ही मुश्किल था और अपनी विकेट गवाई। विकेट्स वक्तन फवक्तन गिरते रहे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक दूसरी जानिब ऐसे कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे और लग रहा था कि शायद वो एक बड़ी इनिंग खेलेंगे। लेकिन फिर एक ऐसा बॉल हुआ जिनके ऊपर उनका नाम लिखा था और अपनी विकेट उन्होंने भी गवाई। अफजाल मंजूर ने लंच से करीब करीब काफ़ी एंटरटेन किया, काफ़ी हिट्स लगाए, अपने 32 रन बाउंड्रीज के जरिए हासिल किए। और तो बहुत पीछे है ये मैच सियालकोट रीजन, क्योंकि 184 रन ही हैं और 5 विकेट्स इनकी गिर चुकी हैं। 5 मेन बैटर्स वापस जा चुके हैं। 39 रन बनाए हुरैरा ने, अब्दुल्ला टॉप स्कोरर रहे 59 रन बनाकर। और अब जो 2 नॉट आउट बैटर्स हैं वो है हमजा नजर, जिन्होंने 50 रन बनाए थे पहली इनिंग में, 9 रन पर मौजूद हैं, और अफजाल मंजूर, उन्होंने 32 रन बनाए हैं 43 ओवर में 184 रन। यहाँ साकिब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, एक एक विकेट हासिल की। मोहम्मद उमर और रमीज भी विकेट टेकर हैं। हैरान कुन तौर पर उनका जो इस्तेमाल था वो कराची के लिए अच्छा रहा, उसी से पार्टनरशिप ख़त्म हुई और कराची ने बड़ी हद तक टॉप ऑर्डर को मार गिराया सियालकोट के इस दूसरी इनिंग्स में भी। और इस वक्त जीत से वो हाथ मिलाने के फासले पर। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 और दूसरी में 458 रन बनाए। सियालकोट रीजन ने 266 रन बनाए पहली इनिंग्स में, खासा पीछे रह गए। 74 रन की बढ़तरी थे कराची को। यही वजह है कि बड़ा हदफ है यहाँ पर 533 का सियालकोट के सामने, और उसका पीछे करते हुए 184 पर 5 खिलाड़ी आउट हैं और एक सेशन का खेल बाकी है। तो इस वक्त खाने और नमाज जुमा का वक्फा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। वक्फे की दूसरी तरफ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे बराह रास्त एक्शन के साथ।
We're live from Qaddafi Stadium, Lahore. Airshal presents the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy Final, Day 5, second and the last session between Karachi region and Sialkot region. The two not-out batters. Sialkot region lost 5 wickets in that first extended session. That included the big wicket of Abdullah Shafiq, who looked good for his 50 before he went. Karachi, on the other hand, they're sitting pretty. Even if it's a draw, they will be the champions. But most likely, how the things have gone in the first session, they will be hoping and expecting that they will wrap it up pretty quickly after this lunch session. It has been a similar story in this inning too. Bowlers have been disciplined, and Sialkot region batters, they've been irresponsible on few occasions. And that can happen when you don't have a purpose. You just need to bat and bat. You can always get into that phase, into that zone where you're stuck between what to do, what not to do. And that's exactly what has happened with Sialkot region. Tariq Rashid all set. He's making sure that everything is in place to start the second and the last session, because this was just 2 sessions for today. Extended break. Mohammad Umar will start off the proceedings from the media center end. He will be bowling to Hamza, who's on 9 not out. And on target, like he's always been in this game. Always asking questions, always in that right area. Sialkot need 349 runs in this session with 5 wickets in hand. It's highly unlikely to happen. At this point, a draw will be a win for them, if they're able to get it, but almost again. Did it carry? He thinks it did. We'll have a look at it again. Harun Arshad, the fielder there at Gully. Thick outside edge, probably just bouncing in front of him. So it's been that sort of a game where any ball will get you out. First run of the session. Runs, in fact, couple of them, as I welcome alongside me the former captain Salman Butt. A very good afternoon to you. Thank you, Ali Bhai. Good afternoon to everybody watching. Yes, Sialkot are now 186 for 5. They've lost the whole of top order. Hamza, the half centurion from the first innings, is still there playing on 11. Afzal is batting at more than a 200 strike rate. 15 balls for his 32. And he's had a go at the bowlers. He's been successful so far. Maybe providing a little bit of entertainment for the people watching. But the result is just like the writing on the wall. Karachi Blues from here onwards should be the champions of the Quaid-e-Azam Trophy 2025-26. 347 more required. And this is the last session of this year's Quaid-e-Azam Trophy. Yeah, they've been brilliant. You have to say that. Karachi Blues, they've just outplayed Sialkot region in every department, in every session. Although it was not easy batting first, which Karachi Blues did.
But they stuck to the plan. They stuck to the strategies that they were given to them, especially the bowlers. Nicely driven, but no power, no timing at all. 44 overs done, 187 for 5. Different field settings for for Saqib when he comes to bowl. There are 4 slips in place. Brilliant. He's been very consistent. But when Umar bowls, there are 2 slips and a gully in place. Because he's been the pick of the bowlers. Where he is landing has just been different from all other bowlers that we have seen in this game. Yeah, the way he has been presenting the seam has just been outstanding. Consistently getting the away swing, and he has now 3 slips and a gully. This time a touch full in length, and Hamza looking to drive, doesn't get the timing. Yeah, they have a very short extra cover also placed for Hamza Nazar. Anything that goes in the air in that region, because he's bowling more of an outswingers. So there are most likely the ball might go in that area in the air. So that is why that fielder is being placed right in front of the batters, just to let him know that there is somebody waiting. Oh, kicks on. That's brilliant. Unplayable, to say the least. Yeah, this happened because he's always looking to come on the front foot. This was short and wide. Just look at this. It is on the 7th, 8th stump. But Hamza, because he doesn't go on the back foot, he was in no position. And that did bounce a bit extra. But the position that he was in, he was always going to struggle to hit the ball where he wanted. One eight seven is the score. Half of the Sialkot side back in the pavilion. Most wickets in Quaid-e-Azam Trophy. Ali Usman from Multan region picking up 48 wickets. 6 fifers. Brilliant performance. Saqib Khan, 45 wickets for him, so not that far away, but bowling quite a number of less overs, averaging 20, which is better than the first one, but 2 5-wicket hauls. Mohammad Abbas picking up 38. He is still going. He's really kept himself up to date in terms of fitness. He loves his bowling, bowls longer spells, and threatens any batter. That is how good he is, especially with the Duke ball in hand. Yeah, also good to see Ali Usman topping the list. The left arm spinner from Multan region. I had the pleasure to play with him in a grade 2 season when I played last. Nicely pulled. He'll find the fielder for just one run, who does well, really well. Mohammad Umar. This is a great prospect, Ali Usman.
Talk more about the great bowlers in that list. 45 gone, 188 for 5. Lots of good news as far as Pakistan cricket is concerned. Let's talk about HBL PSL, Salman Butt, due to happen next year. 2 new teams included. Really excited to see the pool increasing and increasing. More sponsors coming, more excitement coming. That was a pesh, but placed nicely for 4. So where the batting's been tough, boundaries keep coming. Played on the up, driven, not fully in control, but the timing good enough to take it to the boundary. The bowler has the right idea because the bowler is doing a bit, so they want to pitch it up, allow it to move, and look for the outside edges. And Mohammad Umar can also hit the stumps as well. He did in the last innings. Can bring the ball back off the seam. And this one comes back. And this time around, the umpire very quick to notify that the ball was going down the leg side. And Mohammad Umar just turns back. And he isn't satisfied. Just have a look at this again. Yeah, umpire is very right with his decision. Mr. Tariq Rashid has done a good job. Absolutely. Good umpiring. There's another one of the greatest umpire who has ever taken a field. Mr. Aleem Dar was now one of the selectors. He's in a deep conversation. This time other way around. That's what he's suggesting, that I can swing both ways. That has been the quality. That's brilliant from Mohammad Umar. Swinging the ball both ways. And the length has just been brilliant. We're never quite sure. Right, coming back to HPL PSL, Salman Butt excited about the 2 new teams being included in the pool. Great news. Yeah, obviously, great news for many. 2 teams come in. The number of matches increase, so good news for the viewers. Number of players increase, number of officials increase. Local industry becomes more involved. More chances for the players. More matches for the broadcasters. So everybody is happy. But just one segment of the society, when the traffic is slowed down. But I'm sure that the Pakistan Cricket Board and the local governments, they're now trying to manage different routes where obviously they look after people so that they do not get delayed in wherever they're off to. But one thing is for sure, Salman, that from the time that cricket came back to Pakistan to this day, where almost every series is happening in Pakistan, all those big occasions happening in Pakistan, Champions Trophy, take the example of Tri-Nation also, things have gone better and better and better. And inshallah, we are hopeful that in times to come, it will get more better. Yeah, thanks to Almighty that the people in charge and the supporting actors, the security personnel, and all the stakeholders have worked day and night, put their top efforts in
to making it all possible, and things hopefully are going to stay in the right direction. As this one is an inside edge, could have been easily stumps, but not to be. Lucky for Afzal, who now moves to 36 with this lucky chop. All boundaries. 9 boundaries for his 36. Although this one, not that he would be proud of, but the way he dealt Kashi Bhatti before lunch was just brilliant to see. It was very lethal, very brutal against him. I do not have a description for this stroke. This is, I think he played 2 or 3 shots in this delivery, and not one of them connected. Just have a look at this. He decides to go for the pull, then thinks it's not there, then he wants to flick it, and in the end it was too late to leave. So all 3 being played to 1 ball. This is some shot. Yeah, I'm 100% sure one part of his heart would be saying, leave it. The other part would say, pull it. Another part would say, flick it, as you said. Saqib has been brilliant. In these conditions, he is bowled superbly. He's opened up the batters, no matter whether it's a test player, an upcoming player, or somebody who's just scoring in boundaries. They've all opened up to this delivery. It's such a good ball. Pitching within the stumps, moving away off a length. Testing bowling this. Great view of the slip cordon. There's Usman Khan also. Extra cover catching. Again beaten outside the off stump. Interesting way of playing this ball again. It seemed as if he isn't sure whether to play or to leave, and when he tries to play it on the onside sometimes, and sometimes it's just no clue. At least he can make up his mind that every ball has been swinging away, so he can respond accordingly. But every time he's beaten, he looks super surprised. Well left. Saqib has beaten the batter Afzal. All ends up. This was some ball, and then it just got better. Wow. It is as if Dale Steyn is bowling some away swingers in Pretoria, and we all know who the batter is. Once again, beautifully bowled. Consistency. Amazing consistency from Saqib. He'll run in, continuously hitting the same line, same length, and beating the outside edge. 196 for 5. Yeah, there's been a difference
between the two bowlers. Umar on many occasions has been touch fuller. If you compare him and Saqib, and if you compare the field position in just a couple of slips for him, but Saqib has been in that amazing line and length, different from Umar, the length especially. The length Saqib balls at, you're quite never sure where to go, front foot, back foot, you want to drive or you can't drive, that length. But he's been bowling on those driving lengths where batters have made the connection with the bat. He's got the quality of bringing the ball into the right-hander also, so quality from both sides. Because he's got quality right next to him, right and left. Chan Masood and Saud Shakil smiling. He'll get couple. Direct hit was required. That would have made things very interesting. Also, the keeper Saad Beg, he was very casual. He should have been behind the stumps. He was just hoping for a direct hit. Just have a look at this. Plenty of time for the keeper to run up to the stumps. And he was so casual. Just have a look at this handy dab he wanted to do. Yeah. Or whether he was trying to do this fancy hand onto the ball and then the ball goes onto the stumps. But he was in no position to do that even. Even if he was behind the stump, Salman, he had enough time that he could have still gathered the ball and ran the batter out. It would have made things very close and interesting. Maybe he did not expect the batters to go for the second run. And sometimes in a dead rubber like this, when you know that the other team isn't putting up a chase, you can assume and not go through the full motion. Just have a look at him, just looking at the ball. Now he realizes that the ball might come, and then he isn't behind the stumps. This will come with experience. Okay. Well bowled. Probably at first instant, he thought that he should be going himself, like he has done on lots of occasions, running it to fine leg and gathering the ball. Once you look at the action replay, he first thought that he should be going towards the ball himself, and then realizing it has gone far enough that the fielder will gather around, then he had to run to the stumps. But still, I'll totally agree with you. He came to the stumps. He could have easily came behind the stumps. Have a look at it again. Yeah, perhaps this is the moment he realizes that there might be a second run being taken. And then he comes, but he gets in a position which isn't ideal. So things to learn on the way. He's a young boy, very talented, scored 1,000 runs in the season, done brilliantly, and all the rest will come with time. Beautifully bowled. Karachi boys have been consistently on line and length. That's why they are in this position. 48 bowled, it's 198 for 5. This is nicely placed, opening up the angle and getting a couple of runs.
First run other than the boundaries for Afzal. He's done well for his 38 runs, just 22 deliveries for him. 200 up for Sialkot. They've lost 5 wickets. Karachi Blues, on the other hand, they need 5 more wickets to win the game. Even if they don't win it, they'll still be champions. They put themselves in such a strong position yesterday. Fantastic, fantastic bowling. Great seam bowling from Saqib. Well, Afzal, he's got no answer to what Saqib is challenging him with. Just have a look at this. Once again, it is a difficult ball to handle, no doubt about it. He's consistently hitting the length, the right area, presenting the seam in the manner that it is required. The good thing is, he does not experiment much. He keeps it simple, sticks to his task, knows his strengths, and that is where he operates most of the time. And Salman, it's amazing to see, as you just said, the consistency he has. Because it's very easy for a young fast bowler to get carried away when things are going his way, when the condition suits him. But he's got a good brains on his shoulders. He's keeping his cool and being consistent. No matter what you do in life, if you have a brain that observes and helps you operate in the manner that is required conditionally or environmentally, it's a blessing. And he just keeps things simple. He hasn't looked to do anything extravagant. He's just pitching the balls in the right areas, allowing the ball to swing, and he's just asking the batters to come out and drive him off a length. And this one is short, and I think it's hit him on the helmet. We shall know if the doctor comes out to do the protocols. The umpire is asking him, and straight away the man is coming in. Yeah, the concussion protocols, they have to be followed. Every time the ball is hit above shoulder, anywhere there. Doctor will come, physio will come, he'll have a look at the condition of the batter. Always interesting. This part is always interesting. Different sorts of questions being asked. What they will be asking, where do you come from? What sort of questions are they asking? Where do you come from? How many siblings you have? Where are you now? Do you recognize me? At the moment, he's just shaking his head to suggest that he's fine. What if we ask, what's the situation of the game? So the doctor is off and running. Is done with his protocol. The batter is good to continue. Karachi needs 5 wickets to win the game and put some life in it. Sialkot would rather want to bore them, maybe play back a few overs which they bowled at them. Oh, Mr. Junezia, General Manager, Domestic Cricket. Senior General Manager, I forgot. He's always been very particular with his positions. This one is played to fine leg for another boundary. I remember Junaid was part of our under-19 team, and whenever he was asked, what is your batting number, he used to say, lower middle order. So he didn't like to be called tail ender. So he developed this new term, lower middle order. It's good to love the things you like, things you own. I believe he owns whatever he does. 4 slips, a gully for Saqib. 3 for 64 in his 15th over, his figures. In a game where nothing has gone Sialkot's way, you got to give the credit to Hamza, who played well in the first inning, surviving in the second. One of the few things that have gone right for Sialkot region in the game is his performance. Bowled well in the previous one, got a 5-er, came in this game as an all-round cricketer.
Got to give him the credit. 49 overs done, 207 for 5. आगे काफी आगे बढ़ी हुई गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया अफजाल ने और पहुंचा दिया उसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। तो एक जबरदस्त चौका अफजाल का। 211 अब स्कोर हो गया है 5 विकेटों के नुकसान पर। उमर पर थोड़ा सा प्रेशर होगा इस चौका लगने के बाद। देखना ये होगा कि अब अगली गेंद किस तरीके से करते हैं। ये शॉट थी, मुश्किल पेश आई थोड़ी सी, अंदर भी आई। सियालकोट के ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं उनको मुश्किल हुई है बैकफुट पर शॉट खेलने में, मां सिवाय अब्दुल्ला शफीक के। बाकी मानदा जो इनके बल्लेबाज हैं वो अगले कदम पर खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी गेंद की जो काट थी उससे परेशानी हुई और सीधी जाकर गेंद रान में लगी। अफजाल 28 गेंदों में 48 रन। जवाबी जारहियत की सोच इन्होंने अपनाई है जो कामयाब रही। और ये गेंद बहुत ज्यादा वाइड थी, लेग स्टंप के बाहर। अंपायर ने इशारा भी किया। इस तरह ये एक नहीं 5 रन मिलेंगे। ये तो सुपर वाइड थी, लगता है हाथ से गेंद छलक गई, स्लिप हुई और जो दूसरी लेग स्लिप है उसके सामने से होती हुई 4 रन के लिए बाहर चली गई। तो तोहफे के तौर पर 4 रन मिले हैं सियालकोट को। उमर ज्यादा जोर लगा रहे हैं, चाहते हैं कि अपनी विकेटों की तादाद को ज्यादा करें। अच्छा उछाल इस विकेट से इनको हासिल रहा है। इस ओवर में एक चौका लग चुका है लेकिन इनकी ज़ाहिर हिम्मत और तनदही की दाद देना होगी। ये गेंद नीचे रही, पिछली उछल गई थी गैर मुतवक्के तौर पर और ये उतनी ज्यादा नीचे रही, लेकिन दोनों बार ये स्टंप से दूर दूर थी, इससे फायदा नहीं हुआ मोहम्मद उमर को। लेकिन अब ये जो विकेट है ये अपने करतब दिखाने लगी है। अब ये गैर मुतवक्का तौर पर नीचे रही, ढूंढते रहे गेंद को, बैट के करीब से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लास में। तो हर किस्म की गेंदें की हैं उमर ने। कुछ गेंदें ऐसी थी जिसका सुध-बुध नहीं थी, कहाँ गेंद करनी है, कोसों दूर थी बल्ले से। वाइट के 4 रन 20 ओवर में दे चुके हैं। क्या फिर से बाउंसर करेंगे? स्क्वायर लेग पीछे है। वो अपील इनसाइड एज बिल्कुल नहीं था, यही कहना है अंपायर तारिक रशीद का। आखिरी 3 अंपायर्स पे ज्यादा दबाव आ जाता है क्योंकि उन्हें फील्डर्स और अपीलों के ज्यादा जवाब देना पड़ते हैं ऐसी पिचेस पे। अपील के अंदाज बदल गए हैं आप देखिए। अब बॉलर अपील करते हैं और जिसमें कोई इतनी हकीकत नहीं होती, कोई उसमें सूरत हाल के बरक्स बात होती है और अपील करते करते यूँ लगता है कि इल्तिजा भी कर रहे हैं और कुछ दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं बावाज़ बुलंद। एक और आला गेंद, ये बिल्कुल भी खेलने के काबिल नहीं थी, ये बहुत ही नाकाबिल यकीन गेंद थी। बल्लेबाज की सरासर खुशनसीबी। अब या तो ये गेंद बहुत बुरी खेले अफजाल, लेकिन दुरुस्त कहा आपने, ये बड़ी शानदार गेंद थी। लेट स्विंग हुई, बैट के बाहर वाले किनारे के करीब से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्रज में। अब पूरे अरूज पर है कहना होगा उमर, ये जोर लगा रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। इनकी मासवाए एक गेंद की सभी गेंदें विकेटों के अंदर थी, विकेट टू विकेट गेंद कर रहे हैं और परेशानियां हैं बैटर्स के लिए।
इस गेंद पर, इस पिच पर सबसे ज्यादा ये फायदेमंद और खतरनाक बॉलर साबित हुए मोहम्मद उमर। ज्यादा आगे गिरा बैठे, एक रन। हारून अरशद की बड़ी अच्छी फील्डिंग इस बात को यकीनी बनाया कि दूसरे के लिए ना मुड़ सके बल्लेबाज। 50 ओवर और 217 है स्कोर सियालकोट का। साकिब और मोहम्मद उमर, ये अच्छा लिथल कॉम्बो कराची के लिए फास्ट बॉलिंग में। साकिब का ज्यादा लंबा रन अप है, लेकिन दोनों ही की जो स्टॉक डिलीवरी है वो आउट स्विंग करते हैं और 50 रन अफजाल ने यहां पर मुकम्मल किए। सिर्फ और सिर्फ 33 गेंदों में उन्होंने जारहाना बैटिंग की, खुलकर खेले स्टोक और अपनी टीम को उन्होंने अभी तक हार से बचाए रखा है। 5 विकेटें जल्दी गिरने के बाद बहुत ज्यादा दबाव था सियालकोट पर। आखिरी दिन की पिच पर यह बड़ी उम्दा कारकर्दगी अफजाल मंजूर की। 33 गेंदें खेली, 50 रन बनाए और बॉलर्स पर मैं कहूंगा ताबड़तोड़ हमलावर हुए। टाइम्स एंड अगेन बीच भी हुए लेकिन सफर जारी रखा। तो ये बड़ी अच्छी कारकर्दगी है इस नुक्ता निगाह से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए अफजाल ने। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल अपना जाविया बदल लिया बल्लेबाज के करीब पहुंचकर। गेंद बिल्कुल अपना रास्ता ही बदल लेती। हमजा नजर 60 ऑड रन बना चुके हैं पहली इनिंग में। 64 रन बनाए थे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इस तरह होता रहा है। इस विकेट के ऊपर गेंद मूव होती रही है, स्विंग होती रही है, बैट के करीब से जाती रही है। लेकिन वो क्या आगे आ सकते हैं, एक कदम आगे आ सकते हैं? ये जो काउंटर के 51 ओवर पुरानी गेंद है। गुड क्वेश्चन, लेकिन ये इतनी तेज गेंदें करते हैं बाज़ औक़ात कि वो आगे आने का मौका ही नहीं देते। ये एक पेस बॉलर की खूबी भी होती है, इजाफी खूबी होती है। क्योंकि आप स्विंग को ज्यादा बेहतर निपट सकते हैं। लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हमजा। पहली इनिंग्स में इन्होंने 62 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इनको मौके मिले नहीं है। ये पिछले काफी सीजन से ये फर्स्ट क्लास टीमों के साथ हैं। पिछले तकरीबन हम इनको 6-7 बरस से इन आउट होते हुए देख रहे हैं। इस फाइनल में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, कल उम्दा स्पेल किया था शान मसूद के सामने और आज भी बड़ी उम्दा मुजाहमत पेश कर रहे हैं। एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी। ये जो सियालकोट क्रिकेट एसोसिएशन है, इससे मुतसिल जितने भी शहर या तहसीलें हैं, ये फालिया से ताल्लुक़ रखते हैं हमजा नजर। तो टैलेंट हर जगह से आ रहा है। ये खुशाइन बात है कि तवज्जो मिल रही है, एक रोज़गार भी है, रिस्पेक्ट है, एक्सपोजर है। तो ये सब कुछ क्रिकेट के की वजह से है। दिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर फालिया जाने का आपको इत्तेफाक हुआ? मेरे एक चाहने वाले हैं चौधरी नईम गुलजार, वो वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और क्रिकेट जब आप खेलें तो आपको बहुत से लोग मिलते रहते हैं। मेरे ये दोस्त उनमें से एक हैं, ये रीजन के प्रेसिडेंट भी रहे, बड़ी क्रिकेट की खिदमत की, इज़ ए गिवर। और उनके तवसत से वहाँ की जो सरगर्मियाँ हैं तारीख वो इल्म में आती हैं। तो क्रिकेट बड़ा इस लिहाज से बहुत से लोगों की दोस्तियाँ कायम हो जाती हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को, लाहौर में रहते हैं, क्रिकेट फ्रेंड्स होते हैं, वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। स्क्वेलर को फिर पीछे भेजा गया। बाउंसर के लिए 2 फील्डर थे, इसीलिए हमजा ने खुद को दस्तबरदार कराया इस शॉर्ट गेंद से।
ये पटकी हुई गेंद थी, पहले खेलने गए, फिर अपने आप को दस्तबरदार कर लिया। ये देखिए, ऐसे करना नहीं चाहिए, या तो आप खेलें और या आप छोड़ दें। ये गेंद अचानक ऊपर नहीं आई, इनसे कोसों दूर जाके इसको ज़मीन पर पटका गया था। और हमजा एक मुस्तरद बैट्समैन है, रन्स बनाते हैं। पुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, सही तरीका रोकने का नहीं था। यहाँ पर भी साइड बेस होना चाहिए। जब आप गेंद को रोकते हैं तब भी आपको साइड बेस होना पड़ता है, बॉलिंग करते हैं तब आपको साइड बेस होना पड़ता है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तब भी। इट्स साइड वे गेम। 219 पर 5। तीन सौ 14 रन सियालकोट की जरूरत है। उनकी 5 विकेटें बाकी हैं। आज के दिन अब एक सेशन का खेल बाकी है। तकरीबन 2 घंटे और 18 मिनट तक मजीद खेल मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे और आखिरी सेशन में है इस आखिरी दिन। 42 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। खूबसूरत शॉट खेला इस बार, थोड़ी सी फुर्सत दी अपने हाथों को और 2 रन हासिल किए। इस बात को यकीनी बनाया कि गेंद जमीन से लगी लगी जाए। हमजा नजर ने, रिवायती तर्ज के ये क्रिकेटर हैं, रिवायती अंदाज है, ऑफ स्पिन बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी अच्छे फील्डर भी हैं। और अब आपको लिए चलते हैं मैदान पर। इकबाल इमाम जो हेड कोच हैं कराची ब्लूज के, वो हमारे साथ हैं और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं इस गेंद के बाद। ये अच्छा हुक शॉट, 4 रन का इजाफा होगा। बेहतर पोजीशन में थे हमजा, गेंद ज्यादा तेज भी नहीं आई, खूबसूरत अंदाज से एग्जीक्यूट किया। ये जो पुल या हुक शॉट है, ये बड़ा एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये जरहाना स्ट्रोक होता है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन बड़े इत्मीनान से मैरिट पर थोड़ा फाइन खेले। जानते थे कि बैकवर्ड स्क्वायर पर फील्डर मौजूद है, हमजा नजर, और इसको पहुंचा दिया चौके के लिए बाहर। तो अच्छी बैटिंग हमजा नजर की जारी है। पहली इनिंग में कामयाब हुए और अब भी कामयाबी से इनका सफर जारी है। 54 गेंदें खेल चुके हैं। अच्छा स्टांस है इनका। ये अच्छे ऑफ स्पिनर भी हैं। कट, अच्छी कट है। अब ये खूबसूरत स्ट्रोक था, देख जिस ताल्लुक रखता था जिस तरीके से गेंद पर आए, और ये थिक एज था, बल्कि आप कह सकते हैं कि विद द मीट ऑफ द बैट इस स्ट्रोक को खेला और 4 रन हासिल किए हमजा नजर ने। यहाँ आजादाना तरीके से खेलने में कामयाब हुए। ये सीटी बजाती चली गई पॉइंट के बराबर से। 2 मुसलसल चौके, अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं हमजा। जी, तो इकबाल इमाम की तरफ आपको लिए चलते हैं, हेड कोच कराची के, और बहुत शानदार कारकर्दगी रही है कराची की। एक ऐसी टीम जो लगता था क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, फिर फाइनल तक आना और अब ट्रॉफी के बहुत करीब हैं। इकबाल साहब, आप और अपनी टीम कुछ अपने ख्यालात का इजहार कीजिए
कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम मुबारकबाद आपको दे सकते हैं, हम इस पोजीशन में हैं। जी अभी थोड़ा मैच बाकी है लेकिन काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है लेकिन और हमें ज्यादा यकीन है आपकी टीम में और नहीं पोजीशन में यहाँ से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और बाकी यही है कि थोड़ा सा टफ सीज़न था हमारे लिए क्योंकि क्वालिफाई राउंड खेलना था और उसकी सारा क्रेडिट हमारे प्लेयर्स को जाता है जिन्होंने बहुत अनथक मेहनत की और हमने जो एक महीने पहले हनी मोहम्मद ट्रॉफी से जो कैंप लगाया था उसका हमें बड़ा बेनिफिट हुआ, सारे लड़कों की फ़िटनेस काफ़ी अच्छी हो गई, तो एक कलेक्टिवली एफर्ट थी अच्छी पूरी प्लेयर्स एंड टीम की, तो उसका रिज़ल्ट आज अच्छा है यार। तो क्या समझते हैं कि इब्तदा जो थी वो थोड़ी सी सुस्त थी, ज़ाहिर है शुरू में मौसम भी ऐसा था, फिर पेशावर जाकर 2 मैचेस हारे, और काया पलट कहाँ से होती है कराची की इस टूर्नामेंट में देखिए आपके ख्याल में? पहले 2 मैच हमने अच्छे खेले थे, पहले हमने लीड ली थी पहले मैच में और दूसरा मैच हम जीत गए थे, फिर तीसरे मैच में हमें शिकस्त हुई थी फाटा से, तो उसके बाद फिर हमने फिर कमबैक किया, लाहौर के ख़िलाफ़ अच्छे पॉइंट लिए हमने, क्योंकि ओवरऑल हमने टूर्नामेंट में जो है ना पॉइंट पे ज़रा डिपेंड किया है और उस पर कॉन्सेंट्रेट भी ज़्यादा किया कि हमें पॉइंट्स बैटिंग के पॉइंट्स मिलते रहें। तो आप ये देखेंगे ये पॉइंट टेबल पे हमारी टीम के अगर हमने और पेशावर की टीम के मैच विनिंग बराबर हैं 5-5, लेकिन हमारे पॉइंट बहुत ज़्यादा थे इसलिए हमने पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे फिनिश किया। और यहाँ कॉर्ट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं कराची के तमाम ही खिलाड़ी। अंपायर जो है उनका ख्याल था गेंद पैड को लगती हुई गई है अंपायर जान का, लेकिन बहुत ही अच्छी टेक थी विकेट की बरसात बेग की। जी इकबाल। इकबाल, एक जो अहम सवाल है, सब लोग ये चाहते थे, यानी अहलियान कराची भी ये चाहते थे कि इनकी दोनों टीमें जो हैं वो इस सुप्रीम टूर्नामेंट में उसको शिरकत करनी चाहिए। यहाँ तक कि जान के लाले पड़ गई, एक टीम के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो ये बताएं कि आप कराची के रिहायशी हैं, नामवर खिलाड़ी हैं, जाने पहचाने हैं, क्या टैलेंट है और मुस्तकबिल करीब में क्या नवीद है कराची के खिलाड़ियों के लिए कि इनकी दोनों टीमें जो हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगी? देखें आज से इस साल से पहले लास्ट ईयर से पहले भी हमने जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी जीती थी, T20 भी जीता, वनडे कप का फाइनल खेला, अंडर 19 अंडर 15 सब चीज़ कराची ने जीती थी। लास्ट ईयर हमारी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी क्योंकि उस वक्त हमारे प्लेयर अवेलेबल नहीं थे, नेशनल ड्यूटी पे काफ़ी ज़्यादा थे, तो और कुछ छोटा सीज़न था जिसकी वजह से टीम में प्रॉब्लम हुई और हम 12वें और 13वें पोजीशन पे आए। लेकिन इस साल अब हमने जैसे टीम बनाई और लड़कों को इकट्ठा किया, इसमें जैसे सऊ शकील हैं, उन्होंने शुरू से हमारी टीम को लेके चले, और जब हम कैंप लगाए हुए थे तो सरफराज अहमद ने भी बड़ी एफर्ट की। और रही टैलेंट की बात तो अभी आप देखें हमने तीनों जो हमारे प्लेयर थे ऊपर के वो यंग प्लेयर थे, इस टूर्नामेंट में हमने 3 डेब्यू कराए और तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हारून अरशद हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, फ़ाद अमीन बॉलर थे हमारे, तो हमने 4 से 5 डेब्यू कराए इस टूर्नामेंट में, तो बैकअप अच्छा है और हमारी दूसरी टीम भी अच्छा खेल रही थी जो क्वालिफाई राउंड में थी, तो उसके काफ़ी प्लेयर ने अच्छे रन किए। तो लेकिन ऐसा है कि जैसे पहले भी कराची की टीमें 2 टीमें खेलती थी, तो अब इंशाल्लाह के दूसरे नेक्स्ट ईयर के हम ट्राई करेंगे कि हमारी दूसरी टीम भी क्वालिफाई करें। अच्छा इकबाल, आपकी टीम जो है वो जाहिर है कि पहली इनिंग से ही हावी रही है इस मुकाबले पर, और कल ऐसा लगता था हमें यहाँ बाहर से बैठकर कि आप जल्दी अपनी इनिंग्स जो है वो छोड़ सकते थे, आप आउट राइट विक्ट्री की तरफ जल्दी जा सकते थे, तो क्या ड्रेसिंग रूम में उस वक्त सोच थी, क्योंकि 500 से ज़्यादा रन तो कभी बने ही नहीं है पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? देखें ये इस वक्त जो हमारे फास्ट बॉलर जो हैं ये हम हनी मोहम्मद ट्रॉफी से खेल रहे हैं, और जैसे अब साकिब जो है हमारे साकिब खान जो है ये 12वां मैच खेल रहे हैं 4 डे, तो आसान नहीं होता। उमर भी जो है काफ़ी अरसे से 12वां 13वां मैच खेल रहे हैं, तो काफ़ी बॉलर भी थके हुए थे, तो और हमें नीड नहीं थी। देखिए हमने जब पहले बैटिंग की है तो जो थर्ड इनिंग होती, जो हमारी सेकंड इनिंग थी, तो कमांड हमारे पास थी कि हम मैच को किस तरफ लेके जाएं। अगर सियालकोट लीड ले जाती तो हम तेज़ खेलते, क्योंकि हमारी डिमांड होती कि फिर दूसरी, इस वक्त हमें नीड नहीं थी, तो इसलिए हम अपना जो हमारी प्लानिंग थी कि हम पूरा दिन खेलें। और आप ये देखें कि दोनों इनिंग चाहे हम भी कल एक दिन में आउट हुए, तो आज भी पोजीशन ये है कि हम मैच जीत सकते हैं। अभी 5 विकेटें रह गई हैं, तो मैच हमें थोड़ा सा अपने ईजी बॉलर को ईजी दिया था।
तो ये पिच कैसी रही है, कैसा तजुर्बा रहा है इस तरह की बाउंसी विकेट पर फाइनल खेलने का? देखिए बहुत अच्छी पिच थी और आप ये देखें 5वें दिन तक मैच गया, यहाँ पे सेंचुरीज भी स्कोर हुई, 5 भी आउट हुए और लड़कों को ऐसी पिच पे मौका मिलने चाहिए और ये एक पीसीबी का अच्छा स्टेप था कि कदाफी स्टेडियम में और ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे जो है मैच खेला, तो इससे लड़कों को काफ़ी बेनिफिट होगा। क्रिकेट ट्रैवलिंग मीन अ लॉट। ट्रैवल किया लाहौर, आए आप कराची से। हाउ वाज योर स्टे सो फार? आई मीन द होटल, द ग्राउंड कंडीशंस एंड ऑफ कोर्स पिच के बारे में तो आप बता चुके हैं। बिसाइड वेदर जरा थोड़ा इंडिफरेंट है यहाँ पर। देखिए वेदर भी बहुत अच्छा था और आउटलिंग भी अच्छी है, सारी ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ बेहतर है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही और विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर हम बड़ी मोहतात किस्म की आपको मुबारकबाद भी पेश कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इकबाल इमाम से गुफ्तगू हो रही थी, मंजर बदल जाता है और वो काफ़ी पुरुमीद हैं और ज़ाहिर उनको होना भी चाहिए। तारिक, अभी 53 ओवर का खेल बाकी है, 238 5 विकेटों के नुकसान पर 53 ओवर हो चुके हैं और अभी काफ़ी आज का खेल बाकी है। लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त कराची रीजन्स की टीम। साल अगर अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, हमसे को अब उन्होंने गेंद मिडल करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये सारी काविशें अभी कहना होगा कबल अज़ वक्त हैं, नाकाफ़ी हैं। अब मुश्ताक बॉलिंग करेंगे। फिर से बाल बाल बचे ऑफ स्टंप के बाहर, खतरात मोल लेते रहे हैं। पिछले ओवर में भी एक दो मौके हो सकते थे जब गेंद स्लिप से निकली है। अगरचे यहाँ पर मुकामी टीम कोई नहीं है, लोकल सपोर्ट ना तो कराची को और ना सियालकोट को हासिल है, लेकिन फिर भी ये मुल्क भर में, मुल्क से बाहर बड़ी दिलचस्पी से ये मैच देखा जा रहा है। जोरदार पुल ऑन साइड पर, गेंद उस तरीके से बल्ले पर नहीं आई जैसे चाहते थे बैटर अफजाल, लेकिन फिर भी दो आसान रन्स बन गए। मुश्ताक ये गेंद काफ़ी शॉर्ट की थी और अगर सही तरीके से मिडल कर देते इसको अफजाल तो ये यकीनी चौका होता, क्योंकि ऑन साइड पर एक फील्डर मिड विकेट पर था, दूसरा स्क्वायर लेग पर था। दरमियान में काफ़ी एक गैप था, चुगाफ था, जहां से 4 रन हासिल किए जा सकते थे। अफजाल जारहाना बैटिंग करते हुए 61 पर नॉट आउट हैं, सामना करेंगे अगली गेंद का। ये ऐसा शॉट था जिसमें वो थोड़े ओवर एम्बिशियस थे। गेंद की जो लेंथ थी वो और किस्म के स्ट्रोक की मुतकाजी थी। आप इसको जो कवर के एरिया वहां पर खेल सकते थे, इसको खींचने की कोशिश की, गैर मौजूद गेंद था, हिट लग सकती थी लेकिन पोजीशन ठीक नहीं थी। खड़े खड़े बल्ले को घुमाया। एक मरतबा फिर खतरनाक तरीका इख्तियार किया अफजाल ने और गेंद टप्पा पड़ने के बाद ऊपर रहती है और इसमें काफ़ी स्विंग भी है। ये बड़ी स्विंग हुई क्योंकि पीछे पड़ी थी गेंद। हुक करना चाहते थे, गेंद तेज निकली, खासी बाहर ऑफ स्टंप के। एक बार फिर एक्स्ट्रा बाउंस सा, ये लाहौर में हम पहली बार देख रहे हैं, इतना ज्यादा बाउंस विकेट में।
और मंजरनामा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का खासी हद तक बदल गया है। बहुत ही शानदार फाइनल अब तक रहा है और इसी पर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी, जो खुद क्रिकेटर रहे हैं। उनका खैर मकदम है कमेंट्री बॉक्स में। तो बहुत शुक्रिया जी, बड़े मेहरबान तारिक भाई। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जहाँ तो अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से यहाँ तक आए। और ये जो 10 टीमों का अब तक बहुत अच्छा तजुर्बा लगता है बाहर से जब हम देखते हैं, क्योंकि पहले 6 टीमें थीं और फिर 18-16 टीमें भी रहीं। तो ये लगता है कि अब ज़्यादा अच्छा तवाज़ुन आ गया 10 टीमों की आमद से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। जी बिल्कुल तारिक भाई, असल में हमें चेक करना ऑफ कोर्स कि अगर हम 6 टीमों पे जाते हैं, क्या हमारे पास कितना पूल, क्रिकेट का पूल कितना प्लेयर्स का पूल कितना है। तो हमने इस पर बड़ी वर्किंग की प्रॉपरली और उसके बाद इस पर बड़ी एफर्ट्स की और ख़ास तौर पे एक कमेटी जो थी प्रॉपरली हमने सारे प्लेयर्स के साथ, आके भाई के साथ, वाह भाई, हम सारों ने मिल के किया कि एक्चुअली क्या असेसमेंट हो सकती है। हम ख़ास तौर पे आपको पता है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की, क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन रखी जा सके, सेंटिटी जो है कज़न ट्रॉफी की, उस हवाले से यूनानिमसली फैसला हुआ कि हम इसको पूल को 8 से 10 कर सकते हैं। इनिशियली हमारा 8 टीम्स का था कि हम ताकि उसको लेके चलें, लेकिन साथ साथ जो है फिर हमें 7 ही 10 टीमों पे गए। इसी चीज़ को हम असेस करना चाह रहे थे एक्चुअली कि हम इसको जो है ख़ास तौर पे कि एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट हो और बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त रहा। और हमें हमारी जो असेसमेंट थी 10 टीमों वाली वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप देखें आखिरी घंटे में हमें नहीं पता था कि कज़न ट्रॉफी में कौन फाइनल में जा रहा है और हमें नहीं पता था कौन सी टीम रेलीगेट हो रही है। और मज़े की बात, जो टीमें रेलीगेट हुई ख़ास तौर पे उनमें से आप देखें 4 टीमें 5 टीमें जो एंड में थी वो आखिरी सबसे टॉप टीमों से पूरा मैच जीती। इट मीन्स के मतलब क्वालिटी में सब बराबर थी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह PSL का हमारा आगे भी टीमें बढ़ रही हैं, उस हवाले से हमारी 10 टीमों का फैसला ठीक है इंशाल्लाह। जहाँ हर टीम को यहाँ पर 9 मैचेस जो हैं वो कम से कम खेलने का मौका मिला है इस बार ट्रॉफी में। इसके अलावा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी इससे पहले हुई, उसके मैचेस भी मल्टी डेज से। बिल्कुल देखिए, हमने तो इस बात में बिल्कुल हम इस बात में क्लियर हैं कि कम से कम PCB कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट अगर करनी है तो ये 4 डे क्रिकेट होगी तो प्लेयर डेवलपमेंट हो सकेगी। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 30 मैचेस हमने करवाए, हर प्लेयर ने 5 मैचेस खेले हैं। अब सात बेग को देख लें, इन्होंने 5 मैचेस अभी 20 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, 5 मैचेस 4 डे वहाँ खेलें। फिर उसके बाद जो है आज 10वां मैच जहाँ पे खेल रहे हैं, तो 15वां मैच लगातार जो है कम से कम खेल रहे हैं। तो जब इस किस्म की 4 डे क्रिकेट, लंबी क्रिकेट इनको मिलेगी और हर तरीके से माहौल में मिलेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने ओवरऑल अगर आप देखें हमारा पूरा शेड्यूल देखें साल में 104 4 डे मैचेस हैं जो ये प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टोटल ओवरऑल जो 104 करा रहे हैं, तो एक प्लेयर जो है यहाँ 15 मैच कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे जो है वो 7 मैचेस 8 मैचेस वो फर्दर भी खेल सकता है। तो ये ज़रूरी है, अगर प्लेयर डेवलपमेंट होनी है तो वो 4 डे लंबी क्रिकेट कम से कम खेलेगा, तो उसकी स्किल्स, उसका स्टेमिना, इस तरह कंपटीशन बेहतर होगा और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। अच्छा, बड़े अरसे के बाद देखा है हमने इस साल की जो क्रिकेट हुई, बैट्समैनों ने रन्स भी बनाए हैं, डबल सेंचुरी भी हमने देखी। फिर एक स्पिन का भी दौर आया, 2 से 3 राउंड्स ऐसे थे जहां स्पिनर्स प्ले में ज़्यादा आए। फिर फाइनल में ये बाउंसी पिच, तो आपने काफ़ी हमने देखा है मुख्तलिफ तर्ज की पिचेस तैयार की गई इस ट्रॉफी में। बिल्कुल तारिक भाई, देखें जिस तरीके से अभी ख़ास तौर पे नॉर्दर्न में मैचेस हुए सारे, और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट आपको पता है थोड़ा ज़्यादा भी था। हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। हमने NCA के साथ मिलके, मिसबाल हक साहब के साथ मिलके, आकिब जवेद साहब से बात की कि आप लोगों को किस तरह चाहते हैं कि किस तरीके से हम इसको बेहतर करें। उन्होंने हमें टास्क दिया कि आप एक टूर्नामेंट में बैटिंग ट्रैक भी दें ताकि फास्ट बॉल लंबी ओवर कर सकें, फिर उस तरीके से बैट्समैनों को पूरी अपॉर्चुनिटी हो। फिर उसके बाद हमें उसी ट्रॉफी के अंदर अगर आप हमें दे सकें कि एक स्पोर्टिंग ट्रैक्स जहाँ पे बैट्समैनों को भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर हो लेकिन फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करें, देन एक राउंड कराएं जहाँ पे स्पिनर्स हों, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हो, और ताकि आइडेंटिफाई कर सकें
कि हमारे डोमेस्टिक में स्पिन को खेलने वाले सब कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, कौन से ऐसे प्लेयर फास्ट बॉलर्स को स्पिनर्स को दोनों अच्छा खेलते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं सिर्फ जो है वो बैटिंग पे करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सारे मॉइस्चर कंटेंट के होते हुए चीज़ें होते हुए क्यूरेटर डिपार्टमेंट ने बड़ा भरपूर काम किया हमारा और वो सक्सेसफुल रहा। आपने देखा कि हमने पहले जो है इसके 3 मैचेस जो हैं बैटिंग, फिर हमने स्पोर्टिंग, देन लास्ट 3 जो है स्पिन विकेट्स आपने देखे, बड़ा ज़बरदस्त रहा। जी हाँ, और अभी भी मैदान में दोनों टीमों के दरमियान फाइटिंग स्पिरिट जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि ये आखिरी दौर है इस ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है। बिल्कुल, अभी हमने ख़ास तौर पे फाइनल के लिए भी फैसला किया कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इजी ट्रैक कम से कम, क्योंकि अगर 5 डे क्रिकेट है, 4 डे खेले थे तो ये मैच 5वें दिन जाए, तो डेलिबरेटली विकेट को ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, हालांकि हमने इसको ड्राई रखा, इसको कॉम्पैक्ट रखा ताकि एक लंबी क्रिकेट हो सके जिसको हम मिस कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त मैच जा रहा है और कराची ने बहुत ज़बरदस्त डोमिनेट किया और ये क्रिकेट का हुस्न है कि अब सरवाइव करना है और फिर बाउंस बैक करी है सियालकोट और टीम को, बहरहाल इस मैच को आगे लेके प्लेस चल रहे। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ को इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए हमने ये ख़ास तौर पे, हम चाहते तो इसको स्पोर्टिंग विकेट बना सकते थे, घास वाला बना सकते थे, 3 दिन में मैच हमारा ख़त्म हो जाता, लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जहाँ एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे तो हमने कहा फाइनल जो है हमारा पहले से तय था कि हम यहाँ पे फाइनल पे जो है ख़ास तौर पे जो है हम इसको थोड़ा सा सरफेस जो है अपना बेहतर रखें। जी, अंपायर ने शायद ज़रूरत महसूस की है कि खिलाड़ियों को पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हम देख रहे थे दर्जा हरारत बढ़ रहा था दोनों टीमों के दरमियान। अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक। और हम थोड़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक जो क्रिकेटर है, एक जो आम जो एक बच्चा है क्रिकेटर बनना चाहता है, वो फर्स्ट क्लास के मकाम तक पहुंचना चाहता है, तो कुछ उन मराहल के मुतालिक बताइए, नए स्ट्रक्चर से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अगर किसी ने फर्स्ट क्लास प्लेयर पे पहुंचना है, कोई हमारा कोई भी बच्चा है, उसके लिए बड़ा सिंपल है। पहले हमारा ख़ास तौर पे क्लब क्रिकेट एक बुनियादी इकाई था डोमेस्टिक क्रिकेट की। अभी आपने देखा कि इस साल हमने पीसीबी ने खुद अपनी फिनांसिंग के साथ जो है स्कूल क्रिकेट का आगाज़ किया। तो कोई बच्चा भी अगर स्कूल लेवल पे पढ़ता है और एजुकेशन है और टैलेंटेड है तो वो अपने स्कूल से पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में वो टॉप परफॉर्मर होगा तो हमारी रीजनल टीम्स होती हैं अंडर 15 की, अंडर 17 की, तो वो टॉप परफॉर्मर जो अपने डिस्ट्रिक्ट का बच्चा जो है वो अपनी रीजनल टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन में आ जाएगा और फिर रीजन की नुमाइंदगी करेगा। साथ साथ क्लब क्रिकेट में भी जो हमारे रीजन में खेलता है वो क्लब क्रिकेट में भी पार्टिसिपेशन उसकी मस्ट होती है। तो इस तरीके से पूरा ट्रैक है कि क्लब क्रिकेट से फिर आप चैलेंज लीग है, 2 डे क्रिकेट, पहले क्लब क्रिकेट 1 डे है आपका, फिर चैलेंज लीग आपकी 2 डे क्रिकेट हमने ताकि 2 डे क्रिकेट खिलाया जाए, फिर हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट 3 डे क्रिकेट है, अल्टीमेटली फर्स्ट क्लास जो हमारी 4 डे क्रिकेट है फर्स्ट क्लास में, फिर इसके बाद हमारे पास 1 डे टूर्नामेंट और फिर 2020 ये तीनों फॉर्मेट्स आ जाते हैं। तो हमने नीचे लेवल पे कोशिश की है कि क्रिकेट को थोड़ा सा लंबा रखें ताकि जो क्रिकेट एज अ स्किल जो है वो डेवलप हो सके, स्टेमिना डेवलप हो सके, इंडोरेंस बेहतर हो सके और कंपटीशन बेहतर हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने बचा कहा। ये जो स्कूल क्रिकेट है, क्योंकि आपके दिल के करीब है, ये मंसूबा ज़्यादा और इसमें बहुत मेहनत की है आपने हमारे सामने पिछले कई बरसों से। तो इस साल तो लाहौर के तकरीबन तमाम ही जो अहम स्कूल्स हैं उनकी टीमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में। हम HSM कॉलेज को देख रहे हैं, बीकन हाउस को, और जो दीगर स्कूल्स हैं, DPS में ट्रायल्स हो रहे थे यहाँ मॉडल टाउन में, तो कुछ इसकी वजाहत कीजिएगा। तारक भाई, स्कूल क्रिकेट के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारा जो पीसीबी का विजन है जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने हमें दिया है कि हमें स्कूल क्रिकेट विद इन स्कूल्स करानी है। मतलब अगर हम लाहौर को एग्जांपल लेते हैं तो लाहौर में अभी 28 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी। पहले भी जब लोकली क्रिकेट होती रही तो कभी 20 से टीमें ज़्यादा नहीं बनी, 16 तक होती थी मुझे याद है, और अभी 28 टीम्स खेली और बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। अच्छी बात ये थी कि स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड्स में पायलट स्कूल ग्राउंड वादर रोड पे ये हमने एक्टिव किया विद द एफर्ट ऑफ जो है हमारे स्टाफ ने उसको एक्टिव किया, वहाँ पे मैचेस करवाए। फिर DPS स्कूल मॉडल टाउन का ग्राउंड हमने एक्टिव किया जो कि इनएक्टिव हुआ था, वो अभी एक्टिव हुआ। फिर HSN स्कूल से हमारे ग्राउंड थी। इसी तरीके से हम बाकी भी ग्राउंड स्कूल्स की ग्राउंड मैप करें पूरे पाकिस्तान में। हमारे पास 414 स्कूल्स ने अभी पार्टिसिपेट किया 39 डिस्ट्रिक्ट्स में,
और मैं आपको बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि उसमें से हमारे पास तकरीबन 74 क्रिकेट ग्राउंड्स हमने एक्टिव किए हैं स्कूलों के अंदर, और कोशिश की कि स्कूल क्रिकेट हो। और फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे मैचेस हुए, इंटर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट पे, अल्टीमेटली जो पंजाब के पाकिस्तान के जो है हर सूबे की एक टीम हमारे पास आ चुकी है। और इस तरीके से चेयरमैन साहब का विजन था कि जो बड़े शहर हैं तो वहाँ हम ख़ास तौर पे एक अलग से टूर्नामेंट कराएं और उसको इससे मर्ज करें। जिस तरीके से लाहौर में आपने अभी बात की कि बीकन हाउस और उसका भी फाइनल है एचईसन स्कूल का, इस तरीके से कराची में नया नाजमाबाद जो है आरिफ हबीब साहब ने स्पॉन्सर किया, उसका सारा पीसीबी के साथ मिलके वहाँ टॉप 8 टीम्स खेल रही हैं। इसी तरीके से फैसलाबाद में जो है कमिश्नर फैसलाबाद जो है उन्होंने उनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्पॉन्सरशिप किया और वो वहाँ की 8 टीमें खेल रही हैं फैसलाबाद में। और इस्लामाबाद में जो है सीडीएस स्पॉन्सरशिप कर रहा है और पेशावर में गन इंस्टीट्यूट वाले दोबारा स्पॉन्सरशिप करें। तो यहाँ पे टॉप की टीमें 8 और 6 टीमें इनकी खेलेंगी और उसके बाद जहाँ से 5 टीमें निकलेंगी और 5 टीमें ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। तो उसके बाद पे जो कंपटीशन होगा एक ख़ास लेवल पे आप समझें कि स्कूलों का ग्रेड 1 होगा और फिर एक चैम्पियन स्कूल पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का सामने आ सकेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हमने क्रिकेट को बेहतर करना है, स्ट्रक्चर को अच्छा करना है, बच्चों में अगर शौक हम चाहते हैं पैदा हो, तो स्कूल क्रिकेट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। जी हाँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और हमें ऐसे क्रिकेटर्स की ज़रूरत रही है पिछले काफ़ी बरसों से, जो कि तालीम याफ्ता हों, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को कैरी कर सकें। और जी तारिक भाई देखिए, लीडरशिप रोल भी वहीं ये से आता है। लीडरशिप रोल, एजुकेशन, सब चीज़ें हैं। देखें, हम समझते हैं कि क्रिकेट स्कूल्स ना एक नर्सरीज हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर आप बात दुनिया में देखें, श्रीलंका का सारा स्ट्रक्चर जो क्रिकेट का स्कूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंडिया में बड़ी एक्टिव है स्कूल क्रिकेट हर चीज़। और उसके बाद अगर हम इंग्लैंड को देखें, आप बड़ा ही ऑर्गेनाइज स्कूल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल क्रिकेट से कोई पढ़े लिखे बच्चे आएंगे। असल में स्कूल क्रिकेट कराने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर शौक पैदा होना। आप देखें बच्चों का कल्चर हमारा जो है अब ग्राउंड्स में जाने का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। वीडियो गेम्स हैं, बच्चों के एजुकेशन का प्रेशर है, प्राइवेट स्कूल्स की ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। इस सिनेरियो में पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके, वो स्कूल क्रिकेट को कराए, ज़्यादा से ज़्यादा कराए, ताकि बच्चों के अंदर शौक भी पैदा हो, वहाँ से टैलेंट, अर्ली टैलेंट आइडेंटिफाई हो, हमारे सिस्टम में आए। लेकिन उससे ज़्यादा ये भी है कि बच्चों के अंदर जो स्पोर्ट्स से लगन कम होती जा रही है छोटे लेवल पे, उस लगन को भी बढ़ाया जाए। जी हाँ, 250 पर 5 खिलाड़ी आउट हैं सियालकोट की टीम के। 5 विकेटों के नुकसान पर 62 पर अफजाल मंजूर हैं। हमजा उनके साथ 39 रन पर खेल रहे हैं। हमजा ने एक और उम्दा इनिंग्स खेली है, अच्छी लड़ाई उन्होंने लड़ी है पहली इनिंग्स की तरह, दूसरी में भी। जी बिल्कुल, हमजा नज़र जो है इनका ताल्लुक गालबन मंडी भावुद्दीन से है और ऑलराउंडर है बड़े ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे जब स्पिन ट्रैक का रूज आया, क्योंकि सियालकोट की टीम इतनी बड़ी है, इसका आप बैकअप में देखें इतने सारे प्लेयर्स, मेहरान मुमताज़ भी बाहर हैं, तो इन्होंने वो जब स्पिन ट्रैक की विकेट आई फिर इनको मौका मिला और इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की और अपनी स्किल्स को इन्होंने प्रूव किया कि ये फाइनल में खेले। फाइनल में माशाल्लाह दोनों इनिंग में अच्छा जा रहे हैं। तो अब स्कूल क्रिकेट का फाइनल जो है उसकी तैयारियां जोर शोर। जी, लाहौर विंग का भी ज़ोर शोर से इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है फाइनल की डेट अनाउंस होगी। उसके बाद जो है कराची का बड़ी जल्दी फाइनल होगा, वो भी आप टेलीवाइज देखेंगे। और इसी तरीके से फिर फैसलाबाद में बड़े रूज में स्कूल क्रिकेट चल रही है और कराची में, और अभी एक 3-4 दिन तक जो है आप देखेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, और फिर पेशावर में भी ये स्कूल क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी। एक और अच्छा पुल शॉट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात हैं, 1 रन का और इजाफा। गाजी गौरी थे मुतबादिल फील्डर कराची के। तो अब एक्शन जो है वो शुमाल से और फिर यहाँ मशरिक से यानी लाहौर से होता हुआ अब ये हम जनूब की जानिब जा रहे हैं जहाँ तक डोमेस्टिक मैचेस का ताल्लुक है। बिल्कुल जी, जो अब माहौल आपको पता है कि वेदर जो है दिसंबर में हमें फिर सपोर्ट नहीं करता, ख़ास तौर पे नॉर्थ और फिर सेंट्रल में। अब हम कराची की तरफ जा रहे हैं और 8 दिसंबर को हमारा प्रेसिडेंट कप होने जा रहा है वनडे का, और उसमें 8 तारीख को बस स्टार्ट हो रहा है। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिपार्टमेंट्स ने टीमें फाइनलाइज कर ली हैं और आजकल डिपार्टमेंट्स के कैंप्स चल रहे हैं। और जैसे ही ये 25 को फाइनल ख़त्म होगा उसके बाद 28 से प्रेसिडेंट ट्रॉफी 4 डेज क्रिकेट वो भी कराची में हो रही है। कराची में इंशाल्लाह हम फुली तैयारी हो चुकी है और आप देखेंगे
कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, जितनी भी क्यूरेटर डिपार्टमेंट का जितने भी काम है, अब सिर्फ क्रिकेट जो है टिक करने के लिए नहीं होगी, बल्कि हमारी कोशिश है कि हमें ख़ास थीम से आप प्रेजेंट कप में देखेंगे तो आपको बैटिंग विकेट्स मिलेंगी और प्रॉपरली लंबे स्कोर्स मिलेंगे, ताकि वनडे क्रिकेट में लंबे स्कोर्स हो सके। और जब पाकिस्तान अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हमारी होगी तो पहले 3-4 मैचेस 6 mm ग्रास पे होंगे, स्पोर्टिंग होंगे, दोबारा से कराची के माहौल में जो है, फिर फास्ट बॉलर्स के लिए दोबारा लाइव होगी, फिर उसके बाद अगले 4 मैच फिर स्पिन ट्रैक्स में वहाँ पे खेले जाएंगे, ताकि अपॉर्चुनिटी एक ट्रॉफी में फास्ट बॉलर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए इक्वली, और बैट्समैन भी मुख्तलिफ कंडीशंस को अपने आप को एडजस्ट कर सकें। बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और विकेट कीपर को कैच दे बैठे। रमीज ने एक बार फिर पार्टनरशिप को तोड़ा। आज के दिन में दूसरी बार बहुत दूर से अपना बल्ला दे फेंका अफजाल ने और आसान कैच दे गए। और यहां से फिर एक खिड़की खुली है कराची के लिए, जहां तक इस फाइनल में कामयाबी का ताल्लुक। जी बिल्कुल, कराची अभी तक डोमिनेट करते हुए, और 533 टारगेट है। यही 112 रन की पार्टनरशिप थी। अभी भी करीब करीब 2 घंटे का खेल बाकी है, 1 घंटा 50 मिनट का। और ये शॉट जो है, शायद हम कहेंगे कि वक्त की जरूरत नहीं था, लेकिन अच्छा खेल कर गए। 256 पर 6, अफजाल आउट हुए। अंपायर ने रोका है, शायद वो देखना चाहते हैं नो बॉल, जिसका इम्कान बहुत कम है। वो छोटे रनों के साथ आते हैं, ज्यादा रफ्तार भी नहीं रमीज की। लेकिन बाज़-औक़ात जो है, आप कुछ नहीं कह सकते, क्रिकेट में कोई भी ओवर स्टेपिंग हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। यहाँ तो ये अब देख सकते हैं मिड विकेट के ऊपर स्लॉग करने के लिए गए। फर्स्ट क्लास फाइनल में ऐसा शॉट खेलने से गुरेज करना चाहिए था, खासतौर पर इस मौके पे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस मौके पे मेरिट पे खेलना चाहिए था, और ख़ास तौर पे अगर बॉल आउट स्विंग हो रही है तो आपके पास, और बॉल थोड़ी सी आगे पिच भी हुई है, तो आपके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है कि आप कवर ड्राइव के जरिए भी रन्स कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि स्लॉग इट खेलें। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट है आउट होना। ये अब्दुल्ला कुरम नियाजी साहब, एक और जो पहलू है जिसकी तरफ जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत बरसों के बाद हमने देखा है कि जो नया बैटिंग टैलेंट है उसने अपने जौहर दिखाए हैं। ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं या फिर अर्ली 20s में जिन बल्लेबाजों ने रन्स बनाए हैं, इस साल साद बेग सरे फहरिस्त रहे, उनने 1000 रन्स का हिस्सा अबूर किया। फिर जो अजान उवैस हैं सियालकोट के, शामिल हुसैन हैं इस्लामाबाद के। तो ये कैसा लग रहा है, ये जो यंग बैट्समैन रन्स बना रहे हैं फर्स्ट क्लास में? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसको देखें तो मैं तो थोड़े से फिगर्स मेरे साथ हैं, मेरा शौक भी है इसको देखें। साद बेग हमारे 19 साल के हैं, वो देखें 1000 से रन ज़्यादा किए हैं। शामिल हुसैन भी हमारे 21 ईयर्स के हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। और उसके बाद शाहजेब खान जो है, ख़ासतौर पे अभी पाकिस्तान अंडर-19 में भी खेल रहे थे, 20 साल के बच्चे हैं, इन्होंने भी तीसरे नंबर पर रन्स किए हैं। फिर साद खान जो हमारे ख़ास तौर पे जो भी एज अ गेस्ट प्लेयर खेले थे भावलपुर से, अजान अवैस, हसन रज़ा, खुशदिल शाह, मोहम्मद अमार, शान मसूद। तो ये 9 प्लेयर्स जो हैं हमारे, ख़ास तौर पे इन्होंने टॉप पे परफॉर्मेंसेस किए हुए, लेकिन सबके सब लेफ्ट हैंडेड हैं। हम इस पर भी अभी वर्किंग करें कि यार ये क्या रीजंस हैं, और ख़ास तौर पे जो है लेफ्ट हैंडेड क्या वजह है, क्या वो डोमिनेट कर गए इस टूर्नामेंट में। इस पर भी मेरे ख्याल में हमें भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम फर्दर जो आपको भी सोचने की ज़रूरत है, हमारी रहनुमाई करने की ज़रूरत है कि एक मौके पे अगर आप देखें तो 12 से 13 टॉप परफॉर्मर जो कायदम ट्रॉफी के लेफ्ट हैंडेड थे। तो अभी भी अगर आप टॉप 20 में उठाएं तो टॉप 20 में आपको 14 से 15 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन निकलेंगे। या तो हमारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की स्किल्स बेहतर है, या फिर कहीं हम डोमेस्टिक में मिस कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड को आउट किस तरीके से किया जाए। जी हाँ, ये आपका बड़ा यहाँ ये नुक्ता है, ख़ास तौर पर दूसरा, क्योंकि मुमकिन है कि बॉलर्स जो हैं वो इतने कई बार आदी नहीं होते। एक वक्त था कि बहुत कम लेफ्ट हैंडर्स से, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत लेफ्ट हैंडर्स की बहुत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डोमेस्टिक में टॉप में 9 के 9 कोई एक भी राइट हैंडेड जो है उस तरीके से ऊपर नहीं आया। तो इसमें देखना पड़ेगा, या तो फास्ट लेफ्ट इज राइट फॉर पाकिस्तान। बस अभी तो फिगर्स तो ये बता रहे हैं। एक स्लिप है, गली है नए बल्लेबाज हसन अली के लिए। ज्यादातर खुलकर
खेलना पसंद करते हैं हसन, लेकिन यहाँ कितना जब्त कर सकेंगे ये देखना बाकी है। ये गेंद जो है ये इस सीजन में एक बार फिर नया हिसाब इस्तेमाल की जा रही है। ये जो ड्यूक गेंद है, इंग्लैंड में आमतौर पर इससे टेस्ट मैचेस और काउंटी मैचेस होते हैं, तो कुछ इसके मुतालिक बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं कप्तानों की, ऑफिशियल्स की, टीम ऑफिशियल्स की इस गेंद के पाकिस्तान में इस्तेमाल से मुतालिक। अच्छा, इसमें ना बड़ी हमारी डिस्कशन भी चलती रही। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली भी है और फिर उसको फॉलो भी बहुत ज़्यादा किया। हम कभी कोका बोरो पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम ड्यूक पे आते हैं डिफरेंट। तो आ, इसमें ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि बॉल्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पे विकेट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लें ड्यूक की बॉल है और अभी देख लें कि मैच चल रहा है, 5वें दिन पे मैच चला गया। और लेकिन कोका बोरा जो है ख़ास तौर पे अगर हम देखें उसके लेदर को, उसकी सारी वो हमारी बिल्कुल इन विकेट्स पे अनफॉर्चुनेटली जो है इस वेदर पे उससे इफेक्टिव नहीं रहता। 18 से 10 मैचेस ड्रॉ हो जाया करते थे, बहुत ड्रा होते थे। मतलब मैं सेंटर पंजाब में आपको तारिक भाई पता है कि सीओ भी काम किया। मतलब मैं देख रहा था 500-500 रन होते थे, 600-600 रन हो रहे हैं और विकेट पूरे दिन में कोई विकेट नहीं गिर रही। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस जो है बैटिंग की तरफ चला जाता था। और ख़ास तौर पे जो अर्ली ऑन 8-10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर कुछ हो गया। फिर स्पिनर्स के लिए भी मसला, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमने अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ों को देखें। इंडिया में एसजी बॉल होती है, वो आप जितनी भी खेलते हैं वो उसमें आपकी हैंड मिलती स्टिच जुलती बॉल है है, इसी गेंद से। हैंड स्टिच बॉल। देखिए ड्यूक को कोकाबरो को हम इस तरीके से करें कि एक है मशीन स्टिच बॉल, एक है हैंड स्टिच बॉल। हैंड स्टिच बॉल्स जो हैं अभी आप ये ड्यूक यूज़ हो रही है, अभी हम इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें। हम लोकली हमने सारे अपने मैन्युफैक्चरर को इकट्ठा किया, पीसीबी खुद मैन्युफैक्चर कराएगा इससे, मतलब हैंड स्टिच बॉल्स को, ताकि कॉस्ट कम हो सके, हम बाहर से बॉलें इंपोर्ट ना करें। कोका बोरा के दस पे भी हम करेंगे। तो अभी हम वाइट बॉल को हम अभी उसी को लेके चल रहे हैं कोका बोरा स्टाइल बॉल्स पे, और 4 डे को हम स्टिक हैं इसमें डोमेस्टिक में, लास्ट ईयर में भी, इस साल भी कि ये जो हमारा ख़ास तौर पे हैंड स्टिच बॉल है इसमें कम से कम कुछ है बॉलर्स के लिए कुछ करने को, और बैट्समैन के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन विकटें अगर हम साथ साथ ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज करते रहे, तो जिस तरह हम चाह रहे हैं, जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, बॉल को रिवर्स करना वो अल्टीमेटली वो होगा, बिल्कुल होगा। वो मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट और विकेट्स की तैयारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन दिस बॉल, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है। आपके जो क्यूरेटर्स हैं वो भी शाबाश के हकदार हैं, क्योंकि इस सीज़न में बहुत अच्छी विकेटें बनी हैं। तारिक भाई देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना ख़ास तौर पे अभी मोहसिन नकवी साहब का ख़ास फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। आप देखें अभी फैसलाबाद स्टेडियम में वहाँ क्लब क्रिकेट भी नहीं हो सकती थी, वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, पहले हमने नेशनल T20 कराया। इस तरीके से इमरान खान स्टेडियम पेशावर को अगर आप देख लें कि वहाँ पे काजन ट्रॉफी सारी की सारी हुई और वो भी अभी बंद था, उसको हमने एक्टिव किया। शेखुपुरा स्टेडियम में आप देखें ग्राउंड को एक्टिव किया। अब हैदराबाद स्टेडियम का ऑफकोर्स उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास इस साल जो है फर्स्ट क्लास की तकरीबन हम 20 से 22 ग्राउंड जो हैं फुली एक्टिव कर सकेंगे अच्छे तरीके से। और थैंक्स टू दी चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने फुल क्यूरेटेड डिपार्टमेंट को सपोर्ट दिया हम लोगों को, और हमें ग्राउंड्समैन, बजट, इक्विपमेंट, ख़ास तौर पे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का भी ग्राउंड्स के भी इक्विपमेंट, इसमें सुपर सापर, आपको गैंग मूवर्स, आपके कवर्स जितने भी हैं पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए, वो भी चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दे दिए। तो उनका बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं समझता हूँ बड़ी सपोर्ट है ग्राउंड का पोजीशन दिलवाने में और ग्राउंड्स पे काम करने में, क्यूरेटर डिपार्टमेंट को एक्टिव करने में। तो उसमें हमारे उस्मान अशफत जो हैं डिप्टी चीफ क्यूरेटर जो हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है पूरी, और उनकी पूरी टीम ने, जितने भी हमारा क्यूरेटर डिपार्टमेंट है, जो उनको अच्छी बात यह है कि उनकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि जो उनको थीम दिया जाता है कि जी अगले 3 मैचेस में आपने इस किस्म की विकेट बनानी है, तो वो उस तरीके से ज़्यादा तक तो ये उनको थोड़ी सी मॉनिटरिंग के बगैर ही वो ट्रेंड हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर क्रिकेट को बेहतर होनी है तो फिर क्यूरेटर डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है डोमेस्टिक में कि वो अच्छी विकटें बनाएं, और ख़ास तौर पे उस तरह की विकटें बनाएं जिससे कि ख़ास रिक्वायरमेंट जो है उनको दी जाए। हाँ, इसके अलावा क्यूरेटर्स, स्कोरर, अंपायर्स, स्कोरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बिल्कुल, स्कोरर्स को पहली बार हिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं।
अंपायर्स का और इनका सिस्टम अच्छा बनाया गया है कि जो परफॉर्मर बेस्ड सिस्टम है, इनके डिसीजन जो हैं जितने भी देते हैं, हम पूरी एक कमेटी नोटिफाई करें अभी जल्दी से, कि जो इनको अभी तो हम, मैं खुद भी और मेरी पूरी टीम भी, पूरा डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है कि एक एक जो जितनी भी अपील्स हुई हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, पूरा चेक एंड बैलेंस है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी अंपायरिंग जो है सारे एलीट अंपायर्स ने की है। जो कभी कभार पहले हमें रिपोर्ट होती थी कैजुअल एटीट्यूड है या उस तरीके से है, मैं समझता हूँ अब एक सिस्टम दिया है अंपायर्स को ख़ास तौर पे मैच ऑफिशियल्स का, कि रेदर देन कि हमारी अपनी चॉइसेस हों, एक सिस्टम हो, उसके मुताबिक इनको अपॉर्चुनिटी मिले और उसके मुताबिक ये भी परफॉर्म कर सकें। इनके नए कोर्सेज भी हमने अभी करवाए हैं अंपायर्स के, लेवल 2 कोर्सेज, लेवल 1 3 कोर्सेज वगैरह हम करा रहे हैं। और ख़ास तौर पे कि प्लेयर डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे मैच ऑफिशियल्स की डेवलपमेंट भी ज़रूरी है प्लेयर डेवलपमेंट की। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा आपको बोर्ड एक सही सिमत में जाते हुए नजर आएगा। ये अच्छा शॉट, फुल टॉस बना लिया, कोई फील्डर नहीं है ऑफ साइड में, सामने बल्लेबाज के अच्छे टाइमर हैं हमजा, उम्दा ड्राइव करते हैं, एक और चौका। एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लाहौर क्रिकेट का शहर है और इस साल यहाँ पर कम हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एक टेस्ट मैच हुआ, अब ये फाइनल हो रहा है लाहौर में। आप समझते हैं कि कुछ फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ जो हैं उन पे खेल होना चाहिए, ये जो रेड बॉल क्रिकेट है? तारिक भाई आपने बिल्कुल बात ठीक की है, अभी हम इसको फोकस करें। असल में हमारे पास एक एलसीसी ग्राउंड ही ऐसा है जहाँ पे हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट करा सकते हैं। क्योंकि अब मौसम भी अच्छा हो गया लाहौर का सर्दियों में। मौसम भी अच्छा हो गया, अभी हमने इसको इंशाल्लाह रोटेट करेंगे। हम हर साल नॉर्दर्न में नहीं रहेंगे, हमारा अगला अभी हम प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हमने शेखुपुरा स्टेडियम का पूल हो गया हमारा, फैसलाबाद स्टेडियम में 4 डे मैच नहीं करा सके हम इस साल अभी तक, और कदाफी स्टेडियम, एलसीसी ग्राउंड, और उसके साथ साथ अभी पीसीबी लाहौर में कुछ 4 से 5 ग्राउंड्स उनको मिल चुकी हैं पीएचए से, उस पर काम करेगा, उसको डेवलप करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा क्लस्टर लाहौर का, शेखुपुरा का, फैसलाबाद का हमारा, जहाँ ट्रैवलिंग कम हो, जिससे एक नॉर्दर्न में क्लस्टर है, इधर क्लस्टर बनाएंगे हम, और यहाँ पे 4 डे क्रिकेट भी लेके आएंगे आप देखें नेक्स्ट सीज़न में, क्योंकि हमें ख़ास तौर पे जो है सितंबर से दिसंबर तक, नवंबर तक जो है हमें नॉर्दर्न में हमारे पास चॉइसेस होती हैं, या हमारे पास जो है सेंट्रल में। तो अभी नेक्स्ट हम सीज़न सेंट्रल में लेके आएंगे, फिर अंडर 19 वहाँ पे मूव करा देंगे, नेशनल अंडर 19 अंडर 15 के टूर्नामेंट्स। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से कंट्रोल डेवलप होता है, अपने पूरा कंट्रोल, क्योंकि नॉर्दर्न में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की ग्राउंड्स, केरल की ग्राउंड, पिंडी स्टेडियम, उसके अलावा जो है हमारे पास एबटाबाद स्टेडियम, उसके बाद हमारा इमरान खान एक बड़ा अच्छा क्लस्टर है, और हमारे कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मींस के वहाँ विकटें वगैरह पूरी पीसीबी ने उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट एफर्ट की हुई है। अब नेक्स्ट फेज़ हमारा इसी पुल पे आके इस पर करना है, ताकि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई ज़रूर जाए, लेकिन जो म्यार है विकटों का, ग्राउंड का, चीज़ों का, उसको भी मेंटेन रखा है। जी हाँ, क्योंकि लाहौर में पिछले कई बरसों से इतनी ज़्यादा क्रिकेट हुई नहीं है। एक तो कोरोना पहले वो मसला रहा, उसके बाद ये स्मोक थी, उसकी वजह से भी ये शहर क्रिकेट से महरूम होकर रह गया। वो बिल्कुल मसाइल थे सामने के, लेकिन अब जो है हम बहुत खुश हैं इस तरह तारिक भाई के वेदर में। देखें हाँ। ओपनली बात करनी चाहिए कि लाहौर और कराची के मसाइल एक जैसे हैं, कि यहाँ मतलब ग्राउंड्स की कमी है, जो ग्राउंड्स हैं वो मेंटेन नहीं है, ऑफ कोर्स के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचए या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, स्पेशलाइज एजेंसीज नहीं है, और जब तक पीसीबी इंटरव्यू नहीं करेगा, जब तक टेक्निकल स्टाफ डिब्यूट नहीं करेगा, तो स्पाइस के साथ प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं हो सकती। तो कराची में यूबीएल ने एफर्ट की है, नेशनल बैंक ने क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है, स्टेट बैंक ने, 3 बैंक्स के ग्राउंड्स और प्लस पीसीबी के अपने ग्राउंड्स, नया नाजमाबाद एक एफर्ट है, लेकिन फिर वहाँ आप देखें क्रिकेट बहुत होती है, केसीसी में क्रिकेट बहुत होती है, वहाँ पे आपको उस तरीके से आप चाहें कि जी मैंने 6 ग्रास के साथ क्रिकेट करानी है तो नहीं करा पाएंगे। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह आप 1 साल सिर्फ हमें दे दें या 5-6 महीने दे दें, आप देखेंगे कि कराची में भी एक्स्ट्रा ग्राउंड डेवलप करेंगे, लाहौर में भी डेवलप करेंगे, और जब वो अच्छी विकटों पे
जब अच्छी विकटों पे हार्ड विकटों पे क्रिकेट होगी तो उसमें ओवरऑल क्रिकेट इंप्रूव भी होगी लाहौर में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट इन शहरों में भी देखेंगे। और इसके साथ साथ एक अहम बात करूं कि हमने तो सौदर्न पंजाब को भी डेवलप किया इस साल। भावलपुर हमने ड्रिंक स्टेडियम हमारा उसको हमने दोबारा से एक्टिव किया। क्योंकि उसका बड़ा करेक्टर है, एक अपना करेक्टर है स्पिन बॉलिंग बिल्कुल के हवाले से। और मज़े की बात स्पिन खेलने वहाँ के पर भी हमने स्पोर्टिंग विकेटें बनाई हैं, उन्होंने हेल्प आउट किया। फिर हिमजा खान में जो है स्टेडियम जो हमारा वो एक्टिव किया हमने, फर्स्ट टाइम 4 डे क्रिकेट कराई है। अभी वहाँ पे 3 विकेटें थी, वहाँ 5 विकेटें कर दी हैं, बढ़ा दी हैं विकेटें। फिर मुल्तान स्टेडियम में क्रिकेट एक पूल हमने वहाँ डेवलप किया है। अब हम मुल्तान में जो है हमारा इंटरनेशनल, आपने पुराना सुना होगा एक चांद बाग जो हमारा एक था, किला किला कासिम जो है ग्राउंड, इंटरनेशनल ग्राउंड था हमारा, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हुई सारी, और वो अभी वो खत्म रिडंडेंट कराया है। गया था, अभी हम खंडर उसको थे। अब हम उस पर टेकअप करें, अभी हम उसको टेकअप करें और उसको डेवलप करें। वहाँ हम इस क्लस्टर में पूल्स बना रहे हैं, इसी तरह हैदराबाद सक्कर और हब ग्राउंड का पूल बना के, कोयटा में पूल बना के, ताकि हम पूलिंग में फिर जहाँ हमारा दिल करे वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट करा सकें अपनी टॉप टियर की। ये 50 रन मुकम्मल हुए हमजा के। इस दौरान उनने शॉट खेला और ये देखिए यहाँ स्लैश करने में कामयाब हुए स्लिप्स के ऊपर से। 4 रन का और इजाफा, बड़ी अच्छी इनिंग्स, जिम्मेदाराना इनिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खुर्रम बहुत शुक्रिया रियाजी तारिक भाई, साहब, आपका बुलाने का बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक और यू, अल्लाह हाफिज़। आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हम सब के लिए आपने बड़ा मालूमात अफजा ये सेशन रहा आपके साथ। 59 ओवर्स हो चुके हैं और कमेंट्री बॉक्स में अब वापस आए हैं यहाँ अली यूनुस और साथ साथ सलमान भट्ट। You heard some great conversation between Tariq Saab and the director of domestic cricket in Pakistan. Lots to learn about how cricket operates domestically in Pakistan. Yeah, very happy director domestic walking out of the comms box because he is satisfied with the final, especially the pitch, the arrangements, the broadcast, everything that relates to him, along with the cricket. And this is a short one, a sharp one. Cole Road this time following Hassan Ali and hitting him. Don't know whether that but that has hit him on the head because he's going to take his helmet off. The doctor is going to run in and check the concussion. And Hassan Ali doesn't look very amused about it. So while the protocols go on, there's another look at this ball. Yeah, following hits him on the back of the helmet as he turns his face away. So Mr. Khurram Niazi was asked about the future grounds where he could shift the domestic, whether Lahore could be utilized as the main venue, as the northern areas were this time around. And we all know that once December kicks in, Karachi becomes the main venue because of the weather, because of the grounds, facilities that there are. And he was having high hopes of having a few grounds surrounding Lahore ready, maybe in the next season or maybe the next one. So that's good. When cricket comes along to a certain area, the ground development has to work. And I think it was a very pertinent and a good question posed by Mr. Tariq Said, which was well handled by the director domestic. And this pitch definitely, it has been lively. The course of the match doesn't really tell you the story, what kind of pitch this was. This has been a wonderful cricket pitch. It's just that the match has gone one-sided. Oh, this time way off target. One of the over given. Yeah, when you talk about the surface,
It has something for everyone. We've been talking about it. Good batters, technically correct batters getting hundreds. Fast bowlers taking wickets. Osama Mir, the leg spinner, getting a fifer. That's what happened with Hassan Ali. Previous delivery got hit on the back of the helmet. The next one he tried the bouncer again, but waved again too high this time. Wide called. This time around, it's way too high, and it's rightly signaled a wide. So with me, I have a few details regarding the prizes that are on offer. The best batter, best bowler, best wicketkeeper get 250k each for their performances throughout this Quaid-e-Azam trophy. The runner-ups get 4 million rupees. The winners get 7.5 million. And player of the tournament, there is nothing mentioned. So this is very important to be given incentives. These are a few strokes from the session. Hamza Nazar pulling one, driving one, and also cutting off the front foot, and then flicking one for 4 and beaten as well. This has been quite a frequent sight on this pitch. Batters have never looked well set because it has been offering movement in the air off the seam. So I've been confirmed that the player of the tournament gets the similar kind of money that the best bowler, best batter and the best wicketkeeper get. Don't you think he deserves a little more because he's the player of the tournament, all-around player? But all these things, the more they go up, the more encouragement they bring. Recently, in the DP World Asia Cup for Rising Stars, Pakistan Shaheens won that tournament. They were the only unbeaten side. They played some very good, exciting cricket, winning the final in the super over against Bangladesh. They beat India. They beat all the teams that were present, whoever they faced, actually, in the tournament. And Chairman Pakistan Cricket Board was also the president of the ACC, Mr. Mohsin Naqvi. He was there, and he was kind enough to visit the team and announce some handsome prizes for those boys as well. So all these signs are very encouraging for the players, their future development, and geeing them to carry on the hard work, to pursue the height of their skills, as 60 overs are now complete and Sialkot 275 for 6. Yeah, this is what most runs look like in Quaid-e-Azam Trophy this year. Saad Beg surely right up there with 1,000 runs. Shamil Hussain, another very talented left-hand batter, 899 runs. Shahzeb Khan, another talented left-hand batter from Aptabad region, 838. Saad Khan, another talented left-hand middle order batter, 837 runs. Azan Aves, another very talented from Sialkot region, left-hand batter. So most likely Saad Beg, who scored 1,000 runs, we might see him get that best batter award. And if we talk about the bowlers, there are some quality bowlers in that list also. Some good bowlers. .56 the average for Saad Beg. Shamil Hussain, very impressive with his average, 64.21. And to Salman's liking, all of them are left-handers. Everybody likes left-handers. Even the right-handers like the left-handers. This is how good they are. As this couple is taken, and Hassan Ali is just come off a hit on the head, and hopefully he's fine. Ramiz Aziz is having a good time of his life, bowling seam-up balls, getting the ball to just jag around. And the kind of pitch this is, even he has a few deliveries which just went over the stumps. Because he usually is an off-spin bowler whenever he bowls. So just enjoying some
Seam up deliveries, some medium pace, getting the movement. Most wickets in the Quaid-e-Azam Trophy, 25-26. Ali Usman, the leader, 48 wickets. And Saqib Khan, 45 in the second place. See, Ramiz squaring up batters. I'm sure this is the best pitch for bowling as far as Ramiz is concerned. Mohammad Abbas, Ali Bhai, is still there. 38 wickets, bowling wonderfully. What an average. 15.39, the best average in the Quaid-e-Azam Trophy. 4 fifers, 227 overs. He is very miserly when you talk about the economy. This has to be some sort of an art. Missing outside edge numerous times, Ramzan Azhar. Otherwise, it usually doesn't happen that you get beaten outside the off stump, the ball doesn't get an edge for so many deliveries. Yeah, talk about Mohammad Abbas, the skill, the quality he possesses is just marvelous. Still going well, still hungry to get wickets, still hungry to perform. 38 wickets with an average of 15.39. Left arm spin of Ali Usman topping the list with 48 wickets. Unless something very drastic happens and Saqib gets the remaining wickets, he will tie up with him. Yeah, the beautiful view of Gulbarg area of Lahore. Very nice, very green, very clear. Thankfully, the smog has stayed away. It has been clear. All those tall buildings making it even beautiful. A very, very pretty sight of beautiful Lahore from the drone. So the best fielder or the best wicket keeper we are talking about, we shall see the graphic and let you all know. Once again, Musaq Kolro just testing his short bowling skills, continuously bowling bouncers. Most dismissals as wicket keepers. Afzal Mansoor, the Sialkot region keeper. He's got 39 dismissals. And the rest, Muhammad Haris has 25, Ali Shan 24, captain of Faisalabad, Junaid Ali 26 in 5 games. But only Afzal Mansoor has played 10 matches. The rest are 9, 7, 5 and 9. So for the keepers, it's very important to play all the games to be in this lineup. Yeah, wonder Salman, how this, when you come to judging who's the best or the award, who should get the award, is it just the number of dismissals? Is it on the quantity or the quality of dismissals? Same goes with the player of the, as a batter, as a bowler. A very, very good question to ask, and these days numbers count for a lot, even more than they are worth at times. Oh, another short ball, and this time it's gone. Umpire raises his finger, and Hamza Nazar will have to walk back to the dugout. So the bouncers were pretty consistent, and finally they have broken through. Yeah, the hard work finally paid off for Mushtaq. He's been bending his back in this spell, looking for a wicket, and finally got one.
He was persistent with the bounces and finally he got one to Saad Beg that ends the resistance of Hamza Nazar, who played really well for his 56 runs. Scored a 50 in the first inning also. So 7 down now, Sialkot with 281 on the board. Right, the captain now of Sialkot region, Osama Mir. He walks in after the dismissal of Hamza Nazar, who scored 56 runs. Karachi Blues are just minutes away becoming the champions of this year's Quaid-e-Azam trophy. And I keep on repeating this. It's such a excellent feel for them, because at one point they were not even qualifying for this event, and then being qualifying, getting into the event, then going on to win the event. It's such a special achievement for Karachi. Very true that, Ali. It's a great feeling to come from behind and end up as the champions. As Mushtaq runs in looking for another wicket. Or very nearly inside edge. Will get Osama a single. Kashif Bhatti does the fielding part. This is the bouncer. Hamza Nazar looking to hook it because it was way above his head. It was well directed. The line was good. And he got the better of the batter. Very nearly, he just hit the leg stump maybe. The batter just going too far across towards the off stump. And Mushtaq has taken 1 for 68 and has a ball to go in his 14. Yeah, not the first time that Karachi Blues or the Karachi has qualified for the final, but this tastes different, I guess. This field is different. Oh, that's been thumped straight down the ground. He's hammered this for 4. That's how Hassan Ali plays. He hits them hard because he's got the great swing off the bat. 286 for 7. Right, I said minutes left for Karachi to become the champions this year. But this is most dismissals.
We all know by now that Afzal Manzoor is the leading wicket taker. Everyone knows by now. Ramiz Derelstein, the way he's bowling, getting the movement, enjoying, smiling, gets easier when everything is going your way. Wonder if the situation was different, Salman, had Sialkot needed 150, 180 runs in the second session with 5 wickets or 4 wickets to go. Wonder if then Ramiz would ever bowl or think of ever even bowling at this time. You won't be talking about Ramiz, you'll be talking about the captain then. That's how it would be. And Karachi Blues, the titles that they have won, 9 titles, starting from 1961-62 season, winning by 4 wickets. Alimuddin, the first captain, and then 63 it was Waqar Hassan, 64 Waqar Hassan again, Intikhab Alam Sahab in the 70s, 1994, long wait till the 5th title as Osama middles this, and there's the fielder back. We'll just keep it to 1. So coming back, 94-95, Shoaib Mohammad, one of my coaches in the under-17 Asia Cup. Karachi Whites winning it in 95 again, Asif Mushtaba. And in 1997, Asif Mushtaba again in Peshawar. Then Mohammad Sami versus Habib Bank in 2009 and 10. And then 2012 and 13 against Sialkot, Khurram Manzoor the captain. And this time, the captain would change, but the opposition seems the same. In fact, is the same. And venue is the same. But I still believe all those victories you just mentioned, I think this one will taste the sweetest. Because who would have had thought that Karachi would not be in Quaid-e-Azam Trophy playing first-class cricket, and then coming in and dominate the trophy all through the round matches, and then the final. Brilliant. 287 for 7. इंग्लिश वाला है ना जो ज़रूरी 16 ओवर्स होते हैं, आखिरी ज़रूरी 15 ओवर्स, उनसे पहले अभी मज़ीद 16 ओवर्स होंगे, लेकिन रोशनी जो है वो देखा गया है वो 4:30 बजे के बाद खासी कमतर हो जाती है और खेल जारी रखना वो इतना आसान होता नहीं। तो आखिरी घंटे में मुमकिन है कि जो दोनों टीमें हैं वो हाथ मिलाने की तरफ जाएं, लेकिन अभी कराची की जीत का इम्कान है बराबर, 1 ओवर में भी फैसला हो सकता है।
उसामा 2 पर हैं। हसन अली 13 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में, उर्दू कमेंट्री बॉक्स में। तो अली, आज के दिन पर क्या, किस तरह इजहार ख्याल करने जा रहे हैं? वैसे ही तारिक भाई, जैसे हम पिछले 4 दिनों का करते आ रहे हैं कि कराची ब्लूज, कराची ब्लूज और कराची ब्लूज 5 दिन हावी रहे हैं, हर सेशन में हावी रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में हावी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। उनका मकसद ही अलग था, क्योंकि काफ़ी हर्ट होंगे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनका पहले क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर वहाँ से आए और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले, एक मकसद ही अलग लग रहा था। जीतना तो एक मकसद था ही, बट अपने आप को वो पॉइंट प्रूव करना कि आप कराची कैसे बाहर रह सकता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, और उसका इससे बेहतरीन जवाब कोई हो नहीं सकता था कि एक तो वो यहाँ से चैंपियन बनेंगे और जिस तरह की क्रिकेट खेल के, जैसे डोमिनेट करके वो ये फाइनल जीतेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जी हाँ, और सऊद शकील ने इस टीम को यकजा रखा है। अपने खिलाड़ियों का उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया, अच्छा कॉम्बिनेशन तश्कील दिया गया। इसके लिए जो कराची क्रिकेट की इंतज़ामिया है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जनाब नदीम उमर साहब और उनके जितने भी साथी हैं कराची में, क्योंकि कराची एक बार फिर चैंपियन बनने के करीब है। कराची की एक पुरानी रीत है वहाँ क्रिकेट की मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन की और अच्छे क्रिकेटर्स सामने लाने की। सिराजुल इस्लाम बुखारी के ज़माने में इनको बड़ी कामयाबियाँ मिली और नदीम उमर और उनके जो दीगर अहबाब होंगे बड़े खुश और मुतमईन होंगे। अपर कट किया ऐसे खूबसूरत तरीके से हसन अली ने 4 रन के लिए। फील्डर डीप पॉइंट पर थे और दूसरे डीप स्लिप में थे बाउंड्री पर। या ये तो कोई टॉप ऑर्डर बैटर का शॉट लगता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल शॉट था जिसे बहुत आसानी से हसन अली ने अपर कट किया है। जैसे आपने बोला, अच्छी पेस थी, देखिए करीब आने दिया, कलाइयों का इस्तेमाल किया और खेल दिया फील्डर के सर के ऊपर से। बेहतरीन शॉट। ये ऐसा ही शॉट एडन मार्करम ने खेला था आज से कुछ दिन पहले वनडे मैच में, एक नहीं 2 बार। तो ऐसे ही लगा कि शायद एडन मार्करम की रूह आ गई है 292 पे 7। साकिब खान अभी भी कोशां हैं मजीद विकेटें हासिल करने के लिए। अभी भी पूरी तरह तवाना, बेमिसाल उनकी फिटनेस रही है। अच्छा बॉलिंग रिदम। हसन अली दूसरी जानिब वो इतने कारगर नहीं रहे बॉलिंग में। अब बैटिंग में उनकी तरफ टीम देखेगी। हालांकि सियालकोट की टीम में टेस्ट क्रिकेटर्स शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक थे, हसन अली, मोहम्मद अली थे, हुरैरा टेस्ट क्रिकेटर हैं, फिर 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, उसामा उनमें से हैं, और हसनैन। तो वो जो कहा जाता है कि जब हम ही न महके तो फिर साहिब तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। तो अगर आप टेस्ट क्रिकेटर कहलाते हैं और सियालकोट के काम नहीं आ रहे तो सियालकोट वालों को तो यही गिला होगा। जी हाँ, और बिल्कुल जायज़ गिला होगा। आपने बहुत शानदार तरीके से एक शेर में ही सारी उनकी परफॉर्मेंस को बता दिया कि किस बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं, और बिल्कुल उनको अफसोस होगा इस परफॉर्मेंस से। जैसे जितने जितने बड़े प्लेयर्स का आपने नाम लिया, कुछ काम आया ही नहीं। हालांकि
जो सिर्फ एक चीज़ जो इस पूरे मैच में वो जीते हैं वो टॉस रहा है, उसके बाद से लेके हर सेशन हारे हैं। टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, बॉलर्स आई थिंक ज़्यादा जो कसूरवार मेरी नज़र में वो उनकी बॉलिंग लाइनअप होगी। और चाशिया और गेंद को उठा मारा लॉन्ग ऑन पर, और यहाँ ये बाहर गई है। फलक शगाफ छक्का हसन अली का, निडर होकर खेले। जो पिछले ओवर के आखिरी बॉल पे इन्होंने शॉट खेला था उससे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला होगा, और अब उस कॉन्फिडेंस को इस शॉट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। देखिए स्विंग तो हमेशा से इनका बहुत शानदार रहा है, जिस तरीके से ये बल्ले को घुमाते हैं, ये बेहतरीन टेक्निक होती है बड़ी हिट लगाने के लिए, कि आपका पूरा जैसे आप गोल्फ खेलते हैं आपका स्विंग आर्क पूरा बने। शानदार तरीके से टाइम भी किया है, बॉल दूर गया है काफी दूर 6 रन के लिए। एक और जो बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था, जब सियालकोट की टीम बैटिंग कर रही थी, और अगर ये 300 रन तक पहुंच जाते हैं, यहाँ दूसरी इनिंग्स में 300 तक आ गए, अगर ये पहली इनिंग्स में 300 इनका स्कोर हो जाता तो एक जो पॉइंट था इनको और मिल जाता, फिर पॉइंट्स बराबर हो जाते दोनों टीमों के, और उस सूरत में फिर मैं समझता हूँ कि ये और दिलचस्प मुकाबला होता, कि खेल की रफ्तार जो कल सुस्त पड़ गई थी, कराची उसका मुतहम्मिल नहीं होता। काफी गलतियां हुई हैं सियालकोट से, क्योंकि वो करीब थे, पहले दिन तो बहुत करीब थे, उनने विकेटें ली थी, इतनी अच्छी बॉलिंग ना करने के बावजूद। जहाँ हम बार बार जिक्र करते हैं कि मैच टर्निंग पॉइंट क्या रहा, वो मौका जब अब्दुल्ला शफीक रन आउट हुए, मुझे लगता है वहां पे सियालकोट की कमर तो टूट गई, क्योंकि अगर वहां पे अब्दुल्ला एक अच्छी इनिंग खेल जाते और जैसे आपने कहा कि 300 रन तक पहुंच जाते तो अब हालात मुख्तलिफ होते, शायद उसके बाद कराची भी इतना कॉन्फिडेंट होकर ना खेलता, अगर उनको भी पता होता कि रन इतने ज़्यादा नहीं है। तो सारा मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट रहा, जो मैच चेंजिंग, वो अब्दुल्ला शफीक का रन आउट रहा, उसके बाद से गेम बदल गई सियालकोट के लिए। 300 रन मुकम्मल हुए 7 विकेट्स के गवा के 65 ओवर के बाद। मुश्ताक जो हैं लंबे स्पेल करने की इनमें सलाहियत है, और ये इस तर्ज के बॉलर हैं जो कंडीशंस के मरहूने मिन्नत हूँ, अगर ऐसी कंडीशंस हूँ सीम और स्विंग के लिए तो फिर वहाँ ये अच्छा इंतखाब हो सकते हैं डोमेस्टिक टीम्स के लिए। जब मुश्ताक भी और बाकी साकिब भी और मोहम्मद उमर भी तीनों ही कंडीशन बेस्ड बॉलर हैं, और सोने पे सुहागा रहा कि फाइनल में उनको उनकी मर्जी का बॉल भी मिला, उनकी मर्जी का पिच भी मिला, और शायद अपोनेंट भी मिला जो कि ज़्यादा इतनी अच्छी डेप्थ नहीं थी बैटिंग में, एक्सपीरियंस उतना नहीं था। फ्लेयर ज़रूर था हुरैरा, अब्दुल्ला शफीक और अजान को लेके, बट वो एक्सपीरियंस जो कि इन पिचेस के ऊपर या इस बॉल के साथ आपको बड़े फाइनल में चाहिए होता है, वो थोड़ा मिसिंग भी था। तो हर चीज़ ही काम कर गई कराची ब्लूज के लिए इस फाइनल में। यहाँ इनफरादी इनामात भी दिए जाएंगे, बेहतरीन बॉलर को, बेहतरीन बल्लेबाज को और विकेट कीपर को भी। 2.5 लाख रुपया इनाम है इन सब के लिए, और यहाँ इनाम मिला उसामा को, सामने ड्राइव किया
3 रन का इजाफा कप्तान ने किया और बॉलर को खुद दौड़ के जाना पड़ा बाउंड्री तक। ये ऐसा मंजर भी हम शाज ही देखते हैं। जी हाँ, सोच रहे होंगे मेरा क्या कसूर है, इतनी लंबी स्प्रिंट लग गई बॉल करके। आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अच्छी एफर्ट की है और यही भूख, यही हंगर हम देखना चाहते हैं क्रिकेटर्स में। हालांकि उनको मालूम है कि रिजल्ट उनकी फेवर में जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक रन के लिए एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक चैंपियन साइड की निशानी होती है। इससे पहले हमने देखा था कि 7 बेग बहुत बार भाग के गए फाइनल की जानिब, एक एक रन रोकते हुए दिखाई दिए। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बड़ी जीत दिलाते हैं। प्लेयर ऑफ यहां पर मौका है, बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे पुल शॉट खेलने के और अच्छा कैच लिया हारून ने। पीछे की तरफ भागकर जाना, उनके सामने सूरज भी था और गेंद को जा लिया। और हसन अली ये अच्छा शॉट बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा ऐसे मौके पर, जब उनकी टीम को मैच बचाने की फिक्र करनी चाहिए थी। या क्योंकि पिछले 1-2 ओवर में उनके शॉट्स खुल गए थे, शॉट्स लग रहे थे। तो हमने बहुत बार देखा है जब आप उस जोन से बाहर आते हैं तो आप गलत शॉट खेल बैठते हैं। यही हुआ, बहुत बाहर और बहुत ऊपर की तरफ बॉल था ये। और जब जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पीछे बॉल किया गया है और उसको हुक खेलने की कोशिश की गई है, जैसे क्रिकेटिंग जुबान में कहते हैं कि बॉल खड़ी हो गई, और ऐसे ही कुछ यहाँ पे हसन अली के साथ हुआ। 25 रन बनाए उन्होंने 27 बॉलों पे, 304 पे 8।
मोहम्मद अली नए बैट्समैन, बैटिंग करने की इनमें सलाहियत मौजूद है। थोड़ा सा विकेट जो है वो सुस्त हुई है पिच में, और इस गेंद को जिसे बआसानी छोड़ सकते थे हसन अली, बहुत ज़्यादा उछल कर शॉट खेलने को गए और हारून ने बड़ा उम्दा कैच लिया दौड़ के। वो गेंद की ऊंचाई का गलत अंदाजा कर बैठे थे और बल्ला काफ़ी ऊपर चला गया हुआ था। वो बढ़ता क्या ना करता वाली बात थी। ही हैज़ टू हिट आउट, और इस तरह अपनी विकेट खो बैठे हसन अली। अब लगता है किसी वक्त धर्म भरम हो जाएगी सियालकोट रीजन्स की बैटिंग लाइनअप, और उसका शेराजा बिखर चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े ज़ोरों से अपने आप को मनवाया है कराची ब्लूज़ ने। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में, और इस जैसे आप कह सकते हैं कि दमखम वाली विकेट थी उस पर अच्छी बॉलिंग की। 305 8 विकेटों के नुकसान पर 66 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। मोहम्मद अली एक पर हैं, कप्तान उसामा ने 7 रन बनाए हैं। गेंद नीचे पे रह रही है। टेल एंडर्स को क्या फिर से यॉर्कर्स और बाउंसर्स के लिए जाएंगे? पूरी तरह फिट नहीं है मोहम्मद अली, इनके पट्टों में सख्त खिंचाव आया पहली इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए। इस वजह से दूसरी इनिंग्स में ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं कर पाए, उसका नुकसान हुआ सियालकोट को। ये ज़रा के एक सरकर्दा बॉलर हैं, 2 मरतबा गिरे, अपना तावज़ुन बरकरार नहीं रख सके, जिसकी वजह से वो आप कह सकते हैं कि इनके लेगमेंट्स तो डिस्टर्ब नहीं हुई होंगी, लेकिन खिंचाव ज़रूर आ गया है। बैटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो इनको फिटनेस के मसाइल थे वो गंभीर नहीं हैं। बहरहाल 305 रन बना लिए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एक और रन मुकम्मल कर लिया जबकि ओवरथ्रो हुई थी। रन्स के पहाड़ थे, 533 रन जैसा एक हदफ था। शाम ढलने को है और ये पीसीबी का सदर दफ्तर है। भद्रीज आपको हमने तमाम स्टेडियम और इसके गिरदनवा के जो खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से फ़िज़ाई मंजर है वो दिखाए, हर एंगल से, हर जाविये से। ऑफ साइड पर, सीधा पॉइंट पर। तो आज जिस तरीके से खेल हुआ, जिस तरीके से दूसरे दिन ही इसका अंदाज़ा हो गया था कि कराची ब्लूज़ ने अपनी जब सबकत कायम कर ली पहली इनिंग में 74-75 रन की सबकत ले ली, फिर ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये कराची बॉलिंग और बैटिंग में, इस मैच में कहीं आगे है सियालकोट रीजन से। इनके बैट्समैन, इनके बॉलर्स, फील्डर्स ने भी भरपूर साथ दिया इस विकेट के ऊपर, तवातर के साथ विकेटें हासिल करते रहे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगरचे कम लोग आए, क्योंकि एक वजह ये भी हो सकती है कि वर्किंग डेज भी थे, लोकल टीम भी इसमें हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई और दोनों तरफ से जोर लगाया गया। कराची की टीम मिलाकर सियालकोट पर हावी हो गई, और है कि कराची के लिए आज एक और बड़ा दिन है, तारीखी दिन है। इनके कप्तान, खिलाड़ी बजा तौर पर एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उस्मान हंस सकते हैं क्योंकि इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा रही। हाँ, ये वो वक्त होता है किसी भी क्रिकेटर को मैदान पर जांचने का बेहतरीन पैमाना जो है, वो कितनी मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर। इन दिनों T20 टीम में अच्छी वापसी की है, काफ़ी अरसा पाकिस्तान टीम से बाहर रहे।
उस्मान और HBL PSL में मुल्तान सुल्तान के साथ भी इनका अच्छा वक्त नहीं गुजरा था। हालांकि खुद ये रन्स बना रहे थे लेकिन टीम जो थी मुसलसल मात खा रही थी, तो लगता था कि इनके सितारे गर्दिश में हैं। और लेकिन जो पिछले कुछ हफ्ते गुजरे हैं उसमें ये मुस्कुराहट वापस आई है, ये देख के बहुत अच्छा लगा है। ज़्यादा फिट हो गए पहले से, बहुत बेहतर विकेट कीपिंग भी की पाकिस्तानी कलर्स में। अभी हालिया सहफरी की टूर्नामेंट के दरमियान रावलपिंडी में, और उम्दा बैटिंग भी की, मैच विनिंग इनिंग्स खेले। यहाँ पर भी इनकी इनिंग्स फैसला कुन थी। पहले दिन जो इन्होंने वार किए सियालकोट के बॉलर्स पे, उससे वो बैकफुट पे होते चले गए। बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई, और एक हंसने की और खुशी की वजह ये भी है कि 75 लाख रुपए की खती रकम जो है वो कराची की टीम एज अ विनिंग प्राइज मनी हासिल करेगी। और ये बेतहाशा पैसे है मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट के स्तर पर, और इनके हिस्से में भी अच्छी खासी रकम आएगी। तो क्रिकेटर्स का पैसा है, क्रिकेट पे खर्च हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर फाइनल जो है वो कहना होगा कि जैसे मुर्फे आम कहते हैं आखिरी दमों पर है। अभी 11 ओवर्स हैं, आखिरी जो ज़रूरी 15 ओवर्स होते हैं वो शुरू होने से पहले। काफ़ी वक्त है, लेकिन उसकी बजाय हमें ये अगले जो 45 मिनट है हमें घड़ी पे ज़्यादा नज़र रखना होगी ओवर्स की बजाय, क्योंकि बड़ी हद तक जो इस खेल के दौरानिए का ताल्लुक है, क्योंकि पहले चारों दिन इसको रोक दिया जाता रहा 4:40 के बाद 307-8 विकेटों के नुकसान पर। मुश्ताक अभी भी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। क्या टेल एंडर्स के खिलाफ एक दो ओवर जो हैं वो स्पिन के ये इस्तेमाल कर सकते हैं? काशिफ भट्टी को लाया जा सकता है एक एंड से। कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें क्योंकि अब थोड़ी ठंडक हुई है, सूरज ज़रा नीचे की तरफ चला गया है, नमी यानी जो मॉइस्चर लेवल है थोड़ा हाई हुआ है, तो ये भी एक जो सीमिंग कंडीशंस है इसमें बॉलर को मदद करेगी। बिसाइड द फैक्ट जो स्पिनर हैं बाज़ का कॉस्टली भी साबित हो जाते हैं, क्योंकि जो टेल एंडर्स हैं वो हिट आउट करते हैं, इससे वक्त भी ज़ाय होता है। तो जल्दी जल्दी ज़ाहिर है कि ये मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं दोनों बैटर्स। ये देखिए करीब था कि गेंद बैट के बाहर वाले किनारे को लगती। बहरहाल जो सियालकोट रीजन की टीम है इनको भी 40 लाख रुपए की रकम जो है इनामी रकम जो है वो दी जाएगी। 75 लाख जीतने वाली को, कराची ब्लूज़ को, और 40 लाख रुपए रनर्स अप यानी सियालकोट रीजन की टीम हासिल करेगी। मुकम्मल तौर पर डिसीव हुए इस बार बैटर, और ओसामा के पास इस अच्छी लाइन लेंथ और उछाल वाली गेंद का कोई जवाब नहीं था। ज्यादा बेहतर अंदाज इसे डक कर दिया। सियालकोट ने अच्छी क्रिकेट खेली इस सीजन में, इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए। इसके वो दिफाई चैंपियन थे और इस फाइनल में भी उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन जो आखिरी मैच था कराची के खिलाफ जिसमें इनको शिकस्त हुई, मुझे लगता है उससे भी नफसियाती तौर पर इनको धचका लगा। फाइनल से पहले कराची के हौसले बुलंद हुए होंगे, उससे भी नफसियाती तौर पर इनको धचका लगा। फाइनल से पहले कराची के हौसले बुलंद हुए होंगे, क्योंकि आखिरी दिनों का जो मोमेंटम है, जो टूर्नामेंट के बैक एंड पर जो टीमें पीक कर रही होती हैं सही वक्त पर, जिस तरह का कराची ने किया है, वो भी हमेशा वो टीमों की जीत का बाइस बनता है। ये जो टेल एंडर्स होते हैं इनसे छुटकारा हासिल करने का भी एक तरीकाकार होता है। आप ब्लॉक होल में तेज यॉर्कर फेंकते हैं, टांग पे हिट करते हैं। अब क्योंकि जो रोशनी की सूरत हाल है वो उतनी बेहतर नहीं है, तो ऐसे में अगर उसामा एक तेज यॉर्कर फेंकें तो फिर उसामा का काम तमाम हो सकता है। लेकिन ये यूजफुल बैटर हैं, कोशिश कर रहे हैं विकेट पर टिके रहें।
सियालकोट ने जिस तरह ये सीजन खेला उससे लगता था, क्योंकि नाकाबिले शिकस्त आ रहे थे, सियालकोट को सिर्फ एक ही शिकस्त हुई, वही कराची ब्लूज के हाथों। ये जो आखिरी राउंड का मैच था, 9वें राउंड का, उसमें वहीं पे काया पलट होती है। हालांकि कराची को 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, दोनों टीमों ने 5-5 फतुहात हासिल की, लेकिन वो जो एक आखिरी मैच में कराची की जीत थी, उससे फाइनल पर एक नफसियाती असर पड़ा है। एबटाबाद और बहावलपुर, अब उनका रहना मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि अगले बरस जो है 2 टीमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से फिर आएंगी, क्वालिफाइंग राउंड वहाँ खेला जाएगा। ओवर मुकम्मल हो गया मुश्ताक का। एक दबीज लहर है, स्मोक की भी आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। लाहौर में जो शरह है इंडेक्स की, वो काबिल ज़िक्र हद तक ज़्यादा रही है। अब इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया गया है हुकूमती इक़दाम की वजह से। ये वजह है कि ये 5 दिन तक बगैर तातुल के काज़म ट्रॉफी का मैच यहाँ खेला गया। गो के हर रोज़ तकरीबन 20 ओवर्स कम फेंके गए, लेकिन फिर भी इसका मुकम्मल हो जाना और ज़ाब्ते के मुताबिक खेला जाना खुशाइंद है क्रिकेट के लिए। 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 2 विकेटें मजीद हासिल करनी है एक आउटराइट विक्ट्री के लिए कराची को। ओह, अच्छी गेंद थी, इस बार उछलकर छोड़ती चली गई, शशतर रह गए मोहम्मद अली। हारून हालांकि रेगुलर बॉलर नहीं है, उनकी गेंद जो है वो इस तरह से उछली है कि जिससे स्मेल द लेदर का एहसास हुआ मोहम्मद अली को। पूरी कोशिश की उन्होंने आउट होने की, लेकिन बाल बाल बच गए मोहम्मद अली। खिलखिला के खुद भी हंस पड़े कि मैं क्यों अभी मौजूद हूं यहाँ पर। यहाँ 2 रन बनेंगे, गेंद के पीछे काशिफ भट्टी जा रहे हैं। बमुश्किल जब गेंद रुक गई थी तो वो 2 रन बचाने में कामयाब हुए, क्योंकि तीसरे में उसामा ने दिलचस्पी ली नहीं, मुमकिन था ये तीसरा रन, लेकिन लगता ये कि फैसला हुआ है कि दोनों एक एक एंड पे बैटिंग करेंगे। एक एंड पे उसामा पूरा ओवर खेलेंगे, दूसरी तरफ मोहम्मद अली। उसामा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, मोहम्मद अली कब तक खेलते हैं ये देखना होगा, छोड़ दिया इस बार। ये बैटिंग कर सकते हैं मोहम्मद अली। इंग्लैंड के खिलाफ जब अपनी अव्वली टेस्ट सीरीज खेले थे तो उसमें इन्होंने खासी मुजाहिमत की थी। टेस्ट मैचों में रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच तकरीबन बचा चले थे अजहर अली के साथ आखिरी सेशन में, फिर मुल्तान में सऊद शकील के साथ काफ़ी देर तक विकेट पर रहे थे। लगता था कि पाकिस्तान जीत जाएगा वो टेस्ट मैच, लेकिन फिर सऊद के खिलाफ वहाँ एक टीवी अंपायर ने मुतनाज़ा फैसला दिया था और वो टेस्ट मैच फिर इंग्लैंड की टीम जीत गई। इसी तरह सफर रहा है बुलंदियों पे कराची का इस चैंपियनशिप में, रॉकेट की तरह। बहरहाल एक शानदार फाइनल का कराची के लिए शानदार इख्तिताम है। यह जी स्ट्रोक था, अब थर्ड मैन की जानिब चहलकदमी करते हुए फील्डर गए, बिलाखिर 1 रन हासिल कर लिया है। उसामा अब सामना करेंगे हारून का। हारून तेज़तुन गेंदें कर रहे हैं, ज़्यादातर शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि कोई छेड़खानी करें बैट से, लेकिन वो जो एक टिपिकल तेज़ गेंद होती है जो ब्लॉक होल में की जाती है, इसकी ट्राई करनी चाहिए। अपनी टांगे बजाते हैं आमतौर पर फास्ट बॉलर ये, लेकिन रफ्तार कम थी, इसमें और तेज़ी लाना होगी। बहरहाल ओवर ख़त्म हुआ 310, 8 विकेटों के नुकसान पर 69 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है।
सूरज का एक धुंधला सा खाका आपको दिखाई दे रहा है पस मंजर में। और सामने लाइट टावर्स हैं और सूरज को चिराग दिखाना जो है वो बड़ा मारूफ मुहावरा है। सूरज जो है इसकी तमाजियत में भी तेज़ी में कमी हुई है। लाइट टावर जो हैं वो खामोश हैं अभी। इनको रोशन कर दिया जाएगा जैसे जैसे रोशनी की सूरत हाल जो है उसमें बिगाड़ पैदा होगा। साकिब बॉलिंग करने के लिए आए हैं और उनका सामना होगा मोहम्मद अली से। 3 स्टेप्स गली पॉइंट कवर ऑफ टॉप बैट्समैन के बिल्कुल सामने है ऑफ साइड पर। फिर से यॉर्कर, इससे पहले कि अपना बल्ला नीचे ला पाते, गेंद गई कीपर के पास। मोहम्मद अली उस तर्ज के बैट्समैन हैं, मुजाहमत पसंद बल्लेबाज, थोड़ा मुश्किल पसंद भी हैं, लेकिन जिस तरह तौसीफ अहमद थे मशहूर क्रिकेटर पाकिस्तान और कराची के, वो इस तरह के मैचेस बचाने की उनकी बड़ी शोहरत थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी बैटिंग को आज भी याद किया जाता है अच्छे लफ्जों से। बिल्कुल, वो बैट के जरिए मुजाहमत नहीं करते थे, चुपचाप बैट को गेंद के पीछे ले आते थे जैसे नजीर जूनियर भी करते थे और तवील अरसे तक वो विकेट पर मौजूद रहते थे। और ये अपील हो रही है और लगता है कि आउट हो जाएंगे मोहम्मद अली। तो इस तरह उनकी इनिंग का खात्मा हुआ और ये नवी विकेट है जो कि मिल चुकी है कराची ब्लूज को। कामयाबी हासिल हुई है साकिब को और ये आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद जा रही थी, इसको फ्लिक करने की कोशिश की मोहम्मद अली ने। गेंद बैट के बाहर वाले या अंदरूनी किनारे को लगती हुई, लगता है अंदरूनी किनारे को लगी है, ये बिल्कुल ठीक डिलीवरी थी। ओवर द विकेट गेंद की थी ये साकिब ने और जिस तरीके से बैटर खेले वो बिल्कुल आपके सामने है। एज लगा, शुक्रिया के साथ विकेट कीपर ने ये कैच लिया और एक और कामयाबी हासिल हुई है कराची ब्लूज को। आउट होने वाले बैट्समैन मैदान से बाहर जाते हुए मोहम्मद अली।
इस तरीके से बाय के 4 रन हुए, कोई फर्स्ट क्लास एफर्ट नहीं थी विकेट कीपर की। चेस से पहले मोहम्मद अली का बहुत उम्दा कैच ले चुके हैं। विकेट कीपिंग का मयार बहुत ऊंचा रहा है। सत्तर ओवर खेल चुकी है सियालकोट रीजन्स की टीम। 314, 9 खिलाड़ी आउट। आपने कहा था कि स्पिनर्स को बुलाना चाहिए, तो अब अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर काशिफ आ गए हैं। इनकी लहराती हुई झूमती जामती गेंदों पर किस तरीके से बैटर्स स्ट्रोक खेलेंगे ये देखना होगा। अब कन्वर्ज कर लिया गया है 3 फील्डर को, यानी घेर रखा है इस वक्त उसामा को 3 फील्डर्स ने। उनके लिए दूसरे स्लिप में फील्डर लाया गया, शॉर्ट लेग गए, लेग स्लिप पे अगले कदम पर इनको लेकर आए। क्या ये गेंद को टर्न करने के लिए जाएंगे, पहले इन्हें सेटअप करेंगे, गेंद को 2 बार अंदर लाकर फिर तीसरी गेंद बाहर की तरफ टर्न करें, सीधी रही। खासे लंबे कदावर हैं उसामा, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, लेकिन यहां उनके दिफा का इम्तहान है। अच्छा खेले इस गेंद को अगले कदम पर आकर उसामा। स्पिनर जो है वो स्पिनर के हाथों आउट होना नहीं चाहता क्रिकेट मैच में। अब यहाँ पर इनकी आपस में कोई मुखासमत है या नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि स्पिनर किस रिश्क को समझते हैं कि ये कितनी स्पिन कर सकेंगे। वो अलग बात है कि उसामा और तरह के स्पिनर हैं और काशिफ जो हैं वो अनऑर्थोडॉक्स हैं, गैर रवायती हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले। ऐसे बॉलर कम कम होते हैं। मुश्किल गेंदें हैं बहरहाल उसामा के लिए, काशिफ की। 71 ओवर के बाद 314 पर 9 सियालकोट। साकिब की तेज गेंदें होंगी, इनके इन्होंने 3 स्लिप्स ले ली हुई हैं, एक गली भी है बैटर हसनैन के लिए। और बोल्ड कर दिया, काम तमाम साकिब के हाथों। यहां हसनैन बोल्ड हुए और इस तरह कराची की टीम ने चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 218 रन से उनने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 का फाइनल लाहौर में जीता है और नो बॉल का कतई तौर पर खतरा नहीं। पीछे हटे बाउंसर की तवक्को थी हसनैन को, लेकिन गेंद उनकी स्टंप्स में आ रही और इस तरह कराची ने ये शायान शान अंदाज में टूर्नामेंट और जीत हासिल कर ली। 314 रन सियालकोट ने बनाए, 533 उनका हदफ था और कराची जिनके लिए इब्तदाई दिनों में
हालात इतने सहल नहीं लगते थे, लेकिन बाद अज़ाम उनके सीनियर, उनके जूनियर से मिलकर इस टीम के लिए ये बड़ा यादगार दिन मुमकिन बनाया। कप्तान सऊद शकील और सभी के लिए ये लम्हा नवीद मुसर्रत से कम नहीं। सियालकोट की टीम पहले दिन से ही वो पिछले कदम पर रही है इस कलीदी फाइनल में, और साद जो इस सीज़न को कभी भी नहीं भुला सकेंगे। उस्मान खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की इस फाइनल में, उन्हें पहली इनिंग्स में 82 रन स्कोर किए, और इनके जो हेड कोच हैं इकबाल इमाम और दीगर कोचेस ऑफिशियल्स, ये आज़म खान आए हैं यकीनी तौर पर बेहद खुश और नाज़ाम अपनी टीम की कारकर्दगी पर। और कराची 2025 में एक बार फिर चैंपियन है। तारिक, जैसे ये जो क्रिकेट का खेल है, इसमें इसका जो प्रियम्बल है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके आइन का, वो आपसी प्यार, मोहब्बत और यगानगत है, इसका एक मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है। और कराची का, जैसा कि आपने बताया कि आज एक बड़ा शानदार यादगार दिन है उनके लिए। उन्होंने बड़े मार्जिन से 218 के शगाफ से शिकस्त दी है सियालकोट को और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अब कराची में इस जीत के बाद इनकी जो मुकामी क्रिकेट है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी, जो थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी। और यकीनन उन्होंने गुज़िश्ता से पैवस्ता अपनी वो रवायत को सब बुलंद रखा है। जिस शहर ने, जिस इलाके ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रॉफी काज़म ट्रॉफी को ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा जीता है, और ये सेहरा जो है कराची के सर जाता है। और जो आज उनकी सलाहियतों का जादू है वो बढ़ चढ़ कर बोला, और मैं कहूँगा हर शोबे में उन्होंने एक डिसिप्लिन टीम का मुजाहरा किया। उनके बैटर्स ने पेशेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस का मुजाहरा किया। बॉलर्स बड़ी शानदार बॉलिंग करते रहे। आपने देखा साकिब ने 5 विकेट हासिल की, रन थ्रू किया, और आज कराची ने ना सिर्फ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती है, लोगों के दिल जीते हैं, 75 लाख रुपए की इनामी रकम भी जीती है। और यकीनन आने वाली जो क्रिकेट है वो कराची के लिए एक मरतबा फिर वो नवीद लेकर आएगी, वो खुशी लेकर आएगी जो कि जीत से मुतल्लिक होगी। खिलाड़ियों और मेरिट के हवाले से एक बोल बाला हुआ है, और आज कराची ने यहाँ पर मैदान मार लिया है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जो कि एक तारीखी ग्राउंड है, पाकिस्तान में क्रिकेट का सदर मुकाम है। और ये वो जगह है जहाँ पर जीतने वाली टीम जो है वो इसको मुद्दतों याद रखती है, इस फाइनल को। तो हाईलाइट्स मुलाज़ा फरमाइए इस शानदार मैच की। यहाँ ये आप देख सकते हैं इस सेशन के हालात। पहले भी हमने जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्योंकि हमारी डिमांड होती थी थे, इस वक्त हमें जो विकेट कीपर मंजूर हैं वो अच्छा खेल रहे थे। उनका पुल शॉट यहाँ पर हमजा नजर ने लगाया, और फिर खराब शॉट खेलते हुए मंजूर आउट हुए। उसके बाद हमजा नजर जो हैं वो हुक करते हुए गए। हसन अली ने आकर अपना रिवायती अंदाज अपनाया बैटिंग में, लेकिन यहाँ एक शॉट जो कि बिल्कुल ना खेलते तो बेहतर होता। और उसके बाद ये वो मकाम आया जब कराची ने ये मार्का मार लिया। ओवरऑल तारिक बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई। ये स्कोर कार्ड है सियालकोट रीजन का, और नुमाया रहे 59 रन बनाकर अब्दुल्ला, 56 रन की इनिंग खेली। हमजा नजर ने 63 रन बनाए, अफजाल ने 25 रन की इनिंग खेली, हसन अली ने, और फिर इस तरह 314 रन बनाकर, जिसमें 24 एक्स्ट्रा रन शामिल थे, 71.1 ओवर में सियालकोट की टीम आउट हो गई। एक बड़ा मार्जिन 218 रन का रहा जीत का कराची के लिए। और कराची के लिए ज़ाहिर है कि इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि वो लाहौर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने इस मार्का इस हंगामा खेज क्रिकेट मैच में कामयाबी हासिल की बड़े मार्जिन से। और किसी भी मौके पर मासवाए पहले दिन के जब टॉस जीता उसामा मीर ने, ये नहीं लगा कि कराची पीछे है और सियालकोट आगे है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। 3 बल्लेबाजों ने 19 सेंचुरियां बनाई, लेकिन बड़ी इनिंग्स ही 5 विकेटें हासिल की साकिब खान ने, इसलिए ये दिन उनके लिए यादगार बना। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की थी। उमर ने एक खिलाड़ी को आउट किया, मुश्ताक भी लंबे स्पेल करते रहे। 17 ओवर्स 1 मेडन, 82 रन, 2 विकेटें। और लेफ्ट आर्म स्पिनर काशिफ भट्टी को 10 ओवर्स के लिए आजमाया गया, उन्होंने 35 रन दिए। रमीज का जो स्पेल था वो बड़ा वाइटल था। आज के दिन 2 बार आकर वो पार्टनरशिप ब्रेकर साबित हुए।
हारून को 1 ओवर के लिए लाया गया आखिरी सेशन। सऊद शकील की कप्तानी भी दलबो मिसल रही। उसामा मीर ने भी छत्तीस के मैच किया। ये मैच समरी है 340 कराची रीजन्स। ये अब इस टोटल ने मोहर साबित कर दी एक अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से। कैसी विकेट के ऊपर जिस पर दरारें मौजूद थी, विकेट पर गेंद ऊपर भी आता था और बाज़ औक़ात नीचे भी रहता था, लेकिन 340 एक बड़ा टारगेट था। 266 रन बनाए जवाब में सियालकोट ने। ये कम स्कोर था, ये एक हकीर सा टोटल था। फिर 458 रन की एक मजबूत इनिंग खेली कराची रीजन्स के बैटर्स ने और अपनी पोजीशन को नाकाबिले तस्कीर कर लिया। 314 रन बनाए दूसरी इनिंग में सियालकोट रीजन्स ने। तो इस तरह फिर हुआ ये जो आपके सामने है। 218 रन से कामयाबी हासिल की कराची रीजन्स ने और इस फाइनल को जीतने के लिए अपनी एक यादगार मार्जिन वज़ा किया। जी हाँ, यहाँ एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब गद्दाफी स्टेडियम से बराह रास्त।
Hello and welcome to the post-match presentation of the final of Airsial presents the University of Lahore final of Quaid-e-Azam Trophy. And what a fantastic performance we have witnessed from Karachi Blues, dominating their opponents throughout the 5 days of cricket that we have seen. So congratulations to Saud Shakil and his boys for playing fantastic cricket in the final. Before we go on to the awards, let me introduce you to the presentation party. I have with me Mr. Mohsin Naqvi, is the chairman Pakistan Cricket Board, and with him is Mr. Meher Abdul Rauf, is the chairman Pakistan Club. Right, I'll start off with the match officials. I would request Mr. Mohsin Naqvi, he will present the medals to the match officials. I'll start off with the match referee, Mr. Nadeem Arshad. It happens to be his last first-class game. He's been the great servant of Pakistan cricket throughout the years. Mr. Tariq Rashid is the match official, the on-field umpire. Mr. Zulfikar Jan, on-field umpire. Mr. Abdul Muqeed, the TV umpire. Mr. Nasir Hussain, the reserve umpire. Mr. Najmus Saeed is the क्या हुआ जानी And I would request again to Mr. Mohsin Naqvi, he will present the University of Lahore Player of the Match of the final trophy and cash award of PKR 100,000 to Abdullah Fazal for his fantastic effort. 88 runs in the first inning to follow with 114 runs in the second inning. Fantastic, brilliant performance from the young left-hander from Karachi Blues. अब्दुल्ला से बात करेंगे. सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शानदार रेड खेली आपने. कैसा लगता है जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स टीम में मौजूद हों और स्पेशल परफॉर्मेंस करना फाइनल में? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लेवल पे आके इतने अच्छे टूर्नामेंट में फाइनल में कर पाया, जो कि मैं मिस कर रहा था और यही सोच रहा था कि अल्लाह ताला जब भी करवाए तो टीम के लिए करवाए और अच्छे मौके पे करवाए. हमने देखा कि जिस तरीके से बैटर्स स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हमें इस पिच के ऊपर, तो आप क्या अलग कर रहे थे, क्या अलग टेक्निक रही आपकी इस मैच में? कुछ नहीं, बस अपनी बेसिक पे रहता हूँ और मेरी इनिंग की है कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो उसी पे रहा और अल्लाह ताला ने सक्सेस दी. चलिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. Right, up next, I would request Mr. Awais Rauf, who's just joined us. Welcome you. He will present the Airsial Best Wicketkeeper of the Tournament Trophy and Cash Award of PKR 250,000 to Saad Beg from Karachi Blues. 32 victims, in fact 35 now in 10 games with 1,000 runs with the bat also. Right, up next, I would request Mr. Abdul Meher Rauf. He will present the PCB Best Bowler of the Tournament Trophy and Cash Award of PKR 250,000 to Ali Usman from Multan region. 48 wickets in 8 matches from the left-hand spinner
of Multan region. Brilliant. Up next, I would request Mr. Awais Rauf. He will present the University of Lahore Best Batter of the Tournament trophy and cash award of PKR 250,000 to Saad Beg from Karachi Blues. 1,000 runs, that includes 4 centuries from Saad Beg. Saad, don't go too far because you're sweeping away with the awards. I would now request Mr. Mohsin Naqvi. He will present the PCB Player of the Tournament trophy and cash award of PKR 250,000 to Saad Beg. 1,000 runs, 32 dismissals, 4 centuries for the young left-hander from Karachi Blues. Saad, baat karenge. Well done. From under 19 to the big boys, कैसी रही ये transition? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और हमारी टीम जीती और बिल्कुल जैसे कि अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले कि 4 सेंचुरियाँ और फिर हम लोग जिस तरह हनीम मोहम्मद से हमारी टीम एफर्ट थी, टीम मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है यहाँ परफॉर्मेंस हुई। कैसा लगता है जब आपके इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हों और आप एज अ यंगस्टर आएँ और डोमिनेट करें एज अ बैटर? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है लेकिन जो हमारे सीनियरों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, सऊद भाई, शान भाई और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमेशा बैक किया हमें, जिसकी वजह से हमें उतना कॉन्फिडेंस और खुद पे मुझे बहुत ट्रस्ट था कि मैंने मेहनत की हुई है और मैं बेस्ट बैट्समैन बन सकता हूँ। अंडर 19 तक हमने देखा कि आप नीचे बैटिंग करते रहे, चौथे 5वें नंबर पे भी, और यहाँ पे बड़ी क्रिकेट में आके आपको ओपन करने का मौका मिला। इस ट्रांजिशन को कैसा देखें? बिल्कुल देखा जाए तो मैंने साइड डोमेस्टिक क्रिकेट एज ओपनर खेली है तो मुझे एज ओपनर मुझे पसंद है और मैं इसको खुद लाइक करता हूँ, तो बस अल्लाह का शुक्र है जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज ओपनर खेलने की और अल्लाह का शुक्र परफॉर्म हुआ। Thank you very much and congratulations once again. Thank you, thank you. Right, up next, I would request Mr. Mohsin Naqvi and Mr. Awais Rauf. They will present the University of Lahore Runners-Up Cash Award of PKR 40 lakh and a trophy to the Sialkot region captain, Usama Mir. टफ लक उसामा, कहाँ से शुरू करें, किस डिपार्टमेंट की अगर बात करें, ज़्यादा मायूसी किससे हुई इस मैच में? नहीं बिल्कुल जिस तरीके से आई थिंक क्रेडिट जाता है कराची की टीम को, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हमें आउट क्लास किया, जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली बॉलिंग किया, उनके क्रेडिट जाता है सब फास्ट बॉलर्स को। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हमारे बैटर्स के लिए, उन्होंने जो जिस जगह पे बॉलिंग किया, तो आई थिंक मेन पॉइंट ही वही था। टॉस जीते आपने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, अगर हम वापस आपको ले जाएं टॉस पे तो कुछ बदलना चाहेंगे वहाँ पे? बिल्कुल बैटिंग करना चाहूँगा। वैसे ओवरऑल अगर हम देखा जाए आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जैसे सियालकोट रीजन की अगर हम बात करें ज़्यादातर मैचेस जीते हैं अंटिल ये आखिरी 2 मैचेस, कैसे सम अप करेंगे आप इस परफॉर्मेंस को? जी बिल्कुल जिस तरीके से हमारी टीम ने क्रिकेट खेली है लास्ट ईयर से लेकर अब तक, ये 2 मैचेस जो हम हारे हैं उससे पहले हम अनबीटन थे, तो क्रेडिट जाता है मेरी सब टीम को, जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट किया और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ बीइंग अ कैप्टन, सियालकोट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जिस तरीके से सब प्लेयर्स ने एफर्ट किया मेरे लिए उनके लिए बहुत इनक्रेडिबल। चलिए, हार्ड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू सो मच। That was Usama Mir, the captain of Sialkot region. Right, the biggest award of the evening. First of all, the cash award. I would request Mr. Mohsin Naqvi. He will first present the University of Lahore Winners Cash Award of PKR 75 lakhs to South Shakil, Karachi Blues. Such a fabulous performance from Karachi Blues. बहुत बहुत मुबारक हो। जब आपसे यहाँ बात हुई है ज़्यादातर आप विनिंग साइड पे रहे हैं, तो एंजॉय करते हैं कैप्टनसी को? हाँ बिल्कुल, हम एक चैलेंज होता है आपके सामने, हम उसको आप अवेल करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा से एंजॉय करता हूँ कैप्टनसी। कैसा लगता है कि जब एक पॉइंट पे टीम कराची की इवेंट में क्वालिफाई भी ना कर रही हो और देन गोइंग ऑन टू विन द चैंपियनशिप, तो क्या इसके पीछे एक मोटिवेशन एडेड थी ये वाली?
हाँ बिल्कुल, हम जिस तरह हमने हमारा काफ़ी लंबी जर्नी हो गया, अभी 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए। एक प्लान लेके चले थे हम। पहले कोशिश थी कि क्वालिफाई करें, और फिर जब क्वालिफाई कर लिया था तो एक हमारे पास मोमेंटम था, उस मोमेंटम को आगे लेके गए। और हमेशा से जब भी हम खेलते हैं तो कोशिश होती है जीतने के लिए खेलें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली आज जीत गए तो बहुत खुश हैं। और द टीम में बहुत बहुत अच्छे नाम हैं, बड़े नाम हैं। आप हैं, शान भी मौजूद हैं, उस्मान खान भी हैं। लेकिन यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? जैसे साद बेग ने परफॉर्म किया, अब्दुल्ला ने किया, हारून ने किया। हाँ बिल्कुल, आप देखें जितना हमारी इस बार हमने टीम बनाई थी, थोड़ा सा इस बार फोकस किया था कि यंगस्टर्स को प्रमोट करेंगे। और जिस तरह यंगस्टर्स ने स्टेप अप किया वहाँ पे, साद बेग हो गया, अब्दुल्ला फजल हो गए, हारून का पहला सीज़न था 200 किया उसने, फाइनल में 100 किया। साकिब की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही पूरी सीज़न में, और मैं ख्याल में किसी को मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यंगस्टर्स ने टीम को यहाँ तक पहुँचाया था, और हमने तो इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं फाइनल में भी, लेकिन ये है कि यंगस्टर्स को बहुत क्रेडिट जाता है इसमें। आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी। ओवरऑल कैसे सब आप करेंगे इस पूरे इवेंट को अपनी टीम के लिए? हम बिल्कुल, हम देखें जिस तरह का हमने हार्डवर्क किया और जिस तरह का हम चीज़ों को एक प्लान लेके चल रहे थे, और जिस तरह को हम चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें जब पे बैक होती हैं तो बहुत सेटिस्फाई होते हैं आप। तो बहुत खुश हूँ मैं इस विन से। चलिए, congratulations once again. All the best for the upcoming season. I would now request Mr. Mohsin Naqvi. He will hand you over this huge, beautiful trophy. The University of Lahore Winners' Trophy to South Shakil. Karachi Blues have done a brilliant job. They are the champions of Quaid-e-Azam Trophy this year. The 10th title for Karachi. Right, that is all we have from the presentation. Back to you guys in the commentary box now. बहुत बहुत शुक्रिया अली। और कराची की टीम हकदार थी यहाँ डाइस पर आने की और चैंपियन बनने की। और कराची ने ये एजाज़ हासिल किया है 22वीं बार, और 10वीं बार कराची ब्लूज़ की टीम कामयाब हुई है। मुख्तलिफ नामों से ये टीम खेलती आई है। और यहाँ आप देख सकते हैं इनके मुतबादिल खिलाड़ी भी हैं सीनियर्स के साथ, जिसमें गाजी गौरी, दानिश अजीज़, मोहम्मद असगर, मोहम्मद हमज़ा, फ़ाद अमीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जनाब मोहसिन नकवी, आज़म खान, इकबाल इमाम और दीगर वहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो तस्वीर है जो कभी आप भुला नहीं सकेंगे। यकीनी तौर पर ये खिलाड़ी यहाँ से इसको अपनी ड्राइंग रूम की जीनत बनाएंगे। KCCA की ये जीनत बनेगी। तस्वीर उनके जो हॉल ऑफ फेम है उसका हिस्सा बनेगी। यकीनन बड़े यादगार और ना भुलाने वाले, नाकाबिल फरामोश ये लम्हात हैं कराची के क्रिकेट के हवाले से। कप्तान सऊद शकील ने टीम को लीड किया एक ऐसी जीत के हवाले से जिसकी अशद ज़रूरत थी कराची को। कराची पावर हाउस है और आज उसने यहाँ पर जो शानदार कामयाबी हासिल की है, मेरे ख्याल में इनकी क्रिकेट को लॉन्ग वे लेकर जाएगी आगे टू इस्टेब्लिश क्रिकेट इन कराची। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया राजा असद अली खान। और अब गद्दाफी स्टेडियम से इस मैच के लिए इतना ही। तारिक सईद और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये नशरिया पसंद आया होगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ और शब खैर। This is 850 in first class cricket. Christie, boundary on the very first delivery for Shan Masood. That's a good confident start. मिस से कट करने का मौका दिया। यहाँ एक और चौका मिल जाएगा। आज़ादी मिल गई ऑफ स्टंप के बाहर उस्मान खान को, और साथ साथ फिफ्थ सेंचुरी भी। बड़ी दिलचस्प गेम थी और इसे एज कर बैठे
इस तरह कामयाबी हासिल हो चुकी है एक और अब कमर को। That's a massive hit. That will take Mohsin Riaz to his 50. Another one for this young boy. And there it is. Ball it in the right channel, clean him up. और 50 का हिंसा और संग मील भी उबूर किया। और ये रन बड़ी तेजी के साथ हासिल किया, साथ साथ सेंचुरी भी लाजवाब। Edge gone. Another one bites the dust. Edged and over the head of the fielders for a boundary to Haroon as he brings up his 50. Huge hit, 6 runs. यहाँ इनके 50 रन मुकम्मल हो गए। And top edge, and Sean makes no mistake.